तशरीफ ले आए। जनाब ज़फ़र रफ़ी साहब जहाँ कहीं भी तशरीफ़ रखते हों बाग वाली मस्जिद पर तशरीफ़ ले आए। मोमिनीन से गुजारिश है बाग वाली मस्जिद पर महफ़िल मक़ासिदा का इनेक़ाद होने जा रहा है। अव्वलन तिलावत कलाम पाक क़ारी सरवर हुसैन साहब क़िबला तिलावत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मौलाना क़मर हसन साहब क़िबला हदीसा किसा के फ़राइज़ अंजाम देंगे। महफ़िल को ख़िताब करेंगे आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब क़िबला क़ारी। सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या तंज़ील अज़ीज़ रहीम लितुंज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून।
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد महफिल का आगाज बाकायदा तिलावत रब्बानी का से हो चुका है। अब तिलावत के फौरन बाद हदीस किस्सा के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आली जनाब मौलाना कमर हसन साहब क़िबला में बसअदब उनसे गुजारूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। एक बार मौलाना नारे सलवार محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له اذك بالله يا فاطمة من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وجهه يتلألأ نورا كأن البدر في ليلة تمامه وكماله قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم منك راية طيبة كأنها توجد رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء
فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله تولي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك ودخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلم قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني فصبرت أفادي فقال يا أمه إني أشم لك راحة طيبة كان لا تجد رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فضل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معه الحسين تحت الكساء ما صلى على قالت فاطمة عليه السلام وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك منك رسول الله وقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم أنك راية طيبة كانت أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نعم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك من اختاره الله أتن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك ودخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها ثم قلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتى والسلام عليك يا رسول الله أتن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء صل على محمد قالت فاطمة ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي والسكناء سماواتي وعزتي وجلالي إني ما أخلص سماء مبنية ولا أرض مدنية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء ما صل على فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا رب أتن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فأذن منه جبريل فأقبلنا من الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما أخلق سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء وهل تأذن لي يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك ودخل جبريل معهم تحت الكساء صل على فقال له إن الله عز وجل قد إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا فقال عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واستقاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يوم من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسويدنا كذلك الشيعة الأفعاز وسويد رب الكعبة
फ़क़ाल रसूलुल्लाह वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्युन मा ज़ुकिरा ख़बरुन हाज़ा मिन महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि यौमुन मिन शिय्यतिन व फ़ीहि मअमुनुल्लाह फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़ून इल्ला ख़शफ़ल्लाहु हम्महु वला ta'alu हाजतन इल्ला क़ज़ल्लाहु हाजतहु फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि उज़ुन सुइदना कज़ालिका शिय्यतन फ़ाज़ू व सुइदु फ़िद दुनिया वल आख़िरह मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिकल हसन व अंतल मुहसिन व बिकल हुसैन अंत क़दीमुल इहसान व बिकल अइम्मति तिसअति ताजिन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत महफिल का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। अब मैं उस नाम को मेरी जसारत नहीं, मेरे पास जुमले नहीं, वो अल्फाज नहीं कि मैं वो नाम पुकार सकूं, मगर जाहिर सी बात है कि वो नाम मुझे पुकारना है। वो नाम जो ख़तीब इनक़लाब के नाम से जाना जाता है, जिसे अब्बास इरशाद कहते हैं। जाहिर सी बात है कि वो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है और हमारे पास वो जुमले नहीं जो हम उनका नाम अपनी ज़बान से इस तरह से ले सकें। मैं बसद अदब बसद खुलूस गुजारिश गुजार हूँ उन हज़ारों लाखों दिलों की धड़कन आली जनाब मौलाना अब्बासी शाह साहब क़िबला से कि तशरीफ़ लाएं। इस नूरानी शाम की नूरानी महफिल को खिताब फरमाएँ। हमारे हर दिल अजीज़ अब्बासी शाह साहब आप हज़रात के रूबरू हैं। आपको पूरा हक़ है कि आज शहज़ादी फ़ातिमा की बाबा की महफिल है, किस तरह से सुनना है ये आपको हक़ है। अब आप जाने, अब्बासी शाह साहब जाने, अब वो शहज़ादी जाने और आप इंशाअल्लाह पूरा हक़ अदा करेंगे। एक बावाज़ बुलंद नारे हैदरी, नारे हैदरी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु हज़रत गुजारिश है कि बारगाह मासूमीन में ख़ुसूसन बारगाह मासूम आलम सलामुल्लाह अलैहा में उनके बाबा और उनके फ़र्ज़ंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तबरीक के लिए, तहनीत के लिए, मुबारकबाद के लिए एक बावाज़ बुलंद तोहफ़े सलावत पेश करें। औज़ु बिल्लाहि समील अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तु नबिय्यन आदमा बैनल माए व तीन। सलावत भेजें। हज़रात गिरामी, अव्वलन मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ अहले मोहल्ला का, ख़ुसूसन इस नूरानी शाम के उन्वान से मुनक़िदा इस जज के तमाम मुंतज़मीन का कि जिन्होंने इस बार फिर मुझे ये इज़्ज़त दी कि मैं
ज़िक्र पैगम्बर और ज़िक्र इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की आज की शब नूर है। आज की शब ज़ुहूर नूरैन सादिक़ैन अलैहिमुस्सलाम है। बस इतनी देर के शुअराए किराम भी तशरीफ़ ले आएँ और माहौल महफ़िल साजगार हो जाए। आपकी खिदमत में गुफ्तगू करना मकसूद है, मगर उससे पहले एक ख़ास ऐलान समाअत फरमा लें कि अंजुमन पंजतनी की जानिब से बीबी उम्मे कुलसूम बिनते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में एक सालाना जश्न इस बार भी 18 रबीउल अव्वल 11 सितंबर 8:30 बजे शब इमाम बाड़ा पंजतनी में मुनक़िद होगा, जिसमें शुअराए किराम बारगाह जनाब उम्मे कुलसूम में नज़रान अक़ीदत पेश करेंगे। तरही महफ़िल है और उसके बाद मौलाना मोहम्मद अस्करी साहब क़िबला बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। आप हज़रात से उसमें शिरकत की गुजारिश है और बाद महफ़िल कुरानदाज़ी भी होगी, जिसमें क़ुरे के ज़रिए मोमिनीन की खिदमत में तबरुकात पेश किए जाएंगे। एक सलावात पढ़ें हज़रात। आज शब की मुनासबत से मैंने आपके सामने पैगम्बर इस्लाम सरकार ख़त्मी मरतबत जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जिस मशहूर तरीन हदीस मुबारका की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उसमें पैगम्बर ने फरमाया कि कुन तो नबीयन आदमा बैनल माए व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान सफ़र कर रहे थे। पैगम्बर इस्लाम की हदीस जहाँ पैगम्बर इस्लाम की नूरानियत का ऐलान है, पैगम्बर इस्लाम की अव्वलियत का ऐलान है, पैगम्बर इस्लाम की अफजलियत का ऐलान है, वहीं पैगम्बर ने इस ऐलान के ज़रिए उस नज़रिए और उस अक़ीदे की तरदीद भी की है जो पैगम्बर इस्लाम के सिलसिले में बनाया गया कि माज़अल्लाह पैगम्बर इस्लाम 40 बरस तक नबी नहीं थे। 40 बरस के बाद अल्लाह ने उन्हें ओहदे नबूवत अता फ़रमाया। पैगम्बर की हदीस बता रही है कि वो अफराद जो पैगम्बर की नबूवत के लिए इस बात के कायल हैं कि जब नबी 40 साल के हो गए, 40 बरस के हो गए तो अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया। पैगम्बर की हदीस ऐलान कर रही है कि वो उस वक्त से नबी हैं जब साल का भी तसव्वुर नहीं था, वक्त का भी तसव्वुर नहीं था। कुन तो नबीयन आदमा बैनल माए व तीन, कि जब आदम आबोगिल के दरमियान थे उस वक्त भी पैगम्बर ने फरमाया कि मैं नबी था। ये उस नज़रिए की तरदीद है जो पैगम्बर को ये मानता है कि पैगम्बर इस दुनिया में आने के बाद नबी बनाए गए। हालांकि अजीज़ों, नबी दुनिया में नबी बनने के लिए नहीं आता है, नबी बन के आता है। रसूल दुनिया में रसूल बनने के लिए नहीं आता है, रसूल बन के आता है। उसकी एक दलील तो कुरान में मौजूद है कि जब जनाब मरियम जनाब ईसा को लेकर निकली और लोगों ने एतराज़ किया, आए तशरीफ़ ले आए क़िबला मौलाना अब्बास सदारत की मसनद पर तशरीफ़ रहें और मौलाना कमर साहब आप भी आ जाएँ। एक सलावात और पढ़ दें मोहम्मद वाले। देखिए, अज़ान फ़ज्र और अज़ान ज़ोहरैन और अज़ान मग़रिबैन तो रोज़ इस मस्जिद में होती है और मुख्तलिफ़ मुअज़्ज़िन हैं जो अज़ान देते हैं। साल में एक बार अज़ान मवद्दत देने का शरफ़ मुझे हासिल होता है। ये मवद्दत की अज़ान है, मोहब्बत की अज़ान है। आप हज़रात मिलजुल के एक सलावात और बावाज़ बुलंद पढ़ें। बस थोड़ी देर बाद नमाज मवद्दत के लिए जमात तैयार हो जाएगी। उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं, शुरा भी आ चुके हैं। बस ज़्यादा देर तकरीर करना मकसूद नहीं। मैंने अर्ज़ किया ये नज़रिया कि पैगम्बर इस्लाम जब 40 साल के हो गए तो अल्लाह ने उनका किरदार देख के और उनका अखलाक देख के उन्हें नबी बनाया। इसकी तरदीद नबी की हदीस भी कर रही है और फिर कुरान भी इसकी तरदीद करता है। और उस वक्त करता है कि जब जनाब मरियम पर लोगों ने एतराज़ किया कि आपके कोई शौहर है नहीं और जनाब ईसा के कोई बाप हैं नहीं, ये बग़ैर बाप के दुनिया में कैसे आ गए, आपकी शादी हुई नहीं, बग़ैर शादी के दुनिया में कैसे आ गए। तो जैसे ही जनाब मरियम पर यह एतराज़ हुआ और उन बीबी की आंखों में आंसू आए और उनके लब थरथराए तो मिजाज कुदरत बरहम हुआ और कहा कि बीबी आप इनसे न बोलिएगा, आप मुंह न खोलिएगा, आप जवाब न दीजिएगा, ये कह रहे हैं कहते रहें, ये चीख रहे हैं चीखते रहें, आप ईसा की तरफ इशारा कर दीजिए।
देखिए, एक तो अल्लाह का मिजाज भी मालूम हुआ कि अल्लाह नहीं चाहता कि कोई मासूमा किसी गुस्ताख का जवाब दे, चाहे वो कलाम का जवाब हो, चाहे वो सलाम का जवाब हो। फिर जनाब मरियम ने इशारा किया तो जनाब ईसा गोया हुए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं किताब लेके आया हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। जब हम पूछते हैं कि जनाब ईसा के इस जुमले का क्या मतलब है, तो लोग कहते हैं बीबी मरियम की इस्मत का सबूत है। नहीं, ये सिर्फ जनाब मरियम की इस्मत का सबूत नहीं है, ये पैगम्बर आखिर की नबूवत का सबूत है कि जब ईसा नबूवत के बग़ैर दुनिया में नहीं आते तो ईसा जिसके पसीने के कतरे में नबी बने हों, वो बग़ैर नबी बने दुनिया में क्या आएगा। सलावात पढ़े मोहम्मद। और अज़ान गिरामी, दूसरे पैगम्बर इस्लाम इस दुनिया में ओहदे नबूवत के साथ आए। वो उस वक्त भी नबी थे जब आदम अबूगिल के दरमियान थे। इसका दूसरा सबूत यह है कि हमारे तमाम उलमा ने पैगम्बर की तारीख़ विलादत 17 रबीउल अव्वल लिखी है। और सिर्फ ये नहीं लिखा है कि पैगम्बर 17 रबीउल अव्वल को मक्के में तशरीफ़ लाए, ये भी लिखा है कि जिस दिन पैगम्बर यानी 17 रबीउल अव्वल को जिस दिन पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिस दिन आपका नूर ज़मीन पर आया, उसी दिन बहुत से मोजज़ात ज़ाहिर हुए। एक आतश कदा था जो आतश कदा फ़ारस कहलाता था। जिस दिन पैगम्बर इस्लाम दुनिया में आए, आतश कदा फ़ारस गुल हो गया, दरियाए सावा का पानी खुश्क हो गया, नजूमियों का हिसाब नजूम बातिल हो गया, शैतानों का आसमानों पर जाना बंद हो गया। न जाने कितने मोजज़ात, तवज्जो सुनिएगा, न जाने कितने मोजज़ात उस दिन के लिखे गए हैं जिस दिन पैगम्बर इस्लाम दुनिया में आए। भाई सवाल ये है कि अगर वो नबी नहीं थे तो उनके आते ही मोजज़े क्यों ज़ाहिर हो गए? उनके आते ही आतिश कदा फ़ारस गुल क्यों हो गया? उनके आते ही दरियाए सावा का पानी खुश्क क्यों हो गया? उनके आते ही नजूमियों का हिसाब बातिल क्यों हो गया? उनके आते ही आसमानों पर शैतानों का जाना बंद क्यों हो गया? भाई पैगम्बर इस्लाम जिस दिन दुनिया में आए उस दिन मोजज़ों का ज़हूर क्यों हुआ? तो भाई पैगम्बर इस्लाम के यौम विलादत मोजज़ों का होना इस बात की दलील है कि ये जो 17 रबीउल अव्वल को आए हैं, ये 40 बरस के बाद नबी नहीं बनेंगे, ये नबी बन के आए हैं। मुझे जुमला कहने दीजिए। भाई पैगंबर के दुनिया में आते ही आतश कदे फ़ारस का गुल हो जाना, दरियाए सावा का पानी खुश्क हो जाना, इस बात की दलील है कि जो 17 रबीउल अव्वल को आमना की गोद में आए हैं, ये ज़ुलशीरा से नबी नहीं हैं, ये पहले से नबी हैं। मुझे कहने दीजिए, जैसे 17 रबीउल अव्वल को आतश कदे फ़ारस का गुल हो जाना इस बात का ऐलान है कि जो आमना की गोद में आए हैं ये ज़ुलशीरा से नबी नहीं हैं, ये पहले से नबी हैं। वैसे ही 13 रजब को काबे की दीवार में दरवाज़ा बन जाना इस बात की दलील है कि जो 13 रजब को काबे में आए हैं ये गदीर से वली नहीं हैं, जब से नबी नबी हैं तब से अली वली हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। भाई देखिए, पैगंबर इस्लाम ने ऐलान रिसालत ज़ुलशीरा में किया है। ऐलान रिसालत 40 बरस के सिन में किया है, लेकिन वो नबी 40 बरस के सिन में थोड़ी बने हैं। 40 साल खामोश रहे हुक्म खुदा से, लेकिन नबी उस वक्त भी थे जब बीबी आमना की गोद में थे, वो तब भी नबी थे। 17 रबीउल अव्वल को दुनिया में आए तब भी नबी थे। जनाब अबू तालिब की किफ़ालत के साए में थे। एक सलावात और पढ़े मोहम्मद वाले। एक सलावात और पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिए अज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम जिस दिन दुनिया में आए उस दिन भी नबी थे। इसकी एक दलील तो मैंने अर्ज़ किया, पैगंबर की हदीस है कि कुन तो नबियान आदमा बैनल माए व तीन। दूसरे पैगंबर इस्लाम के यौम विलादत मोजज़ों का होना इस बात की दलील है कि वो नबी बन के आए थे। और तीसरी और आखिरी दलील अजीज़ों ये है कि जब आप पैगंबर इस्लाम के अलक़ाब पर नज़र डालेंगे तो पैगंबर इस्लाम के अलक़ाब दो तरह के हैं।
कुछ अलकाब वो हैं जो दामन कुरान में मौजूद हैं, और कुछ अलकाब वो हैं जो ऐलान रिसालत से पहले मक्के के रहने वालों ने पैगंबर इस्लाम को अलकाब दिए। बहुत से अलकाब वो हैं कि जो मक्के के रहने वालों ने नबी को अलकाब दिए। कुरान में जो अलकाब मौजूद हैं, तो कुरान में नबी को बशीर कहा गया, नज़ीर कहा गया, पैगंबर इस्लाम को ताहा कहा गया, यासीन कहा गया, मुज़म्मिल कहा गया, मुदस्सिर कहा गया। ये अलकाब पैगंबर दामन कुरान में मौजूद हैं। ये अलकाब तो पैगंबर को तब मिले हैं जब पैगंबर ने रिसालत का ऐलान कर दिया, कुरान नाजिल हो गया। लेकिन कुरान नाजिल होने से पहले बहुत से अलकाब वो हैं कि जो मक्के के रहने वाले पैगंबर इस्लाम के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसमें एक मशहूर लक़ब है अमीन। सलावत भेजे मोहम्मद, एक सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ दे मोहम्मद। ये जो पैगंबर उलमा बैठे हुए जो लक़ब अमीन है, तो पैगंबर इस्लाम को अमीन मक्के के रहने वाले कहते थे। ऐलान रिसालत से पहले पैगंबर इस्लाम को अमीन वो भी कहते थे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहते थे। भाई वो लोग भी ऐलान रिसालत से पहले पैगंबर को अमीन कहते थे। और ये अमीन का लक़ब कोई मामूली लक़ब नहीं है, बहुत गौर सुनिएगा। ये ऐसा लक़ब है कि जब आप कुरान पढ़ें तो जो लक़ब पैगंबर इस्लाम का लक़ब अमीन पैगंबर के लिए है, वही लक़ब जिब्राईल के लिए भी है। जिब्राईल को भी कुरान ने भी, और बच्चा बच्चा जानता है कि जिब्रील को खाली जिब्राईल नहीं कहते हैं, जिब्राईल अमीन। सलावत भेजे मोहम्मद। भाई जिब्रील को भी कहा जाता है जिब्राईल अमीन। अब मुझे बताइए जिब्राईल को जिब्राईल अमीन क्यों कहते हैं? आम तौर पर जो अमानत का तसव्वुर है और जो लक़ब अमीन का सबब है, वो लोग ये समझते हैं कि अमीन उसे कहते हैं कि हम किसी के पास जेवर रखवाएं और वही जेवर जो हमने रखवाए वही दयानत के साथ वापस कर दे, वो अमीन है। किसी के पास पैसा रखवाया जाए, वो हमारा पैसा दयानत के साथ वापस कर दे, ये अमानत है। किसी के पास हम मालो मनान रखवाएं, वो मालो मनान वैसे का वैसे ही वापस कर दे, वो अमीन कहलाता है। आम तौर पर अमानत का तसव्वुर ये है कि अमीन उसे कहा जाता है जिसके पास माल दौलत रखवाया जाए और वो माल दौलत की हिफाजत करे, वो कहलाता है अमीन। मुझे बताइए, अगर अमीन से माल दौलत की हिफाजत करने वाले को कहते हैं, तो जिब्रील किस माल दौलत की हिफाजत करते थे? तो जो हमारे यहाँ ये जो जिब्रील को भाई सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले, ये जो जिब्राईल को जिब्राईल अमीन कहा जाता है, ये जिब्राईल अमीन उन्हें क्यों कहा जाता है? उनके पास किसने पैसे रखवाए थे जो वैसे के वैसे वापस कर दिए? उनके पास किसने दौलत रखवाई थी जिसकी उन्होंने हिफाजत की? तो जो जिब्राईल को जिब्राईल अमीन कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जिब्राईल के ज़रिए अल्लाह कुरान पैगंबर इस्लाम तक पहुंचाता था। तो जो हमारे यहाँ ये जो 30 पारे का कुरान है, बिस्मिल्लाह से शुरू होने वाला कुरान, वन्नास पर तमाम होने वाला कुरान, ये कुरान लेके नाजिल होते थे जिब्राईल, आयतें लेके नाजिल होते थे जिब्राईल, अहकाम लेके नाजिल होते थे जिब्राईल, सूरे लेके नाजिल होते थे जिब्राईल। अब इन्हें अमीन इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह जो भिजवाता था वही जिब्रील पहुंचाते थे। भाई जिब्रील कुरान में तहरीफ नहीं करते थे, आयतों में तगय्युर नहीं करते थे, अल्फाज में तबद्दुल नहीं करते थे। तो जो हमारे यहाँ जो अल्लाह भिजवाता था वही वही जिब्राईल पहुँचाते थे। जो आयतें अल्लाह जिब्राईल के ज़रिए भिजवाता था वही आयतें जिब्राईल नबी के पास पहुँचाते थे। ऐसा नहीं था कि 100 आयतें दी गई हों, जिब्राईल ने 80 पहुँचाई, 20 नहीं पहुँचाई। 50 आयतें दी गई, जिब्राईल ने 30 पहुँचाई, 20 नहीं पहुँचाई। तो जो हमारे यहाँ जिब्राईल को जो जिब्राईल अमीन कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि ये कुरान के मामले में खयानत नहीं करते थे। तो जो हमारे एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले हैदरी माशाअल्लाह, मौला अच्छा रखे। सुनिएगा, बस ज़्यादा सहमत नहीं है। ये जो जनाब जिब्राईल को अमीन कहा जाता है, देखिए जिब्राईल, ये जिब्राईल अरबी लफ्ज़ नहीं है,
अरबी में बहुत से अल्फाज हैं जो इब्रानी हैं। हमारे मोहतरम बरादरम हमसे बुज़ुर्ग मौलाना अब्बास तुराबी साहब साहिब इल्म हैं, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। और जिब्राईल का मतलब होता है जिब्र। इब्रानी ज़बान में जिब्र कहते हैं खादिम को, जिसे हम आम ज़बान में नौकर कहते हैं, और ईल कहते हैं अल्लाह को। इब्रानी ज़बान में अल्लाह को ईल कहते हैं, जैसे फ़ारसी ज़बान में खुदा कहा जाता है, अंग्रेज़ी में गॉड कहा जाता है, वैसे ही इब्रानी ज़बान में अल्लाह के लिए लफ्ज़ ईल आता है। तो जिब्राईल का मतलब होता है अल्लाह का खादिम। जिब्राईल का मतलब, जैसे अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा, यदुल्लाह का मतलब अल्लाह का हाथ, लिसानुल्लाह का मतलब अल्लाह की ज़बान, कलामुल्लाह का मतलब अल्लाह का कलाम। आइए तशरीफ़ ले आए, सलावत पढ़ें मोहम्मद। भाई आए, आ जाइए, अरे इधर तशरीफ़ ले आए, शकील भाई, नायाब भाई आए, और आप भी अंदर आए। मेरा तो देखिए काम यही है। मैंने अर्ज़ किया था ये तो अज़ान मवद्दत है, मैं अज़ान दे रहा हूँ, थोड़ी तूलानी अज़ान सही, ताकि नमाज मवद्दत के लिए सफ़े आरास्ता हो जाए। लीजिए हमारे बरादरान भी तशरीफ़ लाए, सुनिएगा अज़ान गिरामी। तो जिब्राईल, मैं अर्ज़ कर रहा जिब्राईल अमीन, अभी अमीन की सराहत हो जाएगी और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। जिब्राईल का मतलब होता है अल्लाह का खादिम। ये जो जिब्राईल को जिब्राईल कहा जाता है तो इसलिए कि अल्लाह ने जिब्राईल को अपना खादिम बनाया है। जिब्राईल है अल्लाह का खादिम। अब ये अजीब बात है कि अल्लाह ने जिब्राईल को बनाया अपनी खिदमत के लिए, लेकिन जिसे अपनी खिदमत के लिए बनाया, हमने तारीख़ के आईने में देखा, कभी वो सैयदा की चक्की चला रहा है, कभी वो हसनैन का झूला झुला रहा है, कभी वो रोटी पे आयत ला रहा है, कभी अंगूठी के ऊपर सूरा पहुंचा रहा है, अंगूठी पर आए विलायत ला रहा है, रोटी पर सूरह दहर ला रहा है, लाफता इल्ला अली के नारे लगा रहा है, गदीर में मुस्कुरा मुस्कुरा के मुनाफिक का कलेजा चबा रहा है। भाई अल्लाह ने जिब्राईल को अपनी खिदमत के लिए बनाया, मगर जिब्राईल चक्की चला रहे हैं सैयदा की, झूला झुला रहे हैं हसनैन का, खिदमत कर रहे हैं अहले बैत की। मैं आवाज़ दूंगा पालने वाले, तूने अपनी खिदमत के लिए बनाया, ये सैयदा की चक्की क्यों चलवाई, हसनैन का झूला क्यों झुलवाया? आवाज़ आएगी, मैं समझा रहा हूँ, समझो मेरी खिदमत कहते किसे हैं? क्या सुना आपने? समझो मेरी खिदमत कहते किसे हैं? मैं समझा रहा हूँ कि अहले बैत की खिदमत करना ही मेरी खिदमत है। अहले बैत की खिदमत करना ही मेरी खिदमत है। तो मुझे कहने दीजिए, जैसे अहले बैत की खिदमत करना अल्लाह ही की खिदमत है, वैसे ही अल्लाह से मदद, अहले बैत से मदद मांगना अल्लाह ही से मदद मांगना। सुनिएगा तो मैं तमाम करो, अमीन का क्या मतलब हो? जिब्राईल अमीन, जो जिब्राईल अमीन कहलाते हैं, वो इसलिए नहीं कहलाते कि किसी ने उनके पास जेवर रखवाए थे उसकी हिफाजत की, किसी ने मालो मनान रखवाया था उसकी हिफाजत की। वो अमीन इसलिए कहलाते हैं कि अल्लाह ने जो आयतें, जो कुरान उनसे कहा पहुँचाओ, वो पूरा का पूरा उन्होंने पहुँचाया, और आयतों में कोई तगय्युर नहीं किया, लफ्ज़ों में कोई तबद्दुल नहीं किया, जैसी आयतें अल्लाह ने भिजवाई वैसी उन्होंने पहुँचाई। इसका मतलब, अमीन का मतलब जो अमानत में खयानत न करे वो कहलाता है अमीन। अब पैगंबर इस्लाम का भी लक़ब अमीन है। कुरान में आयत के ज़रिए और वाज़े किया जा रहा है कि जो नबी अमीन होता है तो किस बुनियाद पर होता है। ऐलान हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा काना लिनबीइन अन यगुल, कि नबी का काम खयानत करना नहीं होता। भाई मैंने आयत सुनाई है, वमा काना लिनबीइन अन यगुल, कि नबी का काम खयानत करना नहीं होता। अब इस आयत की 3 तफसीरें हैं। मैं एक तफसीर आपको सुनाता हूँ। वो तफसीर ये है कि ये जो आयत है कि हमारे नबी का काम खयानत करना नहीं होता क्योंकि वो अमीन है, तो इस आयत का पस मंज़र क्या है? आयत का पस मंज़र ये है कि एक दिन मक्के के मुश्रिकों का डेलीगेशन पैगंबर के पास आया। उसने कहा देखिए हम आपको
कुरान सुनाने से नहीं रोकेंगे, हम आपको आयतें पढ़ने से नहीं रोकेंगे, लेकिन हम आपके पास एक मुआहदे के लिए आए। आप कुरान सुनाइए, आप आयतें सुनाइए, आप अल्लाह का कलाम सुनाइए, लेकिन मुआहदा ये है कि आप सिर्फ वो आयतें सुनाइए जिसमें आपकी अल्लाह की तारीफ है, वो ना सुनाइए जिसमें हमारे वालों पर तनकीद है। सुनिएगा कि आप वो आयतें सुनाइए जिसमें आपके अल्लाह की तारीफ है, वो ना सुनाइए जिसमें हमारे वालों पर तनकीद है। आप तौहीद का जिक्र कीजिए, शिर्क पर तफसीरा न कीजिए। क्या सुन रहे हैं आप ईमान वाली आयतें पढ़िए, कुफ्र का जिक्र न कीजिए। सलावत भेजा मोहम्मद। सुनिएगा बहुत गौर से, गुफ्तगू तमाम है 5 मिनट में। मुश्रिकों ने कहा कि हम आपके पास एक मुआहदे के लिए आए, पैक्ट के लिए आए। आप वो आयतें पढ़िए जिसमें तौहीद का तज़किरा है, वो ना पढ़िए जिसमें शिर्क का जिक्र है। आप वो आयतें पढ़िए जिसमें ईमान की बातें हैं, वो ना पढ़िए जिसमें कुफ्र पे तनकीद है। इसका मतलब मुश्रिकों को पूरे कुरान से उलझन नहीं थी, मुश्रिकों को पूरे कुरान से उलझन नहीं थी। जैसे आज के ज़माने में भी बहुत से लोगों को मजलिस के पूरे बयान से उलझन नहीं है। तो माने आप भाई, मुश्रिकों का मिजाज क्या था? मुश्रिकों का मिजाज क्या था? मुश्रिकों का मिजाज ये था कि कुरान में हूरों का जिक्र हो, उन्हें उलझन नहीं, जन्नत का जिक्र हो, उन्हें उलझन नहीं, गिलमान का जिक्र हो, उन्हें उलझन नहीं, कौसर का जिक्र हो, उन्हें उलझन नहीं, तूबा का जिक्र हो, उन्हें उलझन नहीं, आदम का जिक्र हो, उन्हें उलझन नहीं, नूह का जिक्र हो, उन्हें उलझन नहीं। उन्हें हक की तारीफ से उलझन नहीं थी, बातिल पर तनकीद से उलझन थी। भाई मुश्रिकों को हक की तारीफ से उलझन नहीं थी, बातिल पर तनकीद से उलझन थी। यही मिजाज यहाँ भी है। एक तबका है मजलिस में इस्लाह की बातें हों, उन्हें उलझन नहीं, पड़ोसियों के हुकूक बयान हो, उन्हें उलझन नहीं, इताअत वालिदैन बयान की जाए, उन्हें उलझन नहीं, अज़ादारों पर तनकीद की जाए, उन्हें उलझन नहीं, अंजुमन वालों को बुरा कहा जाए, उन्हें उलझन नहीं। इधर फिदक पढ़ा गया, उधर चेहरे का गोश उड़ गया। क्या सुना? दुनिया भर की बातें हों, उन्हें उलझन नहीं होती। इन पे तनकीद, उन पर तनकीद, इनकी बुराई, उनकी बुराई, उलझन नहीं। इधर मौला अली के फजाइल बयान हुए, फ्यूज हो गए। सलावात भेजे मोहम्मद। जाकिर के लिए कंफ्यूज हो गए। मुझे कहने दीजिए, यही मिजाज मुश्रिकों का था। अब ये जुमला अख्तर भाई, आप तमाम हजरात से मैं कह रहा हूँ, चाहे यहाँ समझिएगा, सैयद भाई, चाहे लोग घर जाके समझें। इसका मतलब जो कल के मुश्रिकों का मिजाज था, वही आज के मुकस्सिरों का मिजाज है। सलावात भेजे अहमद। जो मिजाज था वही आज के मुनाफिकों का है, आज के मुकस्सिरों का है। तो आयत नाज़िल हुई, वमा काना लिनबिय्यिन अन यग़ुल, हमारा नबी खयानत नहीं करता। जो भेजा गया है वो सुनाया जाएगा, जो आयतें आई हैं वो सुनाई जाएंगी। इसका मतलब अमानत किसे कहते हैं? अधूरा हक न पहुँचाओ, पूरा हक पहुँचाओ, ये अमानत है। अधूरा हक न पहुँचाओ, पूरा हक पहुँचाओ, ये अमानत है। अब जो हम अपने बयान में, अपनी मजलिस में, अपनी ज़ाकिरी में हक़ आले मोहम्मद बयान करते हैं और न तक़ैया करते हैं, न तौरिया करते हैं, तो ये खिताबत की दलील नहीं है, ये हमारी अमानत की दलील है। सलावात भेजे अहमद वाले अमीन होने की दलील। बस अज़ान गिरामी, तो पैगम्बर इस्लाम की नबूवत के लिए कि वो
ज़ुलशीरा से नबी नहीं थे, वो पहले से नबी थे। इसकी बैन दलील है कि उनको एलान रिसालत से पहले ही अमीन कहा गया। काफिरों ने भी उनको अमीन माना। बस आखिरी बात, शुअरा आ चुके, काफिरों ने भी उनको अमीन माना। ये उनके नबी बरहक होने की दलील है। काफिरों ने भी उनको अमीन माना, ये उनके नबी बरहक होने की दलील है। अब कल दो दो मासूमों की आमद है, एक रसूल है, एक इमाम है। अब तारीख का आईना देखिए कि जैसे काफिरों ने भी नबी को अमीन कहा, वैसे ही मुनाफिकों ने भी छठे इमाम को सादिक कहा। मैं आखिरी जुमला गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। जैसे मुश्रिकों ने भी नबी को अमीन कहा, वैसे ही मुनाफिकों ने भी छठे इमाम को सादिक कहा। मुझे कहने दीजिए, जैसे मुश्रिकों का नबी को अमीन कहना उनके नबी बरहक होने की दलील है, वैसे ही मुनाफिकीन का इमाम को सादिक कहना उनके इमाम बरहक होने की दलील। सलावत भेजे हम बस अज़ीज़ो, आइए इन्हीं अल्फाज के साथ गुफ्तगू को तमाम किया जाए और दुआ की जाए कि अल्लाह तमाम बानियान जश्न को, इस नूरानी शाम के मुंतज़मीन को दो दो मासूमों के सदक़े में अजर अज़ीम से नवाजे। वो तमाम शुअरा, वो तमाम मोमिनीन जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उनको भी पैगम्बर इस्लाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का सदक़ा ख़ास अता हो और हमारी पूरी कौम के ऊपर हज़रत हुज्जत की निगहबानी का साया बाक़ी रहे। हमारा शुमार उनके अंसार व आवान में हो और अहले बैत के दुश्मनों के ऊपर अज़ाब शदीद नाज़िल हो, हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील हो। एक बावाज़ बुलंद सलावात के ज़रिए मैं जनाब ज़फ़र साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, ज़फ़र सुल्तान सीतापुरी साहब तशरीफ़ लाएँ और बल्कि पप्पू साहब आप आएँ और जनाब ज़फ़र साहब आ गए। इस नूरानी शाम की नूरानी महफिल में अभी आप आज़ाद के रूबरू थे आली जनाब मौलाना अब्बासी शाह साहब क़िबला। अब मैं इस मस्जिद के मुतवल्ली जनाब तौक़ीर साहब की गुलपोशी के लिए अब्बासी शाह साहब से गुजारिश करूँगा। तौक़ीर साहब इस मस्जिद के मुतवल्ली, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। नारे हैदरी, नारे सलवार। हम मस्जिद इंशाअल्लाह बन मस्जिद के नए मुतवल्ली बने हैं। बाग वाली मस्जिद के नए मुतवल्ली साहब जनाब तौक़ीर साहब, आप हज़रात के रूबरू हैं। आप लोग इनकी हौसला अफजाई के लिए एक बार नारे हैदरी और आप सब मोमिनीन जो भी मौला के चाहने वाले यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपने दिलों की गहराइयों से दुआ करें कि मौला वो दिन जल्द अज जल्द आए कि इस नूरानी शाम की नूरानी महफिल के सदक़े में इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ हो और जल्द अज जल्द इस मस्जिद की तामीर हो। अब मैं बसतुलूस गुजारिश गुजार हूँ नाज़िम मक़ासिदा आली जनाब गुल नक़वी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस महफिल के निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। जनाब गुल नक़वी साहब।
मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, हाज़रीन बाज़म, अभी आप बरादर अकबर ख़तीब इनक़लाब वाली जनाब मौलाना सैयद बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करना है। आइए बग़ैर किसी तमीद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ यूसुफ़ सल्लल्लाहु से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। नारे सलवात। आइए गुजारिश करता हूँ एक और कम से कम आहिल सल्लल्लाहु से के वो तशरीफ़
खैर को तशरीफ लाए, वादा मौला में मंजूर करा दिया। तौक़ीर ये है दीन के सरताज अली, तौक़ीर ये है दीन के सरताज अली, उस ख्वाब से ताबीर की हद आज मिली, उस ख्वाब से ताबीर की हद आज मिली। तय कर चुके जब ख़त्म रिसालत की हदें, तय कर चुके जब ख़त्म रिसालत की हदें, तब जाकर कहीं मंजिले में राज मिली, जाकर कहीं मंजिले में राज मिली। नासलवात कुछ शक नहीं कि शाह मदीना रसूल हैं, कुछ शक नहीं कि शाह मदीना रसूल हैं। हक जिससे मिल सके वो करीना रसूल हैं, हक जिससे मिल सके वो करीना रसूल हैं। इस्लाम की मिसाल है एक बहरे बेकिनार, इस्लाम की मिसाल है एक बहरे बेकिनार। है ना खुदा अली तो सफ़ीना रसूल हैं, है ना खुदा अली तो सफ़ीना रसूल हैं। नाज़िलवात सहारा चमनिस्तान बनाया तूने, के सहारा चमनिस्तान बनाया तूने, और कुफ्र को ईमान बनाया तूने, और कुफ्र को ईमान बनाया तूने। तय कर चुके जब ख़त्म रिसालत से इंसान को इंसान बनाया तूने, इंसान को इंसान बनाया तूने। नाज़िलवात तौक़ीर ये अली बग़ैर किसी पर करम नहीं होता, अली बग़ैर किसी पर करम नहीं होता। करम ना होता तो कोई मोहतरम ना होता, करम ना होता तो कोई मोहतरम ना होता। और तेरी नमाज ना जाने कैसे होती है, तेरी नमाज ना जाने कैसे होती है। अली बग़ैर तो काबा हरम नहीं होता, अली बग़ैर तो काबा हरम नहीं होता। यारे सलवात महबूब इलाही के दुलारे हैं सहाबा, महबूब इलाही के दुलारे हैं सहाबा। दरिया रिसालत के किनारे हैं सहाबा, दरिया रिसालत के किनारे हैं सहाबा। सूरज है मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, सूरज है मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। कुछ इनमें मगर बुग़्ज़ के मारे हैं सहाबा, कुछ इनमें मगर बुग़्ज़ के मारे हैं सहाबा। हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं होता, हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं होता। जो शख्स मुनाफिक है वो सहाबी नहीं होता, जो शख्स ये दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है, ये दो कटे हाथों की बेताब ये फनकारी है। 1400 साल से दरियाए अता जारी है, 1400 साल से दरियाए अता जारी है। और दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको, दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको। वो ये नहीं देखते सैयद है अंसारी, वो ये नहीं देखते सैयद है अंसारी। नाज़िलवात मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते। उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ए मुनकरे क़रार अलीयुन वलीउल्लाह, ए मुनकरे क़रार अलीयुन वलीउल्लाह। दहलीज नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते, दहलीज नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। नारे सलवात हज़रात देखिए, कभी कभी कमेटी के लिए भी कुछ मजबूरियां आयद हो जाती हैं। और अभी हमारी फहरिस्त में 2 मद्दाह अहले बैत और हैं जिन्हें आवाज़ देना है। उसके बाद बाकायदा जो आपके मेहमान शुराए कराम हैं वो बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करेंगे। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ वली साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़। अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको ज़रा से आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि पीछे आने वालों के लिए जगह। एक कतार माफ़ होना मिंबर की मुनासिबत से
क्यों ज़िक्र तेरे होठों पे मौला का नहीं है, क्यों ज़िक्र तेरे होठों पे मौला का नहीं है। क्या खौफ तुझे फातिमा ज़हरा का नहीं है, क्या खौफ तुझे फातिमा ज़हरा का नहीं है। हैदर के फ़ज़ाइल नहीं आते तो उतर जा, हैदर के फ़ज़ाइल नहीं आते तो उतर जा। मौला का है मिंबर तेरे मुल्ला का नहीं है, मौला का है मिंबर तेरे मौला का है मिंबर तेरे मुल्ला का नहीं है। नारे सलवात। एक मनकबत है वो भी समाप्त होना। रसूल खुदा के सलाम से फर्स्ट टाइम पढ़ने पहली बार है मेरी। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई कि बस या मोहम्मद। एक पल में मुस्तफ़ा को अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में मुस्तफ़ा को अपने घर बुलवा लिया। अपने बंदे की खुदा को याद आई ऐसी कि बस या मोहम्मद। गिनते गिनते थक गईं तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गईं तारों की नाजुक उंगलियां। मुस्तफ़ा के हैं ज़मीं पर इतने शैदाई के बस या मोहम्मद या मोहम्मद। देख अब भी वक्त है दामन नबी का थाम ले, देख अब भी वक्त है दामन नबी का थाम ले। वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस या एक दो
शेर हैं बस। जब सूरज पलटाया था मौला अली ने तो किताब लुत्फ़ अमीर हिजाज पढ़ना है, किताब लुत्फ़ अमीर हिजाज पढ़ना है, मैं क्यों चमकता हूँ मुझको ये राज पढ़ना है, मैं क्यों चमकता हूँ मुझको ये राज पढ़ना है, ये कहकर आ गया मगरिब से डूबता सूरज, ये कहकर आ गया मगरिब से डूबता सूरज, मुझको इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है, मुझको इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है, मुझको इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है। नारे सलवात। वली साहब जो बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए आज़ाद सिलसिले में अभी दो नाम और हैं, इनको भी आवाज़ देना है, उसके बाद बाकायदा महफिल का आगाज़ होगा। आइए मैं अब ऐसी अपनी फहरिस्त से एक नाम पेश करता हूँ। हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हमारे कश्मीरी मोहल्ले की एक शख्सियत है जनाब सरताज आलम साहब, जो आज पूरे हिंदुस्तान की वादी में पहचाने जा रहे हैं। और उन्होंने अपने चश्मो चराग जनाब आफ्ताब आलम सल्लल्लाहु को भी, अल्ताफ़ आलम सल्लल्लाहु को भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदह सना का सलीक़ा सिखाया है और उनका नाम हमारी फहरिस्त में है। मैं गुजारिश करता हूँ अल्ताफ़ आलम सल्लल्लाहु से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सादिक़ैन में अपना मंजूम खराज अक़ीदत। अच्छा, ये भी ऐलान समात फरमा लिए कि इख्तिताम महफ़िल बज़रिए कुरानदाज़ी सामाईन हज़रात को तबरुकात पेश किए जाएंगे। मोमिनीन से कुरानदाज़ी में भी शिरकत की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबकी खिदमत में जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद मिसरों से आगाज़ करता हूँ कि अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मोजिज़ा, अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मोजिज़ा, फिर बेपढ़े जहाँ को पढ़ाया ये मोजिज़ा, फिर बेपढ़े जहाँ को पढ़ाया ये मोजिज़ा, फिर एक शहर इल्म बसाया ये मोजिज़ा, फिर एक शहर इल्म बसाया ये मोजिज़ा, हैदर सदर फिर उसमें बनाया ये मोजिज़ा, हैदर सदर फिर उसमें बनाया ये मोजिज़ा, फिर मोजिज़ा किताब का आया जहान में, फिर मोजिज़ा किताब का आया जहान में, अल्लाह बोलता है नबी की ज़बान में, फिर मोजिज़ा किताब का आया जहान में, अल्लाह बोलता है नबी की ज़बान में। और चाहे मिसरे कि जिसका इदराक फ़कत सूरह आराफ करे, जिसका इदराक फ़कत सूरह आराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफ़ाफ़ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफ़ाफ़ करे, और उस मोहम्मद की बुलंदी को वो क्या लिख पाए, उस मोहम्मद की बुलंदी को वो क्या लिख पाए, जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ़ करें, उस मोहम्मद की बुलंदी को वो क्या लिख पाए, उस मोहम्मद की बुलंदी को वो क्या लिख पाए, जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ़ करें। नारे सलवात। कि है खिलकत आलम की वजह कौन मोहम्मद, है खिलकत आलम की वजह कौन मोहम्मद, हर गम की हर दर्द की दवा कौन मोहम्मद, हर गम की हर दर्द की दवा कौन मोहम्मद, हर हाल में महबूब खुदा कौन मोहम्मद, हर हाल में महबूब खुदा कौन मोहम्मद। अरे कुछ शर्म करो हक के नमक क्यों नहीं देते, कुछ शर्म करो हक के नमक क्यों नहीं देते, बेटी को मोहम्मद की फदक क्यों नहीं देते, कुछ शर्म करो हक के नमक क्यों नहीं देते, बेटी को मोहम्मद की फदक क्यों नहीं देते, बेटी को मोहम्मद की फदक क्यों नहीं देते। नालैन मोहम्मद की वहाँ तक है रिसाई, नालैन मोहम्मद की वहाँ तक है रिसाई, जिब्रील की परवाज़ जहाँ काम ना आई, जिब्रील की परवाज़ जहाँ काम ना आई, देता है फ़कत नूर यहाँ नूर दिखाई,
देखा है फ़कत नूर यहाँ दूर निकाई, दिल इसलिए हैदर की सना करता है भाई, दिल इसलिए हैदर की सना करता है भाई, दिल इसलिए हैदर की सना करता है भाई। ये सच है मोहम्मद के ज़माने में सबसे बड़े हैं, ये सच है मोहम्मद के ज़माने में सबसे बड़े हैं, पर मौला अली दोष मोहम्मद पे खड़े हैं। ये सच है ज़माने में अली सबसे बड़े हैं, पर मौला अली। अंगुश्त बदन दान क्यों अफलाक में सब हैं, अंगुश्त बदन दान क्यों अफलाक में सब हैं। किस बात का झगड़ा है ये आई नए रब है, किस बात का झगड़ा है ये आई नए रब हैं। सदक़े में मोहम्मद के अरब और अजम हैं, सदक़े में मोहम्मद के अरब और अजम हैं। सब इनके सबब और ये ज़हरा के सबब हैं, सब इनके सबब और ये ज़हरा के सबब हैं। वल्लाह ये सच है किसी फ़ीसद नहीं होते, वल्लाह ये सच है किसी फ़ीसद नहीं होते। ज़हरा नहीं होती तो मोहम्मद नहीं होते, वल्लाह ये सच है किसी फ़ीसद नहीं होते। ज़हरा नहीं होती तो मोहम्मद नहीं होते। नारे सलवात। अभी चंद में से हम बताने उसी के चंद में से फरमाएँ कि महबूब इलाही के दुलारे हैं सहाबा, महबूब इलाही के दुलारे हैं सहाबा, दरियाए रिसालत के किनारे हैं सहाबा, दरियाए रिसालत के किनारे हैं सहाबा। सूरज है मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, सूरज है मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। कुछ इनमें मगर बुग़्ज़ के मारे हैं सहाबा, कुछ इनमें मगर बुग़्ज़ के मारे हैं सहाबा। हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं होता, हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं होता। जो शख्स मुनाफिक हो सहाबी नहीं होता, हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं होता। जो शख्स मुनाफिक हो सहाबी नहीं होता। असहाबे पैगंबर पे मेरी जान भी कुर्बान, असहाबे पैगंबर पे मेरी जान भी कुर्बान। मैं वार दूँ सब कुछ कहीं मिल जाएं जो सलमान, मैं वार दूँ सब कुछ कहीं मिल जाएं जो सलमान। बुज़र हो हुज़ैफ़ा हो के मिक़दाद मेरी जान, बुज़र हो हुज़ैफ़ा हो के मिक़दाद मेरी जान। हम ऐसे सहाबा पे फ़कत रखते हैं ईमान, हम ऐसे सहाबा पे फ़कत रखते हैं ईमान। बुग़्ज़े अली में जो कभी जागा भी नहीं हो और जंग के मैदान से भागा भी नहीं हो, हम ऐसे सहाबा पे फ़कत रखते हैं ईमान। बुग़्ज़े अली में जो कभी जागा भी नहीं हो और जंग के मैदान से भागा भी नहीं हो। आखिर मेरे साथ फरमाए कि जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, मतलब के लिए अहद वफ़ा तोड़ के भागे, मतलब के लिए अहद वफ़ा तोड़ के भागे। मुँह यूँ मोहम्मद से यूँ मोड़ के भागे, हर जंग में सदा दुश्मन को वो पीठ दिखा के भागे। एक पल को जो ना ठहरे, एक पल जो ना ठहरे शरीयत की हदों में, तुमने उन्हें रखा है सहाबा की सफ़ों में। एक पल जो ना ठहरे शरीयत की हदों में, तुमने उन्हें रखा है सहाबा की सफ़ों में। आखिरी चाय मिसरे बीबी ज़हरा के हवाले से कि हक मांगने बीबी का वो दरबार में जाना, हक मांगने बीबी का वो दरबार में जाना। वारिस हूँ फदक की ये ज़माने को बताना, वारिस हूँ फदक की ये ज़माने को बताना। और ताईद में बाबा की वो तहरीर दिखाना, ताईद में बाबा की वो तहरीर दिखाना। पर फिर भी उन्हें बाग़ फ़िदक का ना मिलना, पर फिर भी उन्हें बाग़ फ़िदक को ना मिलना। ज़हरा को जो झुटलाए लई इब्ने लई हैं, वो सबसे बड़ा झूठा है सिद्दीक़ नहीं है। ज़हरा को जो झुटलाए लई इब्ने लई हैं, वो सबसे बड़ा झूठा है सिद्दीक़ नहीं है। नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आज़ाद एक फ़हरिस्त का और नाम है, वो भी आपके हवाले कर दूँ। गुजारिश करता हूँ जनाब आरिफ सुखनवरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, और उन मोमिनीन से गुजारिश है कि जो बाहर तशरीफ़ फरमा हैं वो बाकायदा फ़र्श महफ़िल पर तशरीफ़ लिए हैं। बाकायदा जनाब आरिफ सुखनवरी साहब के बाद जश्न का बाकायदा आगाज़ होगा। गुजारिश है जनाब आरिफ सुखनवरी साहब से तो तशरीफ़। आप सभी को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारक हो। चंद शेर। जाफर सादिक साहब में चंद शेर। क्या करूं नज़रे हकीकत सादिक़े आले नबी, क्या करूं नज़रे हकीकत
सादिक़े आले नबी। क्या करूं नज़रे हकीकत सादिक़े आले नबी। है बहुत लफ्ज़ों की खिलकत सादिक़े आले नबी। है बहुत लफ्ज़ों की खिलकत सादिक़े आले नबी। काश हासिल हो तेरी आवाज़ सुनने का शरफ। काश हासिल हो तेरी सुनने का शरफ। काश हासिल हो तेरी आवाज़ सुनने का शरफ। इन फ़ज़ाओं की बदौलत सादिक़े आले नबी। इन फ़ज़ाओं की बदौलत सादिक़े आले नबी। साहब जी ये साहब जी हज़रत इमरान का एहसान है। हज़रत इमरान का एहसान है। नातिक़ानी वरना कबू एहसान है। नातिक़ानी वरना कबू एहसान है। रंजो गम का चार तूफान है। रंजो गम का चार तूफान है। साए रहमत तेरा ऐवान है। साए रहमत तेरा ऐवान है। सामने नजरों की है रोज़ा तेरा। सामने नजरों की है रोज़ा तेरा। बेकरार आँखों को इत्मीनान है। बेकरार आँखों को इत्मीनान है। इस वजह जलवे नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। जलवे नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। चश्मे मूसा देख के हैरान है। चश्मे मूसा देख के हैरान है। साहब जी नज़ा के दौरा हो दीदारे अली। नज़ा के दौरा हो दीदारे अली। दिल में आरिफ एक यही अरमान है। दिल में आरिफ एक यही अरमान है। दिल में आरिफ एक यही अरमान है। जनाब आरिफ सुखनवरी साहब जो बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रात देखिए, मैं अपनी निज़ामत के आगाज़ से क़ब्ल एक बात कहना चाहता हूँ अपने तमाम सामाईन हज़रात से कि देखिए, नाज़िम का काम सिर्फ़ इतना होता है कि बानियान और कन्वीनर एक बाग़ सजा कर नाज़िम की खिदमत में पेश कर देता है और नाज़िम का काम ये होता है कि उस बाग़ से एक फूल निकालता है और आपकी खिदमत में पेश कर देता है। बाकी और कोई हक़ नहीं होता है नाज़िम को। किसी फ़हरिस्त से किसी का नाम घटाने का भी हक़ नहीं है नाज़िम को और न किसी का नाम बढ़ाने का हक़ नाज़िम को है। जो मुझे फ़हरिस्त हस्ब मरातिब मिली मैंने आप हज़रात के हवाले कर दी है। अब मैं बाकायदा इस जश्न का आगाज़ करता हूँ, लेकिन गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा हज़रात एक माहौल बना ले ताकि एक शायर आपके हवाले कर दिया जाए। थोड़ा सा ये बरादरान आ जाइए, अंदर आ जाइए, आ जाइए वाहिद भाई, अंदर आ जाइए,
आ जाइए अंदर आइए। देखिए जब आप लोग मस्जिद में बैठ के फुरादा नमाज पढ़ेंगे तो ये अच्छा नहीं है, बाजमात अदा कर लें आप हज़रात। एक सलावात भेजें बुलंद आवाज़ में। देखिए शोराए कराम भी आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा तमीर की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना है, क्योंकि माशाल्लाह मुकम्मल फहरिस्त हो रही है और यह के बाद दीगर शायर आ रहे हैं। आप हज़रात के हवाले मुझे करना है। आइए, क्योंकि जश्न सादिक़ैन है और अभी आपकी निगाहों से एक ईद, अज़ीम ईद, ईद जनाब ज़हरा गुज़री है। खुर्शीद भाई इजाज़त चाहते एक मतलब 3 शेर के ज़रिए इस्तक़बाल है, समात फरमाएँ। थोड़ा सा आमादा हो जाए ज़रा। कि शोहरत न मुझको तख्ते सुलेमान चाहिए, शोहरत न मुझको तख्ते सुलेमान चाहिए, ज़हरा के दर का थोड़ा सा इरफान चाहिए। ऐसे नहीं, शोहरत न मुझको तख्ते सुलेमान चाहिए, ज़हरा के दर का थोड़ा सा इरफान चाहिए, ज़हरा के दर का थोड़ा सा इरफान चाहिए, दुनिया का कोई इल्म न दीवान चाहिए, मदहे बुतूल के लिए कुरान चाहिए। दुनिया का कोई इल्म न दीवान चाहिए, मदहे बुतूल के लिए कुरान चाहिए, मदहे बुतूल के लिए कुरान चाहिए। ज़हरा के दुश्मनों पर तबर्रा किया करो, ज़हरा के दुश्मनों पर तबर्रा किया करो, गर आखिरत का मरहला आसान चाहिए। ज़हरा के दुश्मनों पर तबर्रा किया करो, गर आखिरत का मरहला आसान चाहिए। ज़हरा के दुश्मनों पर तबर्रा किया करो, गर आखिरत का मरहला आसान चाहिए। आखिरी शेर, गर आखिरत का मरहला आसान चाहिए, ज़हरा के दर पर बच्चों गनाया भाई, ज़हरा के दर पर बच्चों का खैयात बन के जा। शेर अगर हो तो बोल दिएगा कि ज़हरा के दर पर बच्चों का खैयात बन के जा, गर और मर्तबा तुझे रिजवान चाहिए। ज़हरा के दर पर बच्चों का खैयात बन के जा, गर और मर्तबा तुझे रिजवान चाहिए। आइए, मैं मनक़बत ख़वानी के लिए हर्फ़ इल्तिमास लेकर हाज़िर हो रहा हूँ बरादरान जनाब नायाब शकील साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और मनक़बत ख़वानी के फ़राइज़ को अंजाम। पढ़ने के बाद थोड़ी सी आवाज़ की ज़रूरत है। नारे तलवार, सबसे पहले आप हज़रात को इस जश्न की मुबारकबाद है और जनाब शहज़ादा गुलरेज़ रामपुरी साहब का एक क़ता अव्वलन हाजिर है, उसके बाद उनका ही कलाम हाजिर करेंगे। एक सलवात और भेजिए बर मोहम्मद वाले सना का बाब खोला जा रहा है, सना का बाब खोला जा रहा है, अभी लफ्ज़ों को तोला जा रहा है, सना का बाब खोला जा रहा
सरे महफिल अली का जिक्र करके, सरे महफिल अली का जिक्र करके, अकीदा का टटोला जा रहा है, सना का बाब खोला जनाब शहजादा गुलरेज रामपुरी साहब का कलाम हाजिर है। सबके सब आबो ताब में सूरज, सबके सब आबो ताब में सूरज, 14 हैं इंतखाब में सूरज, सबके सब आबो ताब में सूरज, खुद को एक बूंद में समेटे हुए, खुद को एक बूंद में समेटे हुए, सुबह दम था गुलाब में सूरज, सुबह दम था गुलाब में सूरज। शेर समाप्त फरमाइए। देखिएगा, एक जर्रा है और कुछ भी नहीं, एक जर्रा है और कुछ भी नहीं, निगाहे बू तुराब में सूरज, निगाहे बू तुराब में सूरज, एक किरण भी कभी न भेजेगा, देखेगा खास तौर से, एक किरण भी कभी न भेजेगा, सहने नस्ले खराब में सूरज, सहने नस्ले खराब में सूरज, सबके सब आब में सूरज, अक्ल के अंधे 14 सदियों से, अक्ल के अंधे 14 सदियों से ढूंढते हैं किताब में सूरज, ढूंढते हैं किताब में सूरज, सबके सब आबो ताब में सूरज, इंतकाम हुसैन लेगा जरूर, इंतकाम हुसैन
भी तो नकाब में सूरज सबके सबके सब आबोताब में सूरज मुनकिरों तब सिरों से बाज आओ मुनकिरों तब सिरों से बाज आओ डाल देगा अज़ाब में सूरज डाल देगा अज़ाब में सूरज। तो खास तौर से शेर समाज मैंने लिखा बहुत अंधेरा है मैंने लिखा बहुत अंधेरा है उसने भेजा जवाब में सूरज उसने भेजा जवाब में सूरज मैंने लिखा बहुत अंधेरा है उसने भेजा जवाब में सूरज सबके सब आबोताब में सूरज। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले। मक्का भी आते माँ ने मुझको पिलाया है गुलरेज माँ ने मुझको पिलाया है गुलरेज घोल कर शीरो आब में घोल कर शीरो आब में सूरज माँ ने मुझको पिलाया है गुलरेज घोल कर शीरो आब में सूरज घोल कर शीरो आब में सूरज। जनाब वफा हैदराबादी साहब के एक मतलब और 4 या 5 शेर और हाजिर एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले में। नाराय तलवार वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर बताओ कैसे कोई सांस ले हवा के बगैर वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर बताओ कैसे कोई सांस
फासले हवा के बगैर वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर। ज़माने भर में फ़क़त एक दर बतूल का है, ज़माने भर में फ़क़त एक दर बतूल का है। जहाँ पर मिलती है खैरात इल्तिजा के बगैर वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर। कहा खुदा ने नबी से पुकारो हैदर को, कहा खुदा ने नबी से पुकारो हैदर को। हुई है फतह कभी शाहे लापता के बगैर वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर। ये बन गए रज़े अल्लाह किस तरह मौला, ये बन गए रज़े अल्लाह किस तरह मौला। कोई नबी ना बना जब तेरी रज़ा के बगैर वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर। ये बन गए रज़े अल्लाह किस तरह मौला, ये बन गए रज़े अल्लाह किस तरह मौला। कोई नबी ना बना जब तेरी रज़ा के बगैर वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर। अबा भी जाइए साहब के मुज़तरिब है जबी, अबा भी जाइए साहब के मुज़तरिब है जबी। हो कैसे सजदा ए ताज़ी मुनाक्श पा के बगैर वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर। कलीम देखिए मैं आस्ती के सांपों से, कलीम देखिए मैं आस्ती के सांपों से।
मुकाबले को खड़ा हूँ किसी असा के बगैर। वो कह जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर। वफा ये हाफिज़ कुरान शायद अंधा है। वफा ये हाफिज़ कुरान शायद अंधा है। लहक लहक के पड़े जा रहा है बाके बगैर। वो कह रहे हैं जियो जिक्र मुर्तज़ा के बगैर। मोहतरम जनाबे बरादरान शकील व नायाब साहब मनक़बत खानी के फ़राइज़ को बाकायदा अंजाम दे रहे थे। शायर अहले बैत जनाब शहज़ादा गुलरेज़ रामपुरी साहब का मुरस्सा कलाम, शायर जनाब वफ़ा हैदराबादी साहब का मुरस्सा कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। आइए हज़रात, हमारे बिरादरान ने जहाँ से बात का अख्तिताम किया, 4 मिसरे पेश करता हूँ और फिर शायर सिर्फ 4 मिसरे हैं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ूँगा 4 मिसरे। पहले आप 14 रबी अव्वल की तरफ अपने जहन को ले चलिए और फिर 4 मिसरे सुन लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा अफसोस इस वक्त इस बात का हो रहा है कि चंद सामे मस्जिद के अंदर हैं और सैकड़ों की तादाद में मस्जिद के बाहर हैं मौजूद। ये अफसोस का मकाम है इस वक्त, और आप हज़रात बाकायदा तबर्रुक भी नोश फरमा चुके हैं। देखिए, आपकी नहीफ सी आवाज़ पे लब्बाइक कहते हुए तमाम शोराए कराम आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हो चुके हैं, और मेरा काम इतना है कि सिर्फ उन्हें आवाज़ देना है। लेकिन आप हज़रात से गुजारिश है कि उनके हौसला अफजाई के लिए आप हज़रात को अंदर फर्शे महफिल पे बैठना पड़ेगा। 4 मिसरे पेश करता हूँ, समात फरमाए हज़रात। 14 रबी अव्वल को जहन में रखिएगा। सुनिए कारी साहब, कि उठता है जब सवाल गमे शह ने क्या दिया। थोड़ा सा बेदार हो जाइए। उठता है जब सवाल गमे शह ने क्या दिया, देता हूं मैं जवाब के जीना सिखा दिया। ऐसे नहीं, उठता है जब सवाल, अब जहां खड़े हैं वहीं से दाद दे दिएगा कि उठता है जब सवाल गमे शह ने क्या दिया, देता हूं मैं जवाब के जीना सिखा दिया। देता हूं मैं जवाब के जीना सिखा दिया। लिखकर यजीद को रज़े अल्लाह दहर में, लिखकर यजीद को रज़े अल्लाह दहर में, क्या है तुम्हारी नस्ल ये तुमने बता दिया। लिखकर यजीद को रज़े अल्लाह दहर में, लिखकर यजीद को रज़े अल्लाह दहर में, क्या है तुम्हारी नस्ल ये तुमने बता दिया। लिखकर यजीद को रज़े अल्लाह दहर में, क्या है तुम्हारी नस्ल ये तुमने बता दिया। आइए हज़रात, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ शायर अहले बैत आली जनाब अज़हर हुसैन शम्मी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सादिक़ैन में मंज़ूम खराज अक़ीदत पेश। एक नारा तलवार हैदरी, आएगा मुझे पता हुआ था। यजीद इब्ने मुआविया पे लानत। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद
गुजर भाई कतई आगाज़ कर रहे हैं, समझिएगा भाई कि अब्बास बोले हमसे ही नज़में जहाँ चले, अब्बास बोले हमसे ही नज़में जहाँ चले, धरती चले ज़मीं चले आसमां चले। अब्बास बोले हमसे ही नज़में जहाँ चले, धरती चले ज़मीं चले आसमां चले, और अपनी जहाँ चले न किसी की वहाँ चले, अपनी जहाँ चले न किसी की वहाँ चले, और चाहें तो अपने साथ ये आबे रवां चले, चाहें तो अपने साथ ये आबे रवां चले, और हो आरज़ू तो मौत बना दें हयात को, हो आरज़ू तो मौत बना दें हयात को, और ले जाएं भर के मश्क में नहरे फुरात को, ले जाएं भर के मश्क में नहरे फुरात को। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु समाज के अफराद कि सीरत की रोशनी कहीं सूरत की रोशनी, सीरत की रोशनी कहीं सूरत की रोशनी, कुरान है मेहरो माह मुनव्वर की रोशनी, कुरान है मेहरो माह मुनव्वर की रोशनी, और कहती है जुल अशीरा की दावत की रोशनी। समाज के अफराद कि कहती है जुल अशीरा की दावत की रोशनी, पहुँची कहाँ कहाँ तेरी हिकमत की रोशनी, पहुँची कहाँ कहाँ तेरी हिकमत की रोशनी, और तासीर नाते अहमद मुरसल तो देखिए, तासीर नाते अहमद मुरसल तो देखिए, फैली हुई है बज़्म में मिदहत की रोशनी, फैली हुई है बज़्म में मिदहत की रोशनी। और समाजिएगा कि आगोश आमना है कि, आगोश आमना है कि हाला है नूर का, आगोश आमना है कि हाला है नूर का, अल्लाह रे तेरी चांद सी सूरत की रोशनी, अल्लाह री तेरी शान सी, अल्लाह री तेरी चांद सी सूरत की रोशनी। और ज़ेरे किसा जो देखा सिराजे मुनीर को, ज़ेरे किसा जो देखा सिराजे मुनीर को, फैला दी इन नमाने तहारत की रोशनी, फैला दी इन नमाने तहारत की रोशनी। समाजिएगा हज़रात शेरी भाई की हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर हैं अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर हैं अली, चादर से छन रही है रिसालत की रोशनी, चादर से छन रही है रिसालत की रोशनी। मोहतरम उस्ताद जनाब रिजवान साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ आराम से। समाजिएगा रिजवान भाई की हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर हैं अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर हैं अली, और चादर से छन रही है रिसालत की रोशनी, चादर से छन रही है रिसालत की रोशनी। और अहले नज़र को साया भी ढूंढे न मिल सका, अहले नज़र को साया भी ढूंढे न मिल सका, अल्लाह रे तेरे कदो कामत की रोशनी, अल्लाह रे तेरे कदो कामत की रोशनी। और समाज के गज़ा की गुल है अबू लहब की सियासत का हर चराग, गुल है अबू लहब की सियासत का हर चराग, और बढ़ती ही जा रही है शरीयत की रोशनी, बढ़ती ही जा रही है शरीयत की रोशनी। ख़ास तौर से तवज्जो समाज की हज़रात कि इसरा की शाम बस हदे कौसैन तक रही, गुलरेज भाई कि इसरा की शाम बस हदे कौसैन तक रही, फिर इसके बाद है तेरी अज़मत की रोशनी, फिर इसके बाद है तेरी असमत की रोशनी। इसरा की शाम बस हदे कौसैन तक रही, फिर इसके बाद है तेरी अज़मत की रोशनी। और ता हश्र जगमगाएगा, ता हश्र जगमगाएगा कारे रसूल पाक, ता हश्र जगमगाएगा कारे रसूल पाक, हल्के में है लिए हुए इस्मत की रोशनी, हल्के में है लिए हुए इस्मत की रोशनी। और ख़ास तौर से तवज्जो जाएंगे हज़रात की, समझिएगा कि क्यों ग़ैबत इमाम में हो शक की तीरगी, क्यों ग़ैबत इमाम में हो शक की तीरगी,
गारे हिरा से फैली है गैबत की रोशनी, गारे हिरा से फैली है गैबत की रोशनी। और लाया हूँ मैं भी बज़्म रिसालत मुआब में, लाया हूँ मैं भी बज़्म रिसालत मुआब में, फ़ानूस मनक़बत में अक़ीदत की रोशनी, फ़ानूस मनक़बत में अक़ीदत की रोशनी। शहरी भाई ख़ास तौर से मक्ता संभालिएगा आप कि फ़ानूस मनक़बत में अक़ीदत की रोशनी। और जर्रार सजदा करके दरे शहरे इल्म पर, जर्रार सजदा करके दरे शहरे इल्म पर, नजमे फलक बनी मेरी किस्मत की रोशनी, नजमे फलक बनी मेरी किस्मत की रोशनी। भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। दो चार शरीफ और इमाम के हवाले से समाज के गज़ा की संभल ए दुश्मन सादिक तू किस गुमान में है, संभल ए दुश्मन सादिक तू किस गुमान में है, अभी भी तीरे तबर्रा मेरी कमान में है, अभी भी तीरे तबर्रा मेरी कमान में है, संभल ए दुश्मन सादिक तू किस गुमान में है, अभी भी तीरे तबर्रा मेरी कमान में है। और जो दिल से अहले सकीफ़ा पकड़ता है लानत, जो दिल से अहले सकीफ़ा पकड़ता है लानत, वो शख्स जाफ़र सादिक तेरी अमान में है, वो शख्स जाफ़र सादिक तेरी अमान में है। और वो होगा कामरान जो फ़िक़े जाफ़री पर चला, वो होगा कामरान जो फ़िक़े जाफ़री पर चला, जहाँ में आदमी एक दौर इम्तिहान में है, जहाँ में आदमी एक दौर इम्तिहान में है। तवज्जो के हज़रात कि इमाम बाड़ा सजाया गया तो ऐसा लगा, इमाम बाड़ा सजाया गया तो ऐसा लगा, मकी हुसैन हैं जन्नत मेरा मकान में है, मकी हुसैन है जन्नत मेरे मकान में है। और ये फैज़ मिदहते सादिक ए शायर मौला, ये फैज़ मिदहते सादिक ए शायर मौला, बला का ज़ोर तेरी फ़िक्र की उड़ान में है, बला की फ़िक्र तेरी उड़ान में है। समझिएगा खुर्शीद भाई कि तू कम सुखन है मगर हक़ की बात करता है वली, तू कम सुखन है मगर हक़ की बात करता है वली, शऊर मदहा तुझे लखनवी ज़ुबान में है, शऊर मदहा तुझे लखनवी ज़ुबान में है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। देखिए ये जाने वालों का फरीज़ा है कि जो हैं तो वो बाहर से कुछ हाँ, और हमारे जॉन साहब बहुत देर से बैठे खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो बैठ जाएं, क्योंकि आप इस वक्त मोहल्ले की नियाबत नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी अंजुमन मकसद हुसैनी की नियाबत कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाएं बज़ा, थोड़ा सा आगे आ जाएं, जो जा रहे हैं उस कम से कम इस पहले को पूरा करें। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, सलावात भेजते हुए आगे आ जाएं बज़ा। देखिए आज़ाद, अभी हमारे अज़हर हुसैन शम्मी साहब ने आगाज़ में सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास भाई, अभी शम्मी भाई ने 4 मिसरे सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से पेश किए। मैं भी चाहता हूँ कि एक नहज के 4 मिसरे आप तक पहुँचाए जाएँ, लेकिन उसको सुनने के लिए आपको वैसी समात बेदार करना पड़ेगी। 4 मिसरे पेश करता हूँ लेकिन हकीकत पर मबनी है, समात फरमा दें। सुनेंगे बरादरान कि अब कीजिए, सुनेंगे, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है, ऐसे नहीं मेरे भाई। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर,
परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अली साहब के परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर। परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। ओ अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भरकर, अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भरकर, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है। अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भरकर, अब्बास निकल। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर। परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। ओ अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भरकर, अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भरकर, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है। इन मिसरों के खालिक मोहतरम जनाब सुल्तान सुरूर लखनवी साहब के इन 4 मिसरों के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मोहतरम जनाब सैफ़ी नक़ी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत। नाम अली किसी ने लिया बस ये जल गए, नाम अली किसी ने लिया बस ये जल गए। अब्बास का जो नाम सुना तो दम निकल गए, अब्बास का जो नाम सुना तो दम निकल गए। जब तीर इधर से दे गए तबर्रा के चल गए, जब तीर इधर से दे गए तबर्रा के चल गए। खिड़कियां बंद कर ली, रास्ते से टल गए। नारा हैदरी, नारा हैदरी, आवाज़ें बुलंद सलवात। हज़रात आप सबकी खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई। 2-4 मिसरे पता हाजिर है भाई क्या है? जो मैंने तेरा कसीदा पढ़ा अबू तालिब, जो मैंने तेरा कसीदा पढ़ा अबू तालिब, पुकार उठा जहां मरहबा अबू तालिब, पुकार उठा जहां मरहबा अबू तालिब। सवाल उठा कि इस्लाम किसको कहते हैं, कलम उठा के फ़कत लिख दिया अबू तालिब। सवाल उठा के इस्लाम किसको कहते हैं, कलम उठा के फ़कत लिख दिया अबू तालिब, कलम उठा के फ़कत लिख दिया अबू तालिब। और इसी सिलसिले के 4 मिसरे और हाजिर है कि जो भी इनके गुलाम होते हैं, जो भी इनके गुलाम होते हैं, वो बड़े नेक नाम होते हैं। पालते हैं जिन्हें अबू तालिब, वो नबी या इमाम होते हैं। पालते हैं जिन्हें अबू तालिब, पालते हैं जिन्हें अबू तालिब, वो नबी या इमाम होते हैं, वो नबी या इमाम होते हैं। और कता हाजिर है। ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगा कि एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा 4 मिसरे हाजिर हैं। पालते हैं जिन्हें अबू तालिब,
नबिया इमाम होते हैं, वो नबिया इमाम होते हैं। और ये क़ता हाजिर है, चाहूँगा कि सुनिएगा, खुर्शीद भाई के ज़लालतों को शराफत का नाम मत देना, ज़लालतों को शराफत का नाम मत देना, के दस्ते संग में शीशे का जाम मत देना, के दस्ते संग में शीशे का जाम मत देना। सबक ये हमको दिया है नबी की बेटी ने, मुनाफिकों को जवाबे सलाम मत। शराफत का नाम मत देना, के दस्त संग में शीशे का जाम मत देना। सबक ये हमको दिया है नबी की बेटी ने, मुनाफिकों को जवाबे सलाम मत देना, मुनाफिकों को जवाबे सलाम मत देना। और ये क़ता हम शक्ल पैगंबर अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में क्या कि खुदा के दीन को नामो निशान हम देंगे, खुदा के दीन को नामो निशान हम देंगे, खिलाफ जुल्म यजीदी बयान हम देंगे, खिलाफ जुल्म यजीदी बयान हम देंगे। कहा हुसैन से अकबर ने रोज़े आशूरा, कहा हुसैन से अकबर ने रोज़े आशूरा, नमाज जिंदा रहेगी अज़ान हम देंगे। कहा हुसैन से अकबर ने रोज़े आशूरा, नमाज जिंदा रहेगी अज़ान हम देंगे, नमाज जिंदा रहेगी अज़ान हम देंगे, नमाज जिंदा रहेगी अज़ान हम देंगे। और ये भी क़ता फरमाए, सुनिएगा अली भाई, सुनिए ये नज़र के हवाले से क़ता है। मुलाहिज़ा फरमाए कि जलालुद्दीन की शान इमामत और बढ़ती है, जलालुद्दीन की शान इमामत और बढ़ती है, लगे बंदिश तो तौफीक़े मवद्दत और बढ़ती है। जलालुद्दीन की शान इमामत और बढ़ती है, लगे बंदिश तो तौफीक़े मवद्दत और बढ़ती है। मैं नज़रे जाफ़र सादिक़ में जितना खर्च करता हूँ, खुदा का शुक्र मेरे घर की बरकत और बढ़ती है। या
जलालुद्दीन की शान इमामत और बढ़ती है, लगे बंदिश तो तौफीक मवद्दत और बढ़ती है। मैं नज़रे जाफ़र सादिक में जितना खर्च करता हूँ, खुदा का शुक्र मेरे घर की बरकत और बढ़ती है, खुदा का शुक्र मेरे घर की बरकत और बढ़ती है। और आखिर कलाम में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शान में एक मतलब चंद अशार आखिर कलाम में फरमाए कि अर्ज़ किया है कि है दीन हक़ के हर मंज़र में पस मंज़र खदीजा का, है दीन हक़ के हर मंज़र में पस मंज़र खदीजा का, जो है इस्लाम का बानी वो है शौहर खदीजा का, जो है इस्लाम का बानी वो है शौहर खदीजा का। और ये दस्तरखान शब्बर है वो मजलिस का तबर्रुक है, ये दस्तरखान शब्बर है वो मजलिस का तबर्रुक है। यूं ही जारी रहेगा हश्र तक लंगर खदीजा का, यूं ही जारी रहेगा हश्र तक लंगर खदीजा का। और अज़ानें मस्जिदों की आज भी आवाज़ देती हैं, अज़ानें मस्जिदों की आज भी आवाज़ देती हैं। बड़ा एहसान है दीन हक़ तुझ पर खदीजा का, बड़ा एहसान है दीन हक़ तुझ पर खदीजा का। हो शेर मुलाहिज़ा हो कि जो टुकड़ों पर पले हैं वो गनी खामोश बैठे हैं, जो टुकड़ों पर पले हैं, जो टुकड़ों पर पले हैं वो गनी खामोश बैठे हैं, जो टुकड़ों पर पले हैं वो गनी खामोश बैठे हैं। कसीदा पढ़ रहे हैं हज़रत बूज़र खदीजा का, कसीदा पढ़ रहे हैं हज़रत बूज़र खदीजा का। वो आखिरी दो शेर के है शौहर शाफ़े महशर तो बेटी खुल्द की मलका, है शौहर शाफ़े महशर तो बेटी खुल्द की मलका। इधर दामाद भी है साक़िए कौसर खदीजा का, है शौहर शाफ़े महशर तो बेटी खुल्द की मलका। इधर दामाद भी है साक़िए कौसर खदीजा का। और नवासों पर नज़र डालो तो है सरदार जन्नत के, कोई बतलाए ये जन्नत है या है घर खदीजा का। नवासों पर नज़र डालो तो है सरदार जन्नत के, कोई बतला ये जन्नत है या है घर खदीजा का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए जो जा रहे हैं वो ये सुन लें कि 5 तबर्रुक पूरे से निकलने जा रहे हैं। आइए मैं गुजारिश करता हूँ सबसे पहले उस्ताद शुरा आली जनाब खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। 2 तबर्रुक वो निकालेंगे। जनाब मीसम रिजवी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। 3 कुरे उनके दस्ते मुबारक से निकलेंगे। 2 कुरे उस्ताद शुरा आली जनाब खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब के दस्ते मुबारक से निकलेंगे। आप आज़ाद अपनी अपनी पर्चियाँ बराए करम अपने हाथ में ले लें और नंबर जिसका निकले वो फ़ौरन आ जाए बराए करम। 3 मरतबा के बाद नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। 359 नंबर 359 359 आ जाइए, आ जाइए। दिए तबरुक दिए 359 दे दिए। अली साहब का पूरा निकला है पहला तबरुक दे दिए। दूसरा निकाल दिए खुर्शीद भाई, आप निकाल दिए। 280 नंबर 280 280। और देखो घर की छत से आवाज़ आ रही है बच्चे की। जब बच्चा बहुत दूर से आ रहे इतनी देर में मैं गुजारिश करूंगा जनाब मीसम रिजवी साहब से कि वो अपने दस्ते मुबारक से कराने। 280 है बेटा, जल्दी से आ जाओ।
ला बेटा, हमारा नंबर है 70। ये 280 इनको दे दिए, तबरुक दे दिए। 286 नंबर 286 286 286 आखिरी मर्तबा ये नंबर पुकारा जा रहा है, इसके बाद कैंसिल हो जाएगा। 286 286 नंबर। अब जिसका भी नंबर हो वो ना आए क्योंकि नंबर कैंसिल हो गया है। 321 देखो वो आ रहा है 321 नंबर 321 आ जाओ बेटा 321 यही है बेटा। हाँ लो ठीक है यही 3 हो चुके हैं। 246 246 246 246 नंबर 246 कैंसिल 284 नंबर 284 284 नंबर आ जाओ बेटा जल्दी से आ जाओ भैया। 284 नारा हैदरी, नारा सलवात। अब्बास भाई तबरुक उठा लिए इनका। हाँ ठीक है 284 दे दिए, तबरुक दे दिए। हाँ हो कितने 4 हो गए। आखिरी पूरा निकल रहा है 346 346 346 346 नंबर 346। देखिए ये कुरानदाजी इसलिए करी गई है बीच में कि मोमिनीन को बताया गया है कि किसी वक्त भी कुरानदाजी किसी शायर के बाद हो सकती है, तो आप हज़रात बराए करम ये फ़र्श महफिल पर ही रहें। 346 नंबर कैंसिल 294 294 है तो आप भी जल्दी तोड़ के शाबाश शाबाश। हाँ ठीक है दे दिए। देखिए हज़रात ये पहले दौर के कुरानदाजी का अख्ताम हुआ। अब किसी वक्त भी किसी शायर के बाद भी कुरानदाजी हो सकती है। देखिए ये तो तहज़ीब आज़ा के ख़िलाफ़ है बात कि आप हज़रात उतनी देर अंदर आए जितनी देर कुरानदाजी हुई। क्योंकि देखिए मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ कर दूँ, आज ये महफ़िल जो हो रही है गहवारे अदब में हो रही है, और जब से हमारे नाइद साहब बैठे हुए, मीसम साहब बैठे हैं, ये तायद फरमाएंगे। देखिए कल हमें महफ़िलें करना बड़ी आसान थी, लेकिन आज इस दौर में महफ़िलें करना मुश्किल है। क्योंकि इसलिए हर शहर की तहज़ीब जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। जब से ये महफ़िलें लाइव हो रही हैं, हर शहर की तहज़ीब जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो जो भी मोमिनीन फ़र्श पर बैठे हैं, इस बात को अपनी मद्देनज़र रखें कि ये महफ़िल सिर्फ यहाँ बाग वाली मस्जिद के लोग नहीं सुन रहे हैं, बल्कि लाइव के ज़रिए पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। तो इस बात का हमें भी और आपको ख्याल रखना है। आइए हज़रात, अब मैं ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि जो इस महफ़िल में बड़ी मेहनतें करता है, बड़ी काविशें करता है, और ये जो डैश सजता है
ये इसी शख्सियत की वजह से सजता है जो इस महफ़िल का कन्वीनर भी है। और उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जब कोई भी जश्न आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में काविशें और कोशिशें करता है तो दुनिया वाले तो उसका अजर नहीं दे सकते हैं, बल्कि शहज़ादी की बारगाह में उसका अजर अज़ीम अता होता है। जिसने 2 रुपए से भी इस महफ़िल में ताउन किया है उसका भी अजर शहज़ादी जानती हैं, जो अपने हाथ पैरों से मेहनत कर रहा है उसका अजर भी शहज़ादी जानती है। तो लिहाजा बस यहाँ शर्त यह है कि यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि किसने कितना खर्च किया है, बल्कि यहाँ ये देखा जाता है कि जिसने दिया है उसकी नीयत कैसी है। जिसने जो कुछ भी दिया है उसकी नीयत कैसी है। तो आइए, बड़ी मेहनतें और काविशें करने के बाद इस शोराए कराम का गुलदस्ता तैयार करने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब ज़फ़र नजफ़ी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश। आराम से, आराम, हम गाएंगे। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ें। एक और सलवात पढ़ें आप। हज़रत, इससे कबल की कलाम पेश करूँ, 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। एक और नारे सलवात का सहारा दें। कि आंसू सा कोई दूर कोई मूंगा नहीं होता, मूंगा नहीं होता। 100 बार यही बात कहूँगा नहीं होता, कहूँगा नहीं होता। हज़रत, आज मेरी आवाज़ से उम्मीद न रखिएगा, काफ़ी थका हुआ हूँ, तबीयत नासाज है। कि आंसू सा कोई दूर कोई मूंगा नहीं होता, मूंगा नहीं होता। 100 बार यही बात कहूँगा नहीं होता, कहूँगा नहीं होता। महफिल में आ गए हो तो खामोश न रहना, महफिल में आ गए हो तो खामोश न रहना, खामोश न रहना। शबीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता, गूंगा नहीं होता। शबीर का आशिक कोई गूंगा नहीं होता, गूंगा नहीं होता। एक सलवात पढ़ें। एक और नारे सलवात का सहारा दे। एक मतलब 4-5 से बहुत नबी का जश्न हुआ, नबी का जश्न हुआ। खुल्द से अली आए, देखेंगे सासुराई। नबी का जश्न हुआ, खुल्द से अली आए। जहन्नमी तो रहे दूर, जन्नती आए। नबी का जश्न हुआ, खुल्द से अली हाजिर करता हूँ बता रखा समातों के हवाले। कि नसात खा के शिफा है,
न करबला का कफन, न सात के शिफा है, न करबला का कफन, कि तुम्हारी कब्र में किस तरह रोशनियाँ, न सात के शिफा है, न करबला का कफन, तुम्हारी कब्र में किस तरह रोशनी आए। नबी का जश्न हुआ खुल्द से अली आए। गुलेर भाई, खुर्शीद भाई देखेंगे, शेर हाजिर करता हूँ बताने खास। अंजुम भाई, दानिश भाई, इजाज़त है कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बतौर खास कि लिखा हुआ है सभी जन्नतों की राहों में। क्या लिखा है बतौर खास शादी भाई? कि लिखा हुआ है सभी जन्नतों की राहों में, लिखा हुआ है सभी जन्नतों की राहों में, कि अली से इश्क हो जिसको इधर वही कि लिखा हुआ है सभी जन्नतों की राहों में, अली से इश्क हो जिसको इधर वही आए। नबी का जश्न हुआ खुल्द से अली आए। खुर्शीद भाई, एक बहुत बड़ी हकीकत है सैफी भाई, आप बड़े भाई हैं मेरे, बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ा आपने, मौला सलामत रखे। हमें ये भी इस बात का इल्म है कि आपकी तबीयत नासाज थी। इस शेर को जो मिसरा में हाजिर करने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि जो दर अहले बैत से मंसूब हो जाता है, जिसको अहले बैत से इश्क होता है, तो किस तरह से आता होती है, बतौर ख़ास समात करेंगे। खुर्शीद भाई, पप्पू भाई, इजाज़त है? जी बिल्कुल। नबी का जश्न हुआ खुल्द से अली आए। लकी भाई शेर हाजिर करता हूँ, देखेंगे कि अली की मदह में अशआर वो भी कहता है। कौन कहता है दूसरे मिसरे में, इंशाल्लाह बात वाज़ेह होगी। अली की मदह में अशआर वो भी कहता है। अली की मदह में अशआर वो भी कहता है कि न जिसको ठीक से उर्दू न फारसी आए। बहुत अच्छे माशाल्लाह, वाह वाह, उर्दू न फारसी आए, क्या कहने वाला। नबी का जश्न खुल्द से अली आए। नबी की मदद
मुझको ठीक से उर्दू न फारसी आए, नबी का जश्न हुआ खुल्द से अली आए। बहुत कीमती शेर हाजिर करने जा रहा हूँ आप तमामी हज़रात की समातों के हवाले। खुर्शीद भाई देखेंगे, अंजुम भाई, बतौर खास सैफी भाई, कि ये कहे दो चांद से, ये कहे दो चांद से मौला की आज आमद है, ये कहे दो चांद से मौला की आज आमद है, कि बिछाने जश्न में जल्दी से चांदनी ये कह दो चांद याली कि ये कह दो चांद से मौला की आज आमद है, कि बिछाने जश्न में जल्दी से चांदनी आए, नबी का जश्न हुआ खुल्द से नबी आए। अब्बास भाई शेर हाजिर करता हूँ, देखेंगे इंशाल्लाह महसूस होंगे। खुर्शीद भाई, जी जी, अच्छा शबाब भाई बैठे हैं, आगे आइए, आगे आइए, तशरीफ भाई। नबी का जश्न हुआ खुल्द से। आज पहली बार शबाब साहब को, मीसम साहब को जुदा जुदा सा देख रहे हैं। एक सलवार करें आप बजा, शेर हाजिर करता हूँ, बता रहे खास समात। और ये बहुत बड़ी हकीकत है, इस मिसरे में मैं हाजिर करने की इजाज़त चाहता हूँ। देखेंगे बहुत बड़ी हकीकत है, ज़िक्र अहले बैत न कभी दबा था, न कभी छुपा था, न कभी कम हुआ था, न कभी होगा। शेर हाजिर करता हूँ, देखेंगे बतौर खास समातों के हवाले। वो महफिलों के इजाफे पा आज है वो महफिलों के इजाफे पा आज है राहें, कि जो चाहते थे कि इस जिक्र में कमी आए, नबी का जश्न हुआ खुल्द से अली आए। और एक ये भी हकीकत है, देखिएगा पप्पू भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप शेर हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा कि ये हमने देखा है, ये हमने देखा है मौला नबी की महफिल में, बतौर खास ये हमने देखा है मौला अली की महफिल में, के फरिश्ते खुल्द से बन बन के आदमी आए, नबी का जश्न खुल्द से अली आए। और खुर्शीद भाई ये दुआया मिसरा हाजिर करता हूँ, देखेंगे शेर इंशाल्लाह महसूस होंगे। सैफी भाई देखेंगे, शाजी भाई बता कि जो फाका रखते हैं माबूद 10 मुहर्रम को, बतौर खास
जो फाका रखते हैं माबूद 10 मुहर्रम को, कभी ना ऐसे घरों में भी मुफलिसी जो फाका रखते हैं माबूद 10 मुहर्रम को, कभी भी ऐसे घरों में न मुफलिसी आए। नबी का जश्न हुआ खुल्द से अली सभी शेरों को काटते हुए मक्ता के बता रखा देखेंगे शाफी भाई, गुल्लेर भाई, कि उन्हें पुकारा गया जब किसी भी मुश्किल में, उन्हें पुकारा गया जब किसी भी मुश्किल में, ज़फ़र नजाब से मदद करने को अली। कि उन्हें पुकारा गया जब किसी भी मुश्किल में, ज़फ़र नजाब से मदद करने को अली आए। नबी का जश्न हुआ खुल्द से अली आए। अली की मदह में अशआर वो भी कहता है, न जिसको ठीक से उर्दू न फारसी आए। नबी का जश्न खुल्द से अली आए। लिखा हुआ है सभी जन्नतों की राहों में, अली से इश्क हो जिसको इधर वही आए। नबी का जश्न हुआ जहन्नमी तो रहे दूर, जन्नती आए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु देखिए जनाबे, ये नूरानी शाम के कन्वीनर जनाबे ज़फ़र नजफ़ी साहब बारगाह सादिक़ैन में मंज़ूम कराज अक़ीदत पेश कर रहे थे और आप हज़रात महसूस हो रहे थे। आइए हज़रात, सिलसिले को आगे बढ़ाना है और एक शायर आपके हवाले करना है, या लफ्ज़ों को बदल के कहूँ कि सिर्फ शायर नहीं बल्कि ख़तीब व शायर आपके हवाले करना है। अब आप जैसे ख़तीब व शायर का इस्तक़बाल करेंगे, यहीं ज़की भाई से गुजारिश है कि स्टेज पे आ जाना। एक सलावत भेजें बुलंद आवाज़ से मोहम्मद।
एक मतला 3 या 4 शेर पढ़ूँगा क्योंकि थोड़ा सा माहौल बनाना है। थोड़ा सा अगर आप हज़रात यहाँ पर अगर सिर्फ यहाँ हैं, जहन के साथ यहाँ हैं तो मिसरों पर बोल दिए। ठीक है भाई, कि हर एक हाल में अश्के अज़ां निकलते हैं, खामोशी से नहीं, हर एक हाल में अश्के अज़ां निकलते हैं, ये वो चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं मेरे भाइयों, हर एक हाल में अश्के अज़ां निकलते हैं, ये वो चिराग हैं जो, इधर वाले भी, ये वो चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं। हुसैन वाले, पप्पू भाई, हुसैन वाले अलम लेके जब निकलते हैं, हुसैन वाले अलम लेके जब निकलते हैं, ये अपने पैरों से फतवों के सर कुचलते हैं। हुसैन वाले अलम लेके जब निकलते हैं, ये अपने पैरों से फतवों के सर कुचलते हैं, ये अपने पैरों से फतवों के सर कुचलते हैं। शेर सुनिएगा, ये अपने पैरों से फतवों के सर कुचलते हैं। कहाँ नसीब तबर्रुक की लज्जतें उनको, मैंने मिसरा पढ़ दिया अजीजों, कहाँ नसीब तबर्रुक की लज्जतें उनको, कहाँ नसीब तबर्रुक की लज्जतें उनको, हराम रिस्क जो खाए हैं हाथ मलते हैं। कहाँ नसीब तबर्रुक की लज्जतें उनको, हराम रिस्क जो खाए हैं हाथ मलते हैं, हराम रिस्क जो खाए हैं। अब एक मंजर आप खुद शेर बोलेगा कि हराम रिस्क जो खाए हैं हाथ मलते हैं। शमी साहब, हराम रिस्क जो खाए हैं हाथ मलते हैं, खिलाफे गम वो निकलते हैं टोलियां लेकर। खिलाफे गम वो निकलते हैं टोलियां लेकर, खिलाफे गम वो निकल, एक सलावात भेजे बुलंद आवाज से मोहम्मद। खिलाफे गम वो निकलते हैं टोलियां लेकर, खिलाफे गम वो निकलते हैं टोलियां लेकर, यजीद शाम की तनख्वाह पर जो पलते हैं। खिलाफे गम वो निकलते हैं टोलियां लेकर, यजीद शाम की तनख्वाह पर जो पलते हैं। अब शेर सुनिएगा, खिलाफे गम वो निकलते हैं टोलियां लेकर, यजीद शाम की तनख्वाह पर जो पलते हैं। न जाने क्या है मुहर्रम का चांद देखते ही, न जाने क्या है मुहर्रम का चांद देखते ही, मुनाफिकीन के ठंडे लहू उबलते हैं। न जाने क्या है मुहर्रम का चांद देखते ही, मुखालिफीन के ठंडे लहू उबलते हैं। अब जिस शेर के लिए मैंने इतने शेर सुनाए, वो शेर आपके हवाले और शायर आपके हवाले। हुसैन वाले आलम लेके जब निकलते हैं, ये अपने पैरों से फतवों के सर को चलते हैं। कहाँ नसीब तबर्रुक की लज्जतें उनको, हराम रिस्क जो खाए हैं हाथ मलते हैं। अगर हुसैन के दुश्मन पर लानतें न करें, अगर हुसैन के दुश्मन पर लानतें न करें, तो नींद आती नहीं करवटें बदलते हैं। अगर हुसैन के दुश्मन पर लानतें, अगर हुसैन के दुश्मन पर लानतें न करें, अगर हुसैन के दुश्मन पर लानतें न करें, तो नींद आती नहीं करवटें बदलते हैं, तो नींद आती नहीं करवटें बदलते हैं। आइए गुजारिश करता हूँ खतीब व शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना दानिश ज़ैदी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। मोहतरम जनाब दानिश ज़ैदी साहब, आइए हज़रात फिर गुजारिश करता हूँ मोमिनीन से जो नज़र मौला से फ़राग़त पा चुके हों, बराए करम फ़र्श महफ़िल पर तशरीफ़ लिए। नाराए तलवार, सबसे पहले आपकी खिदमत में
दो सादिकों की आमद मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे बरादर अजीज़ नाज़िम मक़ासिदा ने जहाँ से गुफ्तगू मुकम्मल की है वहीं से गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। हाजिर कर रहा हूँ 4 मिसरे कि रात दिन बस यही एक ख़ास इबादत कीजिए। रात दिन पप्पू भाई, रात दिन बस यही एक ख़ास इबादत कीजिए। रात दिन बस यही एक ख़ास इबादत कीजिए। दुश्मने आले मोहम्मद से बरात कीजिए। 2 मिसरे हैं कि दुश्मने आले मोहम्मद से बरात कीजिए। आप शिया हैं, यह साबित तभी होगा दानिश। आप शिया हैं, यह साबित तभी होगा दानिश। कातिले फातिमा ज़हरा पर भी लानत कीजिए। कातिले फातिमा ज़हरा पर भी ये भी 4 मिसरे हैं, हाजिर कर रहा हूं, आप आमादा हो के सुने। एक सलवात भेज दें आप हजरात, हमारी पर्ची हमारे पास है। अर्ज कर रहा हूं हुजूर, जी भाई, ये ज़रा पर्चियों का सिलसिला अगर मुकम्मल हो गया हो तो शुरू करूं भाई। आप पढ़िए। मुलादा फरमाए कि मुनाफिकों को उठा देना अपनी महफिल से। बस भाई अर्ज कर रहा हूं, मुलादा फरमाए कि मुनाफिकों को उठा देना अपनी महफिल से। कसम खुदा की यही मुस्तफ़ा की सीरत है। आज की तारीख पेश नज़र रहे। मुलादा फरमाए कि मुनाफिकों को उठा देना अपनी महफिल से। कसम खुदा की यही मुस्तफ़ा की सीरत है। जो अहले बैत के दुश्मन से इत्तिहाद करे। चौथा मिसरा है आपके हवाले। जो अहले बैत के दुश्मन से इत्तिहाद करे वो लाख नेक हो, उस पर खुदा की लानत है। बेशुमार लानत। क्या कहने? जो अहले बैत के दुश्मन से इत्तिहाद करे वो लाख नेक हो, उस पर खुदा की लानत है। वो लाख नेक हो, उस पर खुदा की लानत है। शेर सुन रहे हैं, एक मतला 2 शेर हाजिर कर रहा हूँ। ममदू की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, खुर्शीद भाई अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, लकी भाई कि खुदाए, अर्ज कर रहा हूँ पास भाई, आमादा हो के सुने आप कि जरे भाई, खुदाए पाक की गोया किताब कहते हैं। खुदाए पाक की गोया किताब कहते हैं। कोई जवाब नहीं लाजवाब कहते हैं। कोई जवाब नहीं लाजवाब कहते हैं। शेर नज़र कर रहा हूं। कोई जवाब नहीं लाजवाब कहते हैं। मेरे रसूल के नक्शे कदम का जर्रा है। मेरे रसूल के नक्शे कदम का जर्रा है। जमाने वाले जिसे आफताब कहते हैं। मेरे रसूल के नक्शे कदम का जर्रा है। मेरे रसूल के नक्शे कदम का जर्रा है। जमाने वाले जिसे आफताब कहते हैं। ये हदीस है। शेर में मुलादा फरमाएं कि जमाने वाले जिसे आफताब
आप कहते हैं, हदीस आपके पेश नज़र है, मुलादा फरमाएं, सब मौलाए कायनात को बिला फसल मानने वाले बैठे हुए हैं। इसलिए अली के फजाइल नबी की बस में ना खामोशी से सुने जाते हैं, ना थक करके सुने जाते हैं, ना शक करके सुने जाते हैं, न थक करके सुनिए न शक करके। इसलिए मैं हदीस सुना रहा हूं, अलामात सहूर की अलामतों में इमाम ने, जिस इमाम की शबे विलादत है उसकी हदीस बयान की हुई है। उसने अलामत बयान की है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग हमारे फ़ज़ाइल सुनेंगे और शक करेंगे, उनमें शामिल ना होइए। अब शेर पेश कर रहा हूं कि मेरे रसूल के नक्शे कदम का जर्रा है ज़माने वाले जिसे आफताब कहते हैं, अली का इश्क नसब देख के ही मिलता है। बुलाना फरमाए, अली का इश्क नसब देख के ही मिलता है, ये बात भी तो रिसालत में आप कहते हैं। अली का इश्क नसब देख के ही मिलता है। अली का इश्क नसब देख के ही मिलता है, ये बात भी तो रिसालत में आप कहते हैं, ये बात भी तो रिसालत में आप कहते हैं। जो भी दरियाए अकीदत में उतर जाते हैं, जो भी दरियाए अकीदत में उतर जाते हैं, इश्क़ हैदर के सबब और उभर जाते हैं। जो भी दरियाए अकीदत में उतर जाते हैं, इश्क़ हैदर के सबब और उभर जाते हैं। शायद कोई बात हो, मुलादा फरमाए जहां तक लोग हैं उसकी तवज्जो चाहता हूं, शायद कोई बात हो कि जो भी दरियाए अकीदत में उतर जाते हैं, इश्क़ हैदर के सबब और उभर जाते हैं। या अली कहना है जिन लोगों के मसलक में हराम। अगर दूसरे दूसरे का संचार हो तो ये भी सच्चा। या अली कहना है जिन लोगों के मसलक में हराम, अपने ही पाँव की आहट से वो डर जाते हैं। कहना है जिन लोगों के मसलक में हराम, अपने ही पाँव की आहट से खुद डर जाते हैं। खुद को इन अहले सकीफा से बचाए रखिए, खुद को इन अहले सकीफा से बचाए रखिए। कह के बखील भी यही लोग मुकर जाते हैं। खुद को इन अहले सकीफा से बचाए रखिए, कह के बखील भी यही लोग मुकर जाते हैं। शेर नज़र कर रहा हूं, कह के शेओनो मोहम्मद ने निकाली तलवार। शायद मनकबत का शेर हो, मुलाना फरमाए, कह के शेओनो मोहम्मद ने निकाली तलवार। हम वो बच्चे नहीं जो मौत से डर जाते हैं। ये ओनो मोहम्मद ने निकाली तलवार। हम वो बच्चे नहीं जो मौत से डर जाते हैं, हम वो बच्चे नहीं जो मौत से डर जाते हैं। तुम्हारे जश्न में जो लोग आने वाले हैं, ऐसे ही पढ़ूंगा मतलब चाहे जैसे सुने। तुम्हारे जश्न में जो लोग आने वाले हैं, उन्हीं को शाफ़े महशर बचाने वाले हैं। तुम्हारे जश्न में जो लोग आने वाले हैं, उन्हीं को शाफ़े महशर बचाने वाले हैं। मुनाफिकीन का चेहरा अभी धुआं होगा, अली के नाम का नारा लगाने वाले। चेहरा अभी धुआं होगा, अली के नाम का नारा।
लगाने वाले हैं। नूरानी जश्न है। इंतजामिया शेर सुने, बता रही है ये महफिल की रौनकें हमको। गफर साहब शेर सुनिएगा, बता रही हैं ये महफिल की रौनकें हमको, फलक नशीन भी महफिल में आने वाले हैं। बता रही है ये महफिल की रौनकें हमको, फलक नशीन भी महफिल में, अबू जर भाई आगे आ जाए, फलक नशीन भी महफिल में आने वाले हैं। फलक नशीन भी महफिल में आने वाले हैं। हमारे नाजिम साहब जो दर्द बयान करते हैं वही दर्द मैं भी बयान कर रहा हूं। तमाम हमारे बुजुर्ग लखनऊ मौजूद है, इसलिए कह रहा हूं कि बाहर से आने वाले शुआरा ये कहते हैं कि हम अपना अकीदा सुना, अपना मिजाज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब उनका मिजाज और है और आपका मिजाज और है, मगर मैं हम दोनों का मिजाज सुना रहा हूं। अकीदा हो और मिजाज से मिजाज मिल जाए तो बात पहुंच जाएगी। एक सलावात का सहारा दीजिए, क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। हजरात, इन सारे मरहलों से हम लोग रोज दो चार होते रहते हैं। इजाजत है? देखिए है जी, देखिए एक बात मैं और अर्ज कर दूं, मैं इतनी तकरीर वकीर करता नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन माहौल एक ऐसा, इसलिए लफ्ज़ कह रहा हूँ कि कम से कम शबे विलादत है तो सलावात तो कम से कम भेज ही सकते हैं। मुलाहिदा फरमाए, मुलाहिदा फरमाए। देखिए मैं अपना अकीदा नहीं, आप सबका अकीदा, मैं अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ। सब जितने बैठे इन सब का अकीदा पेश कर रहा हूँ। मुलाहिदा फरमाए कि बता रही है ये महफिल की रौनकें हमको, फलक नशीन भी महफिल में आने वाले हैं। हसब नसब की कसौटी पर वो खरे उतरे, हसब नसब की कसौटी पर वो खरे उतरे, जो ज़ेरे तेग तबर्रा सुनाने वाले हैं। हसब नसब की कसौटी पर वो खरे उतरे, जो ज़ेरे तेग, हसब नसब की कसौटी। हसब नसब की कसौटी पर वो खरे उतरे, जो ज़ेरे तेग तबर्रा सुनाने वाले हैं, जो ज़ेरे तेग तबर्रा सुनाने वाले हैं। शेर नज़र कर रहा हूं कि बदलने वाला है। अबू ज़र भाई शेर सुनिएगा, बदलने वाला है मैदान जंग का मंजर। आमादा होकर सुने भाई जितने लोग भी हैं, बदलने वाला है मैदान जंग का मंजर। हुसैन झूले से असगर को लाने वाले हैं। बदलने वाला है मैदान जंग का मंजर, हुसैन झूले से असगर को लाने वाले हैं। बदलने वाला है मैदान जंग का मंजर, हुसैन झूले से असगर को लाने वाले हैं। हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं। शेर नज़र कर रहा हूँ, अंजुमन से वाबस्ता अफराद बैठे हुए हैं, बहुत नाजुक सा शेर है। मुलाहिदा फरमाए, बदलने वाला है मैदान जंग का मंजर, हुसैन झूले से असगर को लाने वाले। ये बिरादरान सुने, शेर में नज़र कर रहा हूँ, बदलने वाला है मैदान जंग का मंजर, हुसैन झूले से असगर को लाने वाले हैं। पैगंबरों से ये कह दो कि आके बस जाएं। शायद कोई बात हो दूसरे मिसरे में, पैगंबरों से ये कह दो कि आके बस जाएं।
हुसैन दीन की दुनिया बसाने वाले हैं। पैगंबरों से ये कह दो कि आके बस जाए। तबर्रा सुनाने वाले, अरे क्या कह रहे, पैगंबरों से ये कह दो कि आके बस जाए। हुसैन दीन की दुनिया बसाने वाले हैं। अब रबीउल अव्वल के बाद सिलसिला शुरू हो गया महफिल का। आज से माशाअल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता शायर, खुदा इन्हें सलामत रखे, सेहत अता फरमाए, बेहतरीन तरन्नुम अभी आप सुनेंगे। शेर है ये 3 और 4 शाबान आप पेश नजर है। 3 का दिन गुजर रहा है, 4 का सवेरा हो, आप करबला में होते हैं, वहां पहुंचिए। शेर को अब वही होंगे इंशाल्लाह, हम लोग के लिए दुआ फरमाएंगे। शेर नजर बहुत सादा सा शेर है, एक ज़बान है, मुलाहिज़ा फरमाएं। पैगंबरों से ये कह दो कि आके बस जाएं। हुसैन दीन की दुनिया बसाने वाले हैं। ये मुस्कुरा के कहा करबला ने काबे से। ये मुस्कुरा के कहा करबला ने काबे से, हुसैन आ गए अब्बास आने वाले हैं। ये मुस्कुरा के कहा करबला ने काबे से, हुसैन आ गए अब्बास आने वाले हैं। ये मुस्कुरा के कहा करबला ने काबे से, हुसैन आ गए अब्बास आने वाले हैं। हुसैन आ गए अब्बास आने वाले हैं। कसीदा मधे अली का ज़बान कटवा कर, कसीदा मधे अली का ज़बान कटवा कर फराज तार समी सब सुनाने वाले हैं। कसीदा मधे अली का ज़बान कटवा कर फराज तार समी सब सुनाने वाले हैं। आखिरी शेर ये बासु जिसका कर्ज है। अब आपको इख्तियार है, चाहे जैसे सुने। 5 दिन पहले वाली सुनना है या आज वाली? ये मैं इशारा करके गुजर गया हूं। आपको यूं सुनना है या यूं सुनना है, ये आपको इख्तियार है। मुलाहिज़ा फरमाए, अर्ज़ कर रहा हूं कि तुम्हारे जश्न में जो लोग आने वाले हैं उन्हीं को शाफ़े महशर बचाने वाले हैं। मुनाफिकीन का चेहरा अभी धुआं होगा, अली के नाम का नारा लगाने वाले हैं। बता रही हैं ये महफिल की रौनकें हमको, फलक नशीन भी महफिल में आने वाले हैं। हसब नसब की कसौटी पर वो खड़े उतरे जो ज़ेरे तेख तबर्रा सुनाने वाले हैं। बदलने वाला है मैदान जंग का मंजर, हुसैन झूले से असगर को लाने वाले हैं। ये मुस्कुरा के कहा करबला ने काबे से, हुसैन आ गए। ये मुस्कुरा के कहा करबला ने काबे से, हुसैन आ गए। पैगंबरों से ये कह दो कि आके बस जाएं। हुसैन दीन की दुनिया बसाने वाले। शेर नज़र करता हूं कि यही तो करती थी आपस में गुफ्तगू फौजें, यही तो करती थी आपस में गुफ्तगू फौजें। फुरात छोड़ दो अब्बास आने वाले हैं। यही तो करती थी आपस में गुफ्तगू फौजें। फुरात छोड़ दो अब्बास आने वाले हैं। फुरात छोड़ दो अब्बास आने वाले हैं। नजफ की राह पर बैठा हूं इसलिए दानिश। मख्ताबी मुलाहिज़ा फरमा लें, नजफ की राह पर बैठा हूं इसलिए दानिश, गुलाम हूं मुझे आका बुलाने वाले हैं। नजफ की राह पर बैठा हूं इसलिए दानिश, गुलाम हूं मुझे आका बुलाने वाले। खतीब व शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना दानिश ज़ैदी साहब बारगाह मौला में मंजूम कराई अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रात चंद शोराए कराम हैं, माई फेरिस में सिर्फ चंद शोराए कराम। हमारे बरादर ने जहाँ से
बात का अख्तिताम किया गुज़र भाई, वहीं से सिर्फ़ एक मतला और एक शेर पढ़ूँगा, सिर्फ़ एक मतला और एक शेर। अब इख्तियार आपको है, चाहे जैसे सुन लिएगा। ये जितने लोग भी महफिल में आने वाले हैं, ये जितने लोग भी महफिल में आने वाले हैं, घर अपना बागे जिना में बनाने वाले हैं। ये जितने लोग भी महफिल में आने वाले हैं, घर अपना बागे जिना में बनाने वाले हैं। जवाहिरात हैं अश्के गमे हुसैन मेरे, जवाहिरात हैं अश्के गमे हुसैन मेरे। खजाने वालों में हम भी खजाने वाले हैं। जवाहिरात हैं अश्के गमे हुसैन मेरे, खजाने वालों में हम भी खजाने वाले हैं। आइए हजरत, मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी साहब के एक मतलब और एक शेर के बाद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ खतीब व शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना मुंतज़िर हुसैन साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत कहें। गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास तुराबी साहब क़िबला की खिदमत में वो तशरीफ़ लाएँ और 5 टोकन तबर्रुक के, 2 तबर्रुक के टोकन आप निकाल दें या 3 टोकन आप निकाल दें और 2 टोकन मौलाना शकील हाफिज़ साहब के द्वारा। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि तबर्रुक जो आपको मिल रहा है बावन नंबर 52 मौलाना शफीक साहब का ही $392 230 नंबर। ये बच्चे देखिए, तालिब की तरफ से भी इशारा हो रहा है, जो आगे बैठेगा उसके जल्दी देखिए। 290 नंबर 290। आइए गुजारिश करता हूँ अली जनाब मौलाना मुंतज़िर हुसैन साहब से कि तशरीफ़ लाएं, बारगाह मौला मंजूम करा दें। तमाम हाज़िरीन महफ़िल सलाम अलैकुम। अव्वलन तो आप तमामी हज़रात को जश्न नूरानी शाम की मुबारकबाद पेश करते हैं। एक मतलब और एक शेर से आगाज़ करते हैं, देखिएगा आमादा हो जाइएगा जो हज़रात बैठे हुए हैं, जो समाज चलवा रहे हैं। देखिएगा नबी की, मेरे नबी की निशानी है जाफ़र सादिक। बैठ जाओ भैया। मेरे नबी की निशानी है जाफ़र सादिक,
मेरे नबी की निशानी है जाफर सादिक, अली की शोला बयानी है जाफर सादिक। मेरे नबी की निशानी है जाफर सादिक, अली की शोला बयानी है जाफर सादिक। हुआ ये लिखते हुए नाते मुस्तफ़ा महसूस, हुआ ये लिखते हुए नाते मुस्तफ़ा महसूस, मेरे कलम की रवानी है जाफर सादिक, मेरे कलम की रवानी है जाफर सादिक, मेरे कलम की रवानी है जाफर सादिक। दुनिया रसूल की है, ज़माना रसूल का, मखलूक के लबों पर है नारा रसूल का, हर सू दिखाई देता है जलवा रसूल का, दोनों जहां में होता है चर्चा रसूल का। किरदार पेश ऐसा जमाने में कर दिया, मकसद को पढ़ना पड़ा सभी को कसीदा रसूल का। और माना कि अंबिया की सफ़े भी है मोहतरम, लेकिन ये सब के सब है पसीना रसूल का। माना कि अंबिया की सफ़े भी है मोहतरम, लेकिन ये सब के सब है पसीना रसूल का। और राजी किसी भी हाल में उनसे खुदा नहीं। हुजूर जरा सुनिएगा, इधर कान बात सलाम फरमाइएगा। राजी राजी किसी भी हाल में उनसे खुदा नहीं, मिल जाए लाख उनको ठिकाना रसूल का। राजी किसी भी हाल में उनसे खुदा नहीं, मिल जाए लाख उनको ठिकाना रसूल का। दुनिया ये समझ ले कभी ऐसा नहीं होगा, दुनिया ये समझ ले कभी ऐसा नहीं होगा, बन जाए कोई खुद से खलीफा नहीं होगा। दुनिया ये समझ ले कभी ऐसा नहीं होगा, बन जाए कोई खुद से खलीफा नहीं होगा। कायम की उन्हीं लोगों पर तलवार चलेगी। अब यहाँ पर एक एतराज किया जाए कि 70,000 मौलवियों की गर्दन काटी जाएगी, तो उसमें गेहूं के साथ घुन भी पीस दिए जाते हैं। अब सुनिएगा कि कायम की उन्हीं लोगों पर तलवार चलेगी जो मौलवी कहता है तबर्रा नहीं होगा। जो मौलवी कहता है तबर्रा नहीं होगा, जो मौलवी कहता है तबर्रा नहीं होगा। अब खामोशी से शेर सुन लिए कि उससे इतराज होता है, हम लोग कहते नहीं आयशा अम्मी का तबर्रा, जो करते नहीं आयशा अम्मी का तबर्रा, उस शख्स का माँ बाप से रिश्ता नहीं होगा, उस शख्स का माँ बाप से रिश्ता नहीं होगा। उस शख्स का माँ बाप से रिश्ता नहीं होगा। एक मतलब कुछ शेर मुलाहिजा फरमा लिए, ताज़ा तरीन है, भाप निकल रही अभी इसमें से। यही है कुफ्र को ईमान बताने वाले लोग। सरकार मुतवज्जो हो जाइए तो कुछ पेश कर दिया कि यही है कुफ्र को ईमान बताने वाले लोग, यही है कुफ्र को ईमान बताने वाले लोग, अली के जिक्र पर चेहरा बनाने वाले लोग। यही है कुफ्र को ईमान बताने वाले लोग, अली के जिक्र पर चेहरा बनाने वाले लोग। जमीन पर बैठ के कसरे जिना बनाएंगे, जमीन पर बैठ के कसरे जिना बनाएंगे। हैं जो भी बज़्म मसर्रत में आने वाले लोग, हैं जो भी बज़्म मसर्रत में आने वाले लोग, और उन्हीं को फेंकेगा दोज़ख में औंधे मुँह खालिक, उन्हीं को फेंकेगा दोज़ख में औंधे मुँह खालिक। जो है अली की फजीलत घटाने वाले लोग, जो है अली की फजीलत घटाने वाले लोग। लकीर काबे की जब उनसे मिट नहीं पाई, लकीर काबे की जब उनसे मिट नहीं पाई, हमें मिटाएंगे क्या ये जमाने वाले लोग, हमें मिटाएंगे क्या ये जमाने वाले लोग। नजर वो आएंगे महशर में अंबिया के करीब, नजर वो आएंगे महशर में अंबिया के करीब, गमे हुसैन में आंसू बहाने वाले लोग। नजर वो आएंगे महशर में अंबिया के करीब, गमे हुसैन में आंसू बहाने वाले लोग। मिलेंगे वो सभी शब्बीर ही के खेमे में, मिलेंगे वो सभी शब्बीर ही के खेमे में। सेना की नोक पर कुरान सुनाने वाले लोग, सेना की नोक पर कुरान सुनाने वाले लोग। शेर में अगर हकीकत हो
तो अपने हाथों को जुम्बिश देकर बता दिएगा कि सच्चाई है कि वो बांटते हैं जमाने में दौलते हर सू, वो बांटते हैं जमाने में दौलते हर सू, दरे हुसैन से खैरात पाने वाले लोग। वो बांटते हैं जमाने में दौलते हर सू, दरे हुसैन से खैरात पाने वाले लोग। है किस शजर से, है किस शजर से वो इस बात की करें तहकीक, है किस शजर से वो इस बात की करें तहकीक, अज़ाए शाह पर फतवे लगाने वाले लोग। है किस शजर से वो इस बात की करें तहकीक, अज़ाए शाह पर फतवे लगाने वाले लोग। और सुन लिया आपके आगे आए हम सबके मिजाज का शेर, कहा जाए कि पूरी लखनऊ का ये मिजाज है, कुछ लोगों का नहीं। सुनिएगा, अज़ाए शाह पर फतवे लगाने वाले लोग बचेंगे बस वही दोज़ख के जलते शोलों से, बचेंगे बस वही दोज़ख के जलते शोलों से, उमर खबीस का पुतला जलाने वाले लोग। बचेंगे बस वही दोज़ख के जलते शोलों से। उमर खबीस का पुतला जलाने वाले लोग। और सुनिए, बानियाने महफिल के कहा जाए कि ये शेर नजर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि कभी न होगा अंधेरा तुम्हारी तुरबत में, कभी न होगा अंधेरा तुम्हारी तुरबत में, ऐ जश्न नूर की महफिल सजाने वाले लोग। कभी न होगा अंधेरा तुम्हारी तुरबत में, ऐ जश्न नूर की महफिल सजाने वाले लोग। एक दुरूद पढ़ दिए मिलजुल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो मतलबे और एक मतलब दो तीन शेर आखिरी में गर दिल में गमे सिबते पैगंबर न मिलेगा, गर दिल में गमे सिबते पैगंबर न मिलेगा, मर जाएगा जन्नत में तुझे घर न मिलेगा, मर जाएगा जन्नत में तुझे घर न मिलेगा। और दुनिया उसे हैदर से मिलाने में लगी है, दुनिया उसे हैदर से मिलाने में लगी है, रुतबे में जो कंबर के बराबर न मिलेगा, रुतबे में जो कंबर के बराबर न मिलेगा, रुतबे में जो कंबर के बराबर न मिलेगा। बख्शी है खुदा ने हमें हैदर की विलायत, बख्शी है खुदा ने हमें हैदर की विलायत, कम ज़र्फ को नायाब ये गौहर न मिलेगा, कम ज़र्फ को नायाब ये गौहर न मिलेगा। दो बार फिदा इब्ने मज़ाहिर हुए शह पर, दो बार फिदा इब्ने मज़ाहिर हुए शह पर, ये जज्बा नुसरत तो कहीं पर न मिलेगा, ये जज्बा नुसरत तो कहीं पर न मिलेगा। क्या जाऊं रसूलों के इलाकों में मैं असगर, क्या जाऊं रसूलों के इलाके में मैं असगर, कोई भी तेरे कद के बराबर न मिलेगा, कोई भी तेरे कद के बराबर न मिलेगा। और कहा जाए कि हस्सान शेर पेश करने जा रहा हूं, मुलाजा फरमाए वो देख ले सैराब किया शाह ने हुर को, वो देख ले सैराब किया शाह ने हुर को, जो कहते थे सहरा में समंदर न मिलेगा, वो देख ले सैराब किया शाह ने हुर को, जो कहते थे सहरा में समंदर न मिलेगा, जो कहते थे सहरा में समंदर न मिलेगा। गहवारे असगर का करम हो गया जिस पर, गहवारे असगर का करम हो गया जिस पर, फितरुस की तरह वो भी जमीन पर न मिलेगा, फितरुस की तरह वो भी जमीन पर न मिलेगा। अब्बास का वो शहर आतश है कि जहां पर, अब्बास का वो शहर आतश है कि जहां पर दरिया कभी औकात के बाहर न मिलेगा, अब्बास का वो शहर आतश है कि जहां पर दरिया कभी औकात के बाहर न मिलेगा, अब्बास का वो शहर आतश है कि जहां पर दरिया कभी औकात के बाहर न मिलेगा। आखिरी शेर के ये अश्क़ अज़ा है इसे हल्का न समझना, ये अश्क़ अज़ा है इसे हल्का न समझना, महशर में कोई इसके बराबर न मिलेगा, ये अश्क़ अज़ा है इसे हल्का न समझना, महशर में कोई इसके बराबर न मिलेगा, ये अश्क़ अज़ा है इसे हल्का न समझना,
महशर में कोई इसके बराबर न मिलेगा। ये अश्क अज़ा है, इसे हल्का न समझना, महशर में कोई इसके बराबर न मिलेगा। जनाबे मुंतज़िर हुसैन साहब बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रात, ये मजबूरी हो गई हमारे लिए इस वक्त, क्योंकि आज की महफिल के मक़ता मक़ासिदा उस्ताद शुरा आली जनाब खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब अभी तक हम लोगों की निगाहों के एतबार से, लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियाँ आयद हो जाती हैं हम लोगों के लिए। अब हज़रात जश्न सादिक़ैन के वसीले से सब मिलकर, जो अंदर हैं जो बाहर हैं, वो सब मिलकर बारगाह सादिक़ैन में दुआ फरमा दें तो उस्ताद शुरा आली जनाब खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब की अहलिया को मुकम्मल शिफ़ाए कामिला मिला, क्योंकि माशाअल्लाह बहुत खिदमत कर रहे हैं। मुसलसल 6-7 महीने से हम देख रहे हैं कि मुसलसल खुर्शीद साहब खिदमत कर रहे हैं अपनी अहलिया को। खुदा उनकी अहलिया को मुकम्मल शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। हमारे मुंतज़िर साहब ने ये अश्क अज़ा है, इसे हल्का न समझना। एक उस्ताद को आवाज़ देना है तो अब एक उस्ताद के लिए कुछ अशार आपके हवाले कर रहा हूँ, लेकिन बड़े संजीदगी के साथ पढ़ूँगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि नाज़िम को बड़ी ज़ोर से आवाज़ निकालना पड़ती है, तब मजमा बोलता है, लेकिन कभी कभी हम लोग बड़ी खामोशी के साथ नायाब शेर आपके सामने पढ़ के देखते हैं कि आपका जहन यही है या महफिल के बाहर। उस्ताद को आवाज़ देना है, उस्ताद शुरा का एक मतला दो शेर। आंसुओं को हमने जब फर्शे अज़ा पर रख दिया, आंसुओं को अब देखना है मुझे कि आपकी कैफियत क्या है, कि आंसुओं को हमने जब फर्शे अज़ा पर रख दिया, मादरे सरवर ने उनका नाम गौहर रख दिया। आंसुओं को हमने जब फर्शे अज़ा पर रख दिया, मादरे सरवर ने उनका नाम गौहर रख दिया, मादरे सरवर ने उनका नाम गौहर रख दिया। ये खबर आई है, कायम भाई वहीं से सुन लिएगा शेर, कि ये खबर आई है दरिया की तराई से अभी, शेर की परछाई ने लश्कर कुचल कर रख दिया। अरे ये खबर आई है दरिया की तराई से अभी, शेर की परछाई ने लश्कर कुचल कर रख दिया। कैफियत देखना है मुझे आपकी। शेर की परछाई ने लश्कर कुचल कर रख दिया। खूबसूरत मंजरों से सज रही थी करबला, खूबसूरत मंजरों से सज रही थी करबला, एक हंसी आगे बढ़ी एक और मंजर रख दिया। खूबसूरत मंजरों से सज रही थी करबला, एक हंसी आगे बढ़ी एक और मंजर रख दिया। आंसुओं को हमने जब फर्शे अज़ा पर रख दिया, मादरे सरवर ने उनका नाम गौहर रख दिया। ये खबर आई है दरिया की तराई से अभी, शेर की परछाई ने लश्कर कुचल कर रख दिया। खूबसूरत मंजरों से सज रही थी करबला, एक हंसी आगे बढ़ी एक और मंजर रख दिया। रोजे महशर की नुमाइश में मेरा अश्के अदा, रोजे महशर की नुमाइश में मेरा अश्के अदा, हर पैगंबर ने उठाया दाम सुनकर रख दिया। रोजे महशर की नुमाइश में मेरा अश्क, रोजे महशर की नुमाइश में मेरा अश्के अदा, रोजे महशर की नुमाइश में मेरा अश्के अदा, हर पैगंबर ने उठाया दाम सुनकर रख दिया। इन मिसरों के खालिद मोहतरम जनाब सुल्तान सुरूर लखनवी साहब के इन मिसरों के ज़ैल में मैं हर्फ इल्तिमास लेकर हाजिर हो रहा हूँ। बकमाल अदब आली जनाब खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सादिक़ैन में मंजूम करा।
मौजूद सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब नाज़िम महफिल अली जनाब मोहम्मद नकी साहब का कि उन्होंने मेरी अहलिया के लिए दुआ फरमाई। ज़ाहिर आप बाकी बहुत से तलाज़ में मौजूद हैं, हमारे करीबी हैं, वो वाक़ई भी हैं कि मैं 7-8 महीने नहीं तो करीब 10 महीने हो गए मैं पूरी साहब बड़ा मुश्किल है। तो आज मैं कह के आता तो मैं 1 घंटे के जा रहा हूँ, मेरी गुजारिश मान ली है और हम लोगों का मिजाज ये है कि हम कोशिश करते हैं कि मज़े ममदूह पर ही पढ़ा जाए। ये बड़ा मसला हमारे लिए हो जाता है माफ़ी। बहरहाल मौला करम होगा इंशाअल्लाह हम जानते हैं। और अश्क अदा का सिलसिला मुसलसल बात चल रही है, चाहे से पढ़े देता हूँ, अभी हालत होता हूँ, उसके बाद शाशर पर एक बार नारे सरबात शाह फरमाएं। याकूत सुर्ख आबे रवा भी गुहर भी है, याकूत सुर्ख आबे रवा भी गुहर भी है, आंसू हमारा मरहमे ज़ख्मे जिगर भी है। आबे रवा भी गुहर भी है, आंसू हमारा मरहमे ज़ख्मे जिगर भी है। तो तासीर के मतलब मुझे पहले पढ़ा दो, तासीर आह में है, दुआ में असर भी है। तासीर आह में है, दुआ में असर भी है। वो है ज़िंदगी की शाम तो होना सहर भी है, ज़िंदगी की शाम तो होना सहर भी है। उसके बाद ये मतलब था कि याकूत सुर्ख आबे रवा भी गुहर भी है, आंसू हमारा मरहमे ज़ख्मे जिगर भी है। समापन शेर 2 शेर बोलना चाहिए कि शामिल है दिल का खून जो तख्लीक़ अश्क में, ये आंसू जो बनता है, शामिल है दिल का खून जो तख्लीक़ अश्क में, तो शोला सिफत ये क़तरे शबनम असर भी है। शोला सिफत ये क़तरे शबनम असर भी है। अब आखिरी शेर से गौहर ये माँ की इफ़्फ़तो इस्मत के है दलील, गौहर ये माँ की इफ़्फ़तो इस्मत के है दलील, और इसमें कदर के पाक नसब का असर भी है। सबका इसमें कदर के पाक नसब का असर भी है। नारे सलवा पढ़े और चंद शाह पढ़ा। यासीन व मुज़म्मिल या महबूब खुदा कहिए, यासीन व मुज़म्मिल या संजीदा शेर महबूब खुदा कहिए, जब नाम नबी आए तब सल्ले अला कहिए। नारे सलवा जब नाम नबी आए तब सल्ले अला कहिए। और क्यों आप मोहम्मद को कुरान से जुदा कहिए, क्यों आप मोहम्मद को कुरान से जुदा कहिए, कुरान को मोहम्मद के लफ्ज़ों में ढला कहिए, कुरान को मोहम्मद के लफ्ज़ों में ढला कहिए। और समा हुआ है मिलता है सुकून इससे खुद क़ल्ब मोहम्मद को, मिलता है सुकून इससे खुद क़ल्ब मोहम्मद को, कमली को मोहम्मद की ज़हरा की रिदा कहिए। मिलता है सुकून इससे खुद क़ल्ब मोहम्मद को, कमली को मोहम्मद की ज़हरा की रिदा कहिए। और उल्फत से अबू तालिब परवान चढ़ाते हैं, उल्फत से अबू तालिब परवान चढ़ाते हैं, इमरान की गोदी में इस्लाम पला कहिए। इमरान की गोदी में इस्लाम पला कहिए। अब से को पीछे से हैं कि एक नूर के 2 टुकड़े दोनों हैं बराबर के, एक नूर के 2 टुकड़े दोनों हैं बराबर के, महबूब खुदा कहिए या शेर खुदा कहिए। एक नूर के 2 टुकड़े दोनों हैं बराबर के, महबूब खुदा कहिए या शेर खुदा कहिए।
और इस्लाम का सिक्का अब 2 नामों से चलता है। इस्लाम का सिक्का अब 2 नामों से चलता है। कह लीजिए मदीना या फिर करबला कहिए। इस्लाम का सिक्का अब 2 नामों से चलता है। कह लीजिए मदीना या फिर करबला कहिए। अब शेर समाएं कि 2 शेरों पढ़ना सीखते हैं कि 2 लफ्ज हैं, दोनों के बस एक ही मानी है। 2 लफ्ज हैं, दोनों के बस एक ही माना है। या अर्श ओला कहिए या फर्श अज़ा कहिए। दो लफ्ज हैं, दोनों के बस एक ही माना है। या अर्श ओला कहिए या फर्श अज़ा कहिए। इसी तरह से 2 लफ्ज़ों में दुनिया की हर चीज़ सिमट आई। 2 लफ्ज़ों में दुनिया की हर चीज़ सिमट आई। या नुक्ते बा कहिए या अश्के अज़ा कहिए। दो नुक्तों में दुनिया की हर चीज़ सिमट आई। या नुक्ते बा कहिए या अश्के अज़ा कहिए। नारे सबा पढ़ते हैं चंद शेर। और इसमें जो हमारे मिजाज नाज़िम साहब भाई मूसा की रोशनी है, ज़ियाएं अली की हैं। मूसा की रोशनी है, ज़ियाएं अली की हैं। ये मेहरुमाह ये काह कशाएं अली की हैं। ये मेहरुमाह ये काह कशाएं अली की हैं। समझ ये हर्फ लफ्ज़ और ये सदाएं अली की हैं। ये हर्फ लफ्ज़ और ये सदाएं अली की हैं। और सूरे ये आयतें ये दुआएं अली की हैं। सूरे ये आयतें ये दुआएं तो संजीद सुने माशाअल्लाह। एक बार नारे सलमा पढ़े जरा। सूरे ये आयतें ये दुआएं अली की हैं। ये सलसबीलो कौसरो तूबा ये अर्श फर्श। ये सलसबीलो कौसरो तूबा ये अर्श फर्श। जन्नत की खुशगवार हवाएं अली की हैं। ये समझ में। हाँ ये सलसबीलो कौसरो तूबा ये अर्श फर्श। जन्नत की खुशगवार हवाएं अली की हैं। अब समझ हुआ बतौर ख़ास कि सारे हुसैनियों के सरों पर जहान में समझा माशाल्लाह हुसैनियों मुजमा है। सारे हुसैनियों के सरों पर जहान में और छाई हुई करम की घटाएं अली की हैं। छाई हुई करम की घटाएं अली के हैं। अब यहाँ सुनिए 2-3 शेर मैंने इसमें हिंदी काफ़ी इस्तेमाल किए कि मशरिक़ हो या शुमाल हो, मगरिब हो या जुनूब। मशरिक़ हो या शुमाल हो, मगरिब हो या जुनूब। धरती गगन समेत दिशाएं अली की हैं। मगरिब हो या शुमाल हो, मशरिक़ हो या शुमाल हो, मगरिब हो या जुनूब। धरती गगन समेत दिशाएं अली की हैं। और गारे हिराओ शेबे अबू तालिब करीम। गारे हिराओ शेबे अबू तालिब करीम। संसार की महान गुफाएं अली की हैं। संसार की महान गुफाएं अली की। समा हमारे 4 शेर रह गए हैं गुफाएं अली। अब समा बतौर खास शेर के काबे में जो लगाई खलीलो ज़बीन। काबे में जो समा हमारे काबे में जो लगाई खलीलो ज़बीन ने। सारी पवित्रतम शिलाएं अली की हैं। काबे में जो लगाई खलीलो ज़बीन ने। काबे में जो लगाई खलीलो ज़बीन ने। सारी पवित्रतम शिलाएं अली की हैं। और बस तमाम 2-3 शेर के अल्लाह की किताब में सूरों की शक्ल में। अल्लाह की किताब में
सूरों की शक्ल में लिखी हुई ये सत्य कथाएं अली की हैं। अल्लाह की किताब में, अल्लाह की किताब में सूरों की शक्ल में लिखी हुई ये सत्य कथाएं अली की हैं, की हुई ये सत्य कथाएं अली की हैं। ये इल्म फन अदब है इन्हीं के तुफैल में, ये इल्म फन अदब है इन्हीं के तुफैल में। विज्ञानों ज्ञानों शिल्प कलाएं अली की हैं। विज्ञानों ज्ञानों शिल्प कलाएं ये इल्म फन अदब है इन्हीं के तुफैल में। विज्ञान और ज्ञान और शिल्प कलाएं अली की हैं। बस अब छोड़ रहा हूँ, बस एक आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ के बाद आपसे पूछता हूँ। वो सब ये इल्म फन अदब की इन्हीं के तुफैल में। विज्ञान और ज्ञान और शिल्प कलाएं अली की हैं। और अब बस समझ आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि वो तो इस्लाम के आखिरी शेर इस्लाम के बने हैं। देखिए शेर काफ़ी हिंदी के ज़रूर हैं, लेकिन मैंने सच्चाई करने की कोशिश की है। इस्लाम के बने हैं कवानीन, इस्लाम के बने हैं कवानीन ये जहां। इस्लाम के बने हैं कवानीन ये जहां, वो सब की सब विधान सभाएं अली की हैं। इस्लाम के बने हैं, इस्लाम के बने हैं कवानीन ये जहां, वो सब की सब विधान सभाएं अली की हैं। मद्दा भी हूँ मरसिया खां भी अदीब भी, मद्दा भी हूँ मरसिया खां भी अदीब भी, मौला करम है अदीब। खुर्शीद मुझ पर खास सताएं अली की। ये थे शायर अहले बैत आली जनाब खुर्शीद रज़ा फतेहपुरी साहब, जो अपना उस्तादाना कलाम आपके समाज के हवाले कर रहे थे। आइए हजरात, महफिल के पहले दौर का इख्तिताम हुआ और दूसरे दौर के आगाज़ के लिए मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ आली जनाब इजहार हुसैन ज़र्रे साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम करा जाए। वो हज़रात जो बाहर तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश है कि हमारी फेरिस्त में चंद शोराए कराम हैं। जनाब मेहंदी महमूदाबादी साहब, जनाब अंजुम कदीरी साहब, जनाब खुशरूद मुस्तफ़ा साहब और जनाब ज़की भारती साहब, ये चंद शोराए कराम हैं जो यके बाद दीगर बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन्हें समात फरमाकर और कुरानदाज़ी में शिरकत फरमा कर जाए। नारे सलवार। एक और सलवार भेजिए मोहम्मद। मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या क्या नबी का है, मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या क्या नबी का है। कुरान है नबी का तो काबा नबी का है, कुरान है नबी का तो काबा नबी का है। दुनिया सना करे न करे इसकी फ़िक्र क्या, दुनिया सना करे न करे इसकी फ़िक्र क्या। कुरान के लबों पर क़सीदा नबी का है, कुरान के लबों पर क़सीदा नबी का है, कुरान के लबों पर क़सीदा नबी का है। एक और सलवार भेजिए मोहम्मद आलम।
जिक्र नबी से रहता हूँ सरशार रात दिन, जिक्र नबी से रहता हूँ सरशार रात दिन, सब में हसीन मशगला ये जिंदगी का है, सब में हसीन मशगला ये जिंदगी का है। महके हुए हैं जिक्र नबी के। एक सलवात भेजिए मोहम्मद पर। महके हुए हैं गुलशने जिक्र अली के फूल, महके हुए हैं गुलशने जिक्र नबी के फूल। महसूस हो रहा है कि मौका खुशी का है, महसूस हो रहा है कि मौका खुशी का है। इनके हर एक अदू पर तबर्रा किया करो, इनके हर एक अदू पर तबर्रा किया करो। सब में बड़ा सबूत यही दोस्ती का है, सब में बड़ा सबूत यही दोस्ती का है। एक और सलवार भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। हर एक लफ्ज है सूरज मेरा बराए नबी, हर एक लफ्ज है सूरज मेरा बराए नबी। मेरे लबों पर भी रोशन है यूं सनाए नबी, मेरे लबों पर भी रोशन है यूं सनाए नबी। ये सातों आसमां उसको बुलंद कैसे करें, ये सातों आसमां उसको बुलंद कैसे करें। किसी को अपनी नज़र से अगर गिराए नबी, किसी को अपनी नज़र से अगर गिराए नबी, वो जब भी चाहे नया आफ़ताब खल्क़ करे, वो जब भी चाहे नया आफ़ताब खल्क़ करे। नसीब से जिसे मिल जाए खाके पाए नबी, नसीब से जिसे मिल जाए खाके पाए नबी, नसीब से जिसे मिल जाए खाके पाए नबी। मैं दुश्मनाने नबी को पसंद कैसे करूं, मैं दुश्मनाने नबी को पसंद कैसे करूं। मेरा खुदा भी वही है जो खुदाए नबी, मेरा खुदा भी वही है जो खुदाए नबी। एक सलवार दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जो खुदाए नबी वो जब भी चाहे नया। एक और सलवार दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। वहाँ पर कुछ नहीं जर्रे की हैसियत के जहाँ, वहाँ पर कुछ नहीं जर्रे की हैसियत के जहाँ। तलाश करता है सूरज भी नक्शे पाए नबी, तलाश करता है सूरज भी। मोहतरम जनाब इजहार हुसैन ज़र्रे साहब के बाद कई हजरात फेरिस का एक नाम मुंतज़िर साहब। मोहतरम जनाब इजहार हुसैन ज़र्रे लखनवी साहब। देखिए भाई कि वो लफ्ज़ ढूंढ के लाए कलम बराए रसूल, वो लफ्ज़ ढूंढ के लाए कलम बराए रसूल। खुशी से झूम उठे महफिले सनाए रसूल, वो लफ्ज़ ढूंढ के लाए कलम बराए रसूल। खुशी से झूम उठे महफिले सनाए रसूल। शेर सुना नौजवानों कि खुशी से। आइए मामू एक सलावत भेजें बुलंद आवाज़ से। मक्ता मकासद आले जनाब एजाज अली साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब फुरकान लखनवी साहब भी आ चुके हैं। मैं फुरकान साहब को ही आवाज़ दूंगा इसके बाद कि वो लफ्ज़ ढूंढ के लाए कलम बराए रसूल। खुशी से झूम उठे महफिले सनाए रसूल, खुशी से झूम उठे महफिले सनाए रसूल। मुकाबला हो अंधेरों का क्या उजालों से, मुकाबला हो अंधेरों का क्या उजालों से। कहाँ वो शाम का हाकिम कहाँ गदाए रसूल। ऐसे नहीं मेरे भाई। कहाँ वो शाम का हाकिम कहाँ गदाए रसूल, कहाँ वो शाम का हाकिम कहाँ गदाए रसूल। अब नाजुक सा शेर है, चाहे जैसे सुनिएगा। कहाँ वो शाम का हाकिम कहाँ गदाए रसूल। ये खौफ था कि जमीनों पर हो न बेअदबी, ये खौफ था कि जमीनों पर हो न बेअदबी। फलक ने कर लिए महफूज नक्शे पाए रसूल।
ये खौफ था कि ज़मीनों बहो न बेअदबी, ये खौफ था कि ज़मीनों बहो न बेअदबी। फलक ने कर लिए महफूज नक्शे पाए रसूल। मैंने कहा कि जो अच्छा शेर होता हूँ बड़ी आसानी से पढ़ता हूँ। फलक ने कर लिए महफूज नक्शे पाए रसूल। अब शेर सुनिएगा। खलल पड़ा न चरागे अमल की लौ में कोई, सुनेंगे मामू, कि खलल पड़ा ना चरागे अमल की लौ में कोई, अंधेरा जितना बढ़ा उतना जगमगाए रसूल। खलल पड़ा ना चरागे अमल की लौ में कोई, अंधेरा जितना बढ़ा उतना जगमगाए रसूल। अंधेरा जितना बढ़ा उतना जगमगाए रसूल। मैं गुजारिश करता हूँ कारी कुरान आली जनाब मिर्ज़ा फुरकान हुसैन साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह कारी कुरान व शायर अहले बैत आली जनाब मिर्ज़ा फुरकान हुसैन साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सादिक़ैन में मंजूर कराएँ। जो करने को मद है इमाम आ रहे हैं, जो करने को मद है इमाम आ रहे हैं, जो करने को मद है इमाम आ रहे हैं। मेरे नाम कौसर के जाम आ रहे हैं, मेरे नाम कौसर के जाम आ रहे हैं। रिसालत इमामत है दोनों ही शादा, रिसालत इमामत है दोनों ही शादा। रसूल आ रहे हैं इमाम आ रहे हैं, रसूल आ रहे हैं इमाम आ रहे हैं। रसूल आए हैं तो खुदा की तरफ से, रसूल आए हैं तो खुदा की तरफ से। मुसलसल दुरूद व सलाम आ रहे हैं। रसूल आए हैं तो खुदा की तरफ से। मुसलसल दुरूद व सलाम आ रहे हैं, मुसलसल दुरूद व सलाम आ रहे हैं। सजी जब से शान मोहम्मद में महफिल, सजी जब से शान मोहम्मद में महफिल। ज़मीं पर मलक सुबह शाम आ रहे हैं, सजी जब से शान मोहम्मद में महफिल। ज़मीं पर मलक सुबह शाम आ रहे हैं। मनाएं बसब खैर ये अहल बातिल, मनाएं बसब खैर ये अहल बातिल। नबी लेके हक का पयाम आ रहे हैं, नबी लेके हक का पयाम आ रहे हैं। और शेर देंगे। खुशी का है माहौल सच्चों के घर में, खुशी का है माहौल सच्चों के घर में। कि सादिक अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। खुशी का है माहौल सच्चों के घर में। कि सादिक अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कि सादिक अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। अंधेरों की अब चलने वाली नहीं कुछ, अंधेरों की अब
चलने वाली नहीं कुछ है शम्सुज़्ज़ुहा जिनका नाम आ रहे हैं। अंधेरों की अब चलने वाली नहीं कुछ है शम्सुज़्ज़ुहा जिनका नाम आ रहे हैं। ये कह कह के भागे हैं दुश्मन तुम्हारे, ये कह कह के भागे हैं दुश्मन तुम्हारे, तबर्राई सब बेलगाम आ रहे हैं। ये कह कह ये कह कह के भागे हैं दुश्मन तुम्हारे, तबर्राई सब बेलगाम आ रहे हैं। तबर्राई सब बेलगाम आ रहे हैं। मदद करने आए थे जो अंबिया की, मदद करने आए थे जो अंबिया की, वही तो हमारे भी काम आ रहे हैं। मदद करने आए थे जो अंबिया की, वही तो हमारे भी काम आ रहे हैं। और ये आखिर के दो शेर के है किसने की दीने खुदा की हिफाजत, है किसने की दीने खुदा की हिफाजत, ज़बां पर 72 के नाम आ रहे हैं। है किसने की दीने खुदा की हिफाजत, ज़बां पर 72 के नाम आ रहे हैं। ज़बां पर 72 के नाम आ रहे हैं। बिछाए फरिश्तों ने महशर में पलकें, बिछाई फरिश्तों ने महशर में पलकें, जो देखा अली के गुलाम आ रहे हैं। बिछाई फरिश्तों ने बिछाई फरिश्तों ने महशर में पलकें, जो देखा अली के गुलाम आ रहे हैं। जो देखा अली के गुलाम आ रहे हैं। और ये मक्का है सुनने को मुश्ताक मुरसल के आशिक, है सुनने को मुश्ताक मुरसल के आशिक, जो फुरकान पढ़ने कलाम आ रहे हैं। जो फुरकान पढ़ने कलाम आ रहे हैं। जो फुरकान पढ़ने कलाम आ रहे हैं, जनाबे कारी और शायर अहले बैत वाले जनाब मिर्ज़ा फुरकान हुसैन साहब बारगाह सादिक़ैन में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। रिजवान साहब आगे आ जाइए। आज बरादरान हज़रात, मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा बहुत समाज फरमाने जनाब कफ़ील हैदर अल मारूफ पप्पू साहब अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे हो तो उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो तशरीफ़ नहीं आए डैश पर। कफ़ील हैदर अल मारूफ पप्पू साहब अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे हो तो गुजारिश है कि वो तशरीफ़ नहीं आए। हमारे अभी पप्पू साहब भी कलाम पेश करेंगे क्योंकि हमारी फहरिस्त में उनका नाम है। एक सलावत भेजें बुलंद आवाज़ से बने। फुरकान मियाँ ने अभी जहाँ से बात का अख्ताम किया वहीं से आगाज़ है। थोड़ा सा मुतवज्जह हो जाइए आप पप्पू साहब जी। क्या बस भाई कि ज़बां पर बसत एहतराम आ रहे हैं, ज़बां पर
बसद एहतराम आ रहे हैं, नबी के ग़ुलामों के नाम आ रहे हैं। ज़बां पर बसद एहतराम आ रहे हैं, नबी के ग़ुलामों के नाम आ रहे हैं। मुसलसल नबी और आले नबी पर, मुसलसल नबी और आले नबी पर खुदा के दुरूद व सलाम आ रहे हैं। मुसलसल नबी और आले नबी पर खुदा के मुसलसल सलाम आ रहे हैं और ख़बर दे रहे हैं हमें चांद सूरज। शेर सुने रिजवान साहब कि खबर दे रहे हैं हमें चांद सूरज, रसूल आ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं। खबर दे रहे हैं हमें चांद सूरज, रसूल आ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं। रसूल आ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं। अब चाहे जैसे सुनिएगा, शेर आपके हवाले है कि रसूल आ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं। अली तेरे दुश्मन तो बादे हलाकत, अली तेरे दुश्मन तो बादे हलाकत, जहन्नम के शोलों के काम आ रहे हैं। अली तेरे दुश्मन तो बादे हलाकत, जहन्नम के शोलों के काम आ रहे हैं, जहन्नम के शोलों के काम आ रहे हैं। अब खवास का मजमा इख्तियार आपको चाहे जैसे सुनिएगा कि जहन्नम के शोलों के काम आ रहे हैं। फरिश्तों अभी तुम लहद में ना आना, फरिश्तों अभी तुम लहद में ना आना, अभी तो हमारे इमाम आ रहे हैं। फरिश्तों अभी तुम लहद में ना आना, अभी तो हमारे इमाम आ रहे हैं। फरिश्तों लहद में अभी तुम ना आना, अभी तो हमारे इमाम आ रहे हैं। आइए हज़रात, मैं गुजारिश करता हूँ जनाब कफ़ील हैदर पप्पू साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। महफिल के रुकना ख़ास हैं, गुजारिश एक नारे हैदरी, एक नारे सलवा। कैसे खिदमत है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। तवज्जो चाहता हूँ, जो बाहर हो वो तशरीफ़ अंदर ले आएँ आप लोग। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है, नूरानी शाम है। एक है नबी तो दूसरा मेरा इमाम है। एक है नबी तो दूसरा मेरा इमाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। और दूसरा मतलब समाप्त फरमाइएगा। ये जश्न सादिकीन का जो एहतमाम है, ये जश्न सादिकीन का जो एहतमाम है। ये जश्न सादिकीन का जो एहतमाम है, जो एहतमाम है। बागे जिना में जाने का ये इंतज़ाम है। बागे जिना में जाने का ये इंतज़ाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। सलवात भेजे आप आज़ाद। मौलाना रज़ा हुसैन तशरीफ़ फरमा है हमारे बीच। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। आइए तशरीफ़ लाइए। एक नारे हैदरी, एक नारे सलवार,
ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। और शेर तवज्जो चाहता हूँ। इश्क़ इमाम जाफ़र सादिक से दिल है शाद, इश्क़ इमाम जाफ़र सादिक से दिल है शाद, इश्क़ इमाम जाफ़र सादिक से दिल है शाद, सादिक से दिल है शाद। होठों पर मेरे मुरसल आज़म का नाम है, होठों पर मेरे मुरसल आज़म का नाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। और ये ख़ास तौर पे तवज्जो चाहता हूँ, जो ये कहे रसूल, जो ये कहे रसूल हमारी तरह ही थे, जो ये कहे रसूल हमारी तरह ही थे, जो ये कहे रसूल हमारी तरह ही थे, हमारी तरह ही थे। उस शख्स को सलाम भी करना हराम है, उस शख्स को सलाम भी करना हराम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। और ख़ास तौर पे ये भी तवज्जो चाहता हूँ, सादिक अमीन शाहिदी आलम रसूल हक़, सादिक अमीन शाहिदी आलम रसूल हक़, सादिक अमीन शाहिदी आलम रसूल हक़, आलम रसूल हक़। मेरा नबी अजीम है, आली मकाम है, मेरा नबी अजीम है, आली मकाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। और कायम साहब तवज्जो चाहता हूँ आपसे, ख़ास तौर पे ये मिसरा, कायम रहे हमेशा ये कायम के हौसले। वही तवज्जो चाहता हूँ सरकार, कायम रहे हमेशा ये कायम के हौसले, कायम रहे हमेशा ये कायम के हौसले, कायम रहे हमेशा ये कायम के हौसले, कायम के हौसले। तुम सबकी मेहनतों से ये नूरानी शाम है, तुम सबकी मेहनतों से ये नूरानी शाम है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। कायम रहे हमेशा ये कायम के हौसले, कायम रहे हमेशा ये कायम के हौसले, कायम रहे हमेशा ये कायम के हौसले, कायम के हौसले। तुम सबकी मेहनतों से ये नूरानी शाम है, तुम सबकी मेहनतों से ये नूरानी शाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। कायम रहे हमेशा ये कायम के हौसले, कायम रहे हमेशा ये कायम के हौसले, कायम रहे हमेशा ये कायम के हौसले, कायम के हौसले। तुम सबकी मेहनतों से ये नूरानी शाम है, तुम सबकी मेहनतों से ये नूरानी शाम है।
और ख़ास तौर पे तवज्जो चाहता हूँ इस शेर पे भी। तुम रात दिन इबादतें करते रहो मगर, तवज्जो चाहता हूँ भाई, नफर भाई सुनिएगा। तुम रात दिन इबादतें करते रहो मगर, तुम रात दिन इबादतें करते रहो मगर, करते रहो मगर, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। तुम रात दिन इबादतें करते रहो मगर, तुम रात दिन इबादतें करते रहो मगर, करते रहो मगर, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। और ख़ास तौर पे जामे गदीर पी के मैं आया हूँ करबला, तवज्जो चाहता हूँ। जामे गदीर पी के मैं आया हूँ करबला, जामे गदीर पी के मैं आया हूँ करबला, जामे गदीर पी के मैं आया हूँ करबला, आया हूँ करबला। बेशक मेरे नसीब में कौसर का जाम है, बेशक मेरे नसीब में कौसर का जाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। सजदे कबूल होते हैं जिसके तुफैल में, तवज्जो चाहता हूँ। सजदे कबूल होते हैं जिसके तुफैल में, सजदे कबूल होते हैं जिसके तुफैल में, जिसके तुफैल में। वो जिक्र अहल बैत अलैहिस्सलाम है, वो जिक्र अहल बैत अलैहिस्सलाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। कोई नबी ना आएगा अब मुस्तफ़ा के बाद, तवज्जो चाहता हूँ भाई। कोई नबी ना आएगा अब मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी ना आएगा अब मुस्तफ़ा के बाद, अब मुस्तफ़ा के बाद। हर कौम के लिए ये खुदा का पैगाम है, हर कौम के लिए ये खुदा का पैगाम है। और देखिएगा, तवज्जो चाहता हूँ खास तौर पे। अव्वल की सूम धूम की जो तुमने बात की, अव्वल की धूम सूम की जो तुमने बात की, अव्वल की धूम सूम की जो तुमने बात की, अव्वल की धूम सूम की जो तुमने बात की, जो तुमने बात की। तो फिर न कहना मेरी ज़बां बेलगाम है, तो फिर न कहना मेरी ज़बां बेलगाम है। अव्वल की सूम धूम की जो तुमने बात की, अव्वल की धूम सूम की जो तुमने बात की, जो तुमने बात की। तो फिर न कहना मेरी ज़बां बेलगाम है, तो फिर न कहना मेरी ज़बां बेलगाम है। और मक्ता
तवज्जो चाहता हूँ। मख्ता समात फरमाइए। तोहफे इमाम असर की खिदमत में ए कफील, तोहफे इमाम तोहफे इमाम असर की खिदमत में कफील, खिदमत में कफील, आमद प मुस्तफ़ा की ये मेरा कलाम है, आमद प मुस्तफ़ा की ये मेरा कलाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है, ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है, ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। जनाब कफ़ील हैदर पप्पू साहब जो बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रत हमारी फ़हरिस्त में सिर्फ़ 5 शोराए कराम हैं जो यके बाद दीगर आपकी समातों के हवाले हाजिर होंगे। और अब ये बिल्कुल इस महफ़िल का तकाज़ा यही है, क्योंकि इख्तितामी दुआइया कलमात के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं और अभी 5 शोराए कराम भी हमारी फ़हरिस्त में हैं। लिहाजा अपनी निज़ामत को बिल्कुल समेटते हुए मैं ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि जो दौर हाजिर का बेहतरीन नाज़िम भी है और बेहतरीन शायर भी है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ आली जनाब मेहंदी महमूद आबादी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। और अब्बास भाई ने एक रास्ता निकाला है मेहंदी भाई के लिए कि कुछ मोमिनीन अंदर आ जाएँ, तो वो बाल्टी भी लेकर आ गए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मेहंदी महमूद आबादी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। और उस्ताद शोरा अली जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि अपने दस्ते मुबारक से ये पूरे निकाल दें, वहाँ मुँह बैठे होंगे। सलावात भेजिए बुलंद आवाज़। देखिए 259 नंबर 259 259 259 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं नंबर पुकारा जाएगा। 259 यही कलर है भैया। 259 कैंसिल। अच्छा 22 नंबर 22 नंबर सिर्फ 22 22 नंबर। बाईस नंबर आ रहे हैं, मुतवल्ली साहब आ रहे हैं, देखिए आप। मेहनत माशाल्लाह बहुत कर रहे थे, दिन भर मेहनत कर रहे थे मुतवल्ली साहब। 207 नंबर 207 207 207 207 नंबर 207 कैंसिल।
316 नंबर, 316 नंबर, 316, 316 नंबर, 316 कैंसिल। 293, 293, 293, यह है बच्चा, इसको दे दिए बच्चे को। 293, क्या हुआ भैया? 293 हो गया भैया। 333, मतलब बच्चा उठ दे दिए बच्चे का। कितना होगा भैया? कितना होगा? 2 और निकलना अभी। दो 239, 239, 239, 239, 239, 239 कैंसिल। नहीं, बाद में निकल, अब बाद में, अब बाद 94, 94, 94, 94 कैंसिल। 369 नंबर, 369, 369, 369, 369। भैया अब कुरानदाजी को यहीं पे रोका जा रहा है। मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ वाली जनाब मेहंदी महमूदाबादी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएं। देखिए, सबसे पहली अब गुजारिश ये, जितने भी पूरे बच्चे हैं वो इन तमाम शोराए कराम के खराज अक़ीदत के बाद अब कुरानदाजी होगी, क्योंकि दरमियान में जो कुरानदाजी हो रही है उससे कुरानदाजी के बाद मजमा उठ के जा रहा है और शायर को कलाम पेश करने में दुश्वारियाँ आ रही हैं। तो मैं अब ये मुल्तज़मीन से गुजारिश करूँगा कि अब जितने भी तबरुकात बचे हैं वो इख्तिताम महफिल बज़रिया कुरानदाजी पेश किए जाए। गुजारिश करता हूँ जनाब मेहंदी महमूदाबादी साहब। जश्न सादिक़ैन की बहुत बहुत मुबारक हो बात आपको पेश करते हैं। रिसालत और इमामत के दोनों के आफ्ताब आज हमारे दरमियान आए हैं। शब विलादत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 4 मिसरे बतौर ख़ास मुलाहज़ा करें कि खुशी हो गम हो जो कुछ हो उसी से हमको है ढारस। खुशी हो गम हो जो कुछ हो उसी से हमको है ढारस। हमारी ज़िंदगी में हुब्बे हैदर के सिवा क्या है। हमारी ज़िंदगी में हुब्बे हैदर के सिवा क्या है। हमारी बज़्म में आओ हमें परखो हमें जानो। हमारी बज़्म में आओ हमें परखो हमें जानो। समझ में आ ही जाएगा कि ज़हरा की दुआ क्या है।
हमारी बज़्म में आओ, हमें परखो, हमें जानो, समझ में आ ही जाएगा कि ज़हरा की दुआ क्या है, समझ में आ ही जाएगा कि ज़हरा की दुआ क्या। एक सलवात और भेजें हम। चार में से बहुत ख़ास मुलाज़ा करें कि शम्सो कमर नजूम है इस फर्शे बज़्म पर, शम्सो कमर नजूम है इस फर्शे बज़्म पर, पुरकैफ हो रहा है समा रोशनी में आज, कि पुरकैफ हो रहा है समा रोशनी में आज, आ जाओ बज़्म नूर में मिधत के वास्ते, आ जाओ बज़्म नूर में मिधत के वास्ते, मेराज तुमको देगा खुदा बंदगी में आज, आ जाओ बज़्म नूर में मिधत के वास्ते, मेराज तुमको देगा खुदा बंदगी में आज। एक सलवात भेजें हम। एक मतलब दो तीन शेर इजाज़त हो, मतलब पेश खिदमत है कि बंदा बतौर ख़ास मुलाज़ा करें, मतलब कि बंदा मेरे रसूल के जैसा कोई नहीं, बंदा मेरे रसूल के जैसा कोई नहीं, जुज़ फातिमा के उम्मे अबीहा कोई नहीं, बंदा मेरे रसूल के जैसा कोई नहीं, जुज़ फातिमा के उम्मे अबीहा कोई नहीं, और बहरे शरफ हैं बिनते नबी मादर हुसैन, कि बहरे शरफ है बिनते नबी मादर हुसैन, ज़हरा की मंजिलत का किनारा कोई नहीं, ज़हरा की मंजिलत का किनारा कोई नहीं। शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि ऐ दुश्मने बतूल तू दोज़ख में जाएगा, ऐ दुश्मने बतूल तू दोज़ख में जाएगा, रहबर मेरा अली है तुम्हारा कोई नहीं, ऐ दुश्मने बतूल तू दोज़ख में जाएगा, ऐ दुश्मने बतूल तू दोज़ख में जाएगा, रहबर मेरा अली है तुम्हारा कोई नहीं। ये शेर भी बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि ज़हरा के कातिलों पर करो रोज़ लानतें, ज़हरा के कातिलों पर करो रोज़ लानतें, सच ये है ज़िंदगी का भरोसा कोई नहीं, ज़हरा के कातिलों पर करो रोज़ लानतें, सच ये है ज़िंदगी का भरोसा कोई नहीं। एक सलवात भेजना हमने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये शेर बतौर ख़ास कि हम पर इमाम वक्त का साया है हर घड़ी, बतौर ख़ास हम पर इमाम वक्त का साया है हर घड़ी, समझे या ना कोई कि हमारा कोई नहीं, हम पर इमाम वक्त का साया है हर घड़ी, समझे या ना कोई कि हमारा कोई नहीं। और मकता पेश खिदमत है कि मेहंदी यही तारुफ़ ज़हरा है मुख्तसर, मेहंदी यही तारुफ़ ज़हरा है मुख्तसर, इनसे बड़ा जहान में सच्चा कोई नहीं, इनसे बड़ा जहान में सच्चा कोई नहीं। एक मतलब दो तीन शेर की इजाज़त हो तो पेश करें। एक सलवात भेजा हम लोग, एक मतलब दो तीन शेर रसूल खुदा के हवाले से कि हुरंजो गम में लुत्फ़े करीमाना चाहिए। एक नारे सलवात भेजा हम लोग कि हूँ रंजो गम में, मुलाज़ा करें कि हूँ रंज या अली या कि हूँ रंजो गम में लुत्फ़े करीमाना चाहिए, हूँ रंजो गम में लुत्फ़े करीमाना चाहिए, ऐ कमली वाले तेरा शिफा खाना चाहिए, ऐ कमली वाले तेरा शिफा खाना चाहिए। और तेरी सनाए पाक को अल्लाह के रसूल, तेरी सनाए पाक को अल्लाह के रसूल रोशन दमाग फ़िक्र गदीराना चाहिए, तेरी सनाए पाक को अल्लाह के रसूल रोशन दमाग फ़िक्र गदीराना चाहिए। और अल्लाह के नबी को समझने के वास्ते, बतौर ख़ास अल्लाह के नबी को समझने के वास्ते इल्मे खुदा और फ़िक्र अली आना चाहिए,
इल्मे खुदा व फ़िक्र अली आना चाहिए। किरदार ये रसूल का देता है हमको दर्स, किरदार ये रसूल का देता है हमको दर्स। जालिम से भी सलूक शरीफाना चाहिए, जालिम से भी सलूक शरीफाना चाहिए। और आखिरी शेर के हो जाए मुंसलिक दरे हैदर से आके वो, हो जाए मुंसलिक दरे हैदर से आके वो, हाँ जिसको गर बहिश्त का परवाना चाहिए, हाँ जिसको गर बहिश्त का परवाना चाहिए। मक़सद पेश खिदमत है ज़हमत तमाम कि मेहंदी सनाए मुरसले आज़म के वास्ते, मेहंदी सनाए मुरसले आज़म के वास्ते तर्ज़े बयानो फ़िक्र शरीफाना चाहिए। मेहंदी सनाए मुरसले आज़म के वास्ते तर्ज़े बयानो फ़िक्र शरीफाना चाहिए। मेहंदी सनाए मुरसले आज़म के वास्ते तर्ज़े बयानो फ़िक्र शरीफाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम जनाब मेहंदी महमूदाबादी साहब जो बारगाह सादिक़ैन में मंजूम कराजी अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हर्फ़ इल्तिमास लेकर हाजिर हो रहा हूँ बरादर अज़ीज़ डॉक्टर अंजुम गदीरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सादिक़ैन में मंजूम कराजी अक़ीदत पेश करें। मोहतरम जनाब डॉक्टर अंजुम गदीरी साहब। वलन एक मतला और दो तीन शेर हैं कि जो दस्ते मोहम्मद की बुलंदी पर मिला है, जो दस्ते मोहम्मद की बुलंदी पर मिला है, वो ज़र्रा भी सूरज की तरह बोल रहा है। जो दस्ते मोहम्मद की बुलंदी पर मिला है, वो ज़र्रा भी सूरज की तरह बोल रहा है। ये साथ में मुरसल के जो सादिक़ की सना है, ये साथ में मुरसल के जो सादिक़ की सना है, इस नात में भी आज कसीदे का मज़ा है। इस नात में भी आज कसीदे, ये साथ में ये साथ में मुरसल के जो सादिक़ की सना है, इस नात में भी आज कसीदे का मज़ा होगा। शेर तमाम फरमाएंगे कि उस हुस्न की मेराज पर है आपका चेहरा, कि उस हुस्न की मेराज पर है आपका चेहरा। एक चांद जिसे देख के दो टुकड़े हुआ है, उस हुस्न की मेराज पर है आपका चेहरा। एक चांद जिसे देख के दो टुकड़े हुआ है, एक चांद जिसे देख के दो टुकड़े हुआ है। वो है तूर पा आवाज नुसैरी के खुदा की, कि है तूर पा आवाज नुसैरी के खुदा की। मूसा ये समझते हैं खुदा बोल रहा है। दो शेर कि करबला वालों ने हर दिल पर हुकूमत की है, कि करबला वालों ने हर दिल पर हुकूमत की है। बात हैरत की नहीं है, ये हकीकत की है। करबला वालों ने हर दिल पर हुकूमत की है। बात हैरत की नहीं है, ये हकीकत की है कि राह बदली न तबर्रे का तरीक़ा बदला,
कि राह बदली न तबर्रे का तरीका बदला, बंद लफ्जों में भी दिल खोल के लानत की है। कि राह बदली न तबर्रे का तरीका बदला, बंद लफ्जों में भी दिल खोल के लानत की है। और तुम जो करते हो तबर्रे पर ये तौबा तौबा, तुम जो करते हो तबर्रे पर ये तौबा तौबा, क्या कभी सूरह तौबा ने मुरव्वत की है? कि तुम जो करते हो तबर्रे पर ये तौबा तौबा, क्या कभी सूरह तौबा ने मुरव्वत की है? क्या कभी सूरह तौबा ने मुरव्वत की? हजरत आखिरी कलाम में ये एक मतलब 3-4 शेर और रहमत तमाम एक नारे सलवात भेजेंगे हजरत। पहले कुरान से कुछ लफ्ज़ चुने जाते हैं, पहले कुरान से कुछ लफ्ज़ चुने जाते हैं, फिर तेरी मदह में अशार कहे जाते हैं, फिर तेरी मदह में अशार कहे जाते हैं। और शेर कहता हूँ तो आते हैं तसव्वुर में अली, शेर कहता हूँ तो आते हैं तसव्वुर में अली, और जन्नत की मुझे सैर पा ले जाते हैं, और जन्नत की मुझे सैर पा ले जाते हैं। और जिक्र हैदर का जो तूफान उठे क्या होगा, जिक्र हैदर का जो तूफान उठे क्या होगा, एक ही झोंके में जब होश उड़े जाते हैं, एक ही झोंके में, एक ही झोंके में जब होश उड़े जाते हैं। तो शेर समाज फरमाएंगे कि आपके बस में कहां जलवे हैदर की झलक, आपके बस में कहां जलवे हैदर की झलक, वो जो मूसा है वो बेहोश हुए जाते हैं। आपके बस में कहां जलवे हैदर की झलक, वो जो मूसा हैं वो बेहोश हुए जाते हैं। कि जिंदा रहने के लिए इश्क़ अली काफी है, जिंदा रहने के लिए इश्क़ अली काफी है, लोग गैरों के लिए फिर भी मरे जाते हैं। कि जिंदा रहने के लिए इश्क़ अली काफ़ी है, लोग गैरों के लिए फिर भी मरे जाते हैं। और उनको पलकों पर बिठाने की तमन्ना लेकर, उनको पलकों पर बिठाने की तमन्ना लेकर आप भी मेरी निगाहों से गिरे जाते हैं, आप भी मेरी निगाहों से गिरे जाते हैं। शेर समाज सुनाएंगे कि ऐसे लोगों का जहन्नम में भला क्या होगा, ऐसे लोगों का जहन्नम में भला क्या होगा जो तेरे जिक्र की ठंडक से जले जाते हैं। कि ऐसे लोगों का
जहन्नम में भला क्या होगा जो तेरे जिक्र की ठंडक से जले जाते हैं। और जिक्र कैसे हो शरीफों में तेरे दुश्मन का, जिक्र कैसे हो शरीफों में तेरे दुश्मन का, लोग सुनते ही नहीं उठ के चले जाते हैं। जिक्र कैसे हो शरीफों में तेरे दुश्मन का, लोग सुनते ही नहीं उठ के चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम जनाब डॉक्टर अंजुम गदीरी साहब जो बारगाह सादिक़ैन में मंजूम खराजी अक़ीदत पेश कर रहे थे, आइए हज़रात सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ शायर अहले बैत आली जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सादिक़ैन में मंजूम खराजी अक़ीदत पेश। बराए ताज़ीज़ ज़ुहरी इमाम ज़माना सन्नारे सल्लल्लाहु एक मतलब दोषी समाप्त में के सूरे कौसर में देखो ये इशारा सूरे कौसर में देखो ये इशारा गया। सूरे कौसर में देखो ये इशारा गया। अरे इनके दुश्मन होंगे अब तर ये हवाला गया। इनके दुश्मन होंगे अब तर ये हवाला गया। कि ऐ दरे हैदर तेरी अज़मत पहें लाखों सलाम। ऐ दरे हैदर तेरी अज़मत पहें लाखों सलाम। अरे अपनी किस्मत जगमगाने खुद सितारा गया। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। हैदरे हैदर तेरी अज़मत पहें लाखों सलाम। जर्रे भाई शेर समाज फरमाने आपको पूरा बड़े गौर से सुना था भाई, आप बातें करेंगे तो ये तो नहीं पाएगा। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हैदरे हैदर तेरी अज़मत पहें लाखों सलाम। अपनी किस्मत जगमगाने खुद सितारा गया। कि हश्र में नारा लगाएंगे गुलामाने अली। हश्र में नारा लगाएंगे गुलामाने अली। अरे बख्शवाने के लिए मौला हमारा गया। हश्र में नारा लगाएंगे गुलामाने अली। बख्शवाने के लिए मौला हमारा गया।
एक सलवात भेज दिया आपके साथ। 2 मतले फिर आखिर में पेश कर रहे हैं। कि मेराज में पर्दे से कोई बोल रहा है, मेराज में पर्दे से कोई बोल रहा है, लहजा ये बताता है नुसैरी का खुदा है, लहजा ये बताता है नुसैरी का खुदा है, कि हैदर की अदावत में जो दुनिया में मरा है, हैदर की अदावत में जो दुनिया में मरा है, और मरकज़ से ही सीधा वो जहन्नम में गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरकज़ से ही सीधा वो जहन्नम में गया है। शेर समात फरमाएंगे कि मर सकता है मिट सकता नहीं शय का आज़ादार, मर सकता है मिट सकता नहीं शय का आज़ादार, है बात फ़क़त इतनी ये ज़हरा की दुआ। मर सकता है मिट सकता नहीं शय का आज़ादार, है बात फ़क़त इतनी ये ज़हरा की दुआ है। शहज़ादे क़ासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से शेर समात फरमाएं कि मैदान में दुश्मन के ना क्यों होश उड़ाए, मैदान में दुश्मन के ना क्यों होश उड़ाए, अरे क़ासिम भी तो अब्बास की गोदी का पला। मैदान में दुश्मन के ना क्यों होश उड़ाए, अरे क़ासिम भी तो अब्बास की गोदी का पला है, क़ासिम भी तो अब्बास की गोदी का पला है। मर सकता है मिट सकता नहीं शय का आज़ादार, है बात फ़क़त इतनी ये ज़हरा की दुआ है। ख़ास तौर से शेर समात फरमाएंगे कि क्यों पढ़ता नहीं फ़ातिह खैबर के फ़ज़ाइल, क्यों पढ़ता नहीं
फातहे खैबर के फजाइल। अरे वाइज ये बता दे कि तू कितने में बिका है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्यों पढ़ता नहीं फातहे खैबर के फजाइल। वाइज ये बता दे कि तू कितने में बिका है। ये भी शेर समात फरमाएंगे कि अपना उसे हरगिज मैं कभी कह नहीं सकता। अपना उसे हरगिज मैं कभी कह नहीं सकता। और जो कातिल ज़हरा पतवारे से खफा है, जो अपना उसे हरगिज मैं कभी कह नहीं सकता। जो कातिल ज़हरा पतवारे से खफा है कि उस पर मैं तबर्रे में तकल्लुफ नहीं करता। उस पर मैं तबर्रे में तकल्लुफ नहीं करता। शहज़ादी कौनैन का दिल जिससे दुखा है। शहज़ादी ये कौनैन का शहज़ादी ये कौनैन का दिल जिससे दुखा है। आखिरी शेर मक्ता समझ पाए कि फिरोज की चक्की ने बताया है ये हमको। फिरोज की चक्की ने बताया है ये हमको। फिरोज की चक्की ने बताया है ये हमको। ओ क्या बाग़े फदा लूटने वाले की सजा है। फिरोज की चक्की ने बताया है ये हमको। क्या बाग़े फदा लूटने वाले की सजा है कि इस वास्ते मैं करबो बला जाऊंगा खुशनूद। इस वास्ते मैं करबो बला जाऊंगा खुशनूद। इस वास्ते मैं करबो बला जाऊंगा खुशनूद। अरे जन्नत का सफर मेरे मुक़द्दर में लिखा है। इस वास्ते मैं करबो बला जाऊंगा खुशनूद। जन्नत का सफर मेरे मुक़द्दर में लिखा है। मैदान में दुश्मन के ना क्यों होश उड़ाए।
मोहतरम जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा साहब जो बारगाह सादिक़ैन में मंजूम खराजी अक़ीदत पेश कर रहे थे, हज़रात हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम मैं हर्फ़ इल्तिमास लेकर हाजिर हो रहा हूँ। बिरादर अकबर हरदिल अज़ीज़ शायर अहले बैत अली जनाब ज़की भारती साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सादिक़ैन में मंजूम खराजी अक़ीदत। हाँ पढ़ देंगे, बिल्कुल पढ़ देंगे। मुकायम भाई ने भी कहा है पढ़ने को, बिल्कुल पढ़ेंगे। जो सलाह है या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर आप हजरात को जो वहाँ बैठे हैं उनको जहमत ना हो और थोड़ा थोड़ा जो पीछे बैठे हैं वो और आगे आ जाएं, अगर जहमत ना हो, ज़बरदस्ती तो है भी नहीं और कर भी नहीं सकते। जो जहाँ से सुन रहा है वहीं से सुन ले। और बस ये है कि इस महफ़िल का पूरे साल भर इंतज़ार रहता है। यकीन मानिएगा इस मुक़द्दस स्टेज पर हूँ। जिस वक़्त ओपन हार्ट सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, उस वक़्त 2 चीज़ें याद आईं। क्या मुहर्रम नहीं हो पाएगा, और दूसरी ये महफ़िल। क्यों? इस तरह की महफ़िलें लखनऊ में बहुत कम होती हैं। यकीन मानिए हम शोराए कराम की तरफ से बात कह रहे हैं पूरी ज़िम्मेदारी से। इस तरह की महफ़िलों में हम भले बाहर ना जाएं, लेकिन अपनी मकामी महफ़िलों में ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि इस तरह की महफ़िलें मिलती नहीं है जहां लखनऊ वालों को लखनऊ वाले सुने और इतना दादो तहसीन से नवासे। पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए, मतला हाजिर कर रहा हूँ सिर्फ। होठों पर मेरे मुरसलो जाफ़र की सना है, होठों पर मेरे मुरसलो जाफ़र की सना है। कुरान को एक वक्त में 2 बार पढ़ा है। कुरान को एक वक्त में 2 बार पढ़ा है। अब यहाँ से एक मतला और एक शेर और हाजिर कर रहा है। ये भी सब तहत में ये भी पढ़ रहा हूँ, समात फरमाएं। तरन्नुम में भी पढ़ूंगा, लेकिन तहत में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि न जाने कहाँ पर कौन सा वक्त पड़ जाए। और कुछ बहरें ऐसी होती हैं, बहर ऐसे मतलब वज़्म होते हैं कि जिसमें तहत में ज़्यादा लुत्फ़ आता है, तरन्नुम में नहीं आता है। पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। उसी ने सबको सिखाया भला बुरा क्या है, उसी ने सबको सिखाया भला बुरा क्या है। अब इसके बाद भी पूछोगे करबला क्या है, अब इसके बाद भी पूछोगे करबला क्या है। और जरी के आलिम भाई, जरी के गैज़ ने रूहें निकाल ली सबकी। लाडले भाई पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा कायम भाई, कि जरी के गैज़ ने रूहें निकाल ली सबकी। सिपाहे शाम के जिस्मों में अब बचा क्या है। जरी के गैज़ ने रूहें निकाल ली सबकी, जरी के गैज़ ने रूहें निकाल ली सबकी। सिपाहे शाम के जिस्मों में अब बचा क्या है। और ये आखिरी शेर इस सिलसिले का, फिर रब दूंगा और नात वगैरह सब पढ़ूंगा और कायम भाई की जो आप लोगों की फरमाइश है वो भी पूरी करूंगा। पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि जो हाथ बाली सकीना के उठ गए होते, जो हाथ बाली सकीना के उड़ गए होते, समझ में आता जमाने के बद्दुआ क्या है, समझ में आता जमाने के बद्दुआ क्या है। पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा। यहां से कता हाजिर कर रहे हैं, समाअत फरमाएंगे आप। एक बार से बुलंद नारे सलवात पढ़ गए आप हजरात। खमुन हदीस नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खूब जम के पढ़ता हूँ।
हमारे टाके जब कटे नहीं थे, यहाँ से पूरा ये कटा है, जब मतलब कटे नहीं थे, 3 दिन रह गए थे, तब भी मैंने आगा बाकने महफिल पढ़ी। घर वाले कह रहे थे कि भैया ना जाइए, पापा ना जाइए, और बीवी कह रही थी ना जाइए, क्या कर रहे हो, गजब कर रहे हो। मैंने कहा जिसने बचाया है उसकी मदो सना ना करे तो जिंदा रहने से फायदा क्या। पेश कर रहा हूँ, बेटा पानी पिला दीजिए आप, पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। खमुन हदीसों को माने तो किस तरह माने। नहीं, आप बिल्कुल पीजिए पानी, हमें कोई इतराज नहीं होता है, बस ये कि आप हम वतन गोश रहें, सुनते रहें, हमसे बने रहें। पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, बात कीजिए, कोई मसला नहीं है। हम वो शायर नहीं है कि वहाँ परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप हमसे करीब रहिए बस। खमुन हदीसों को माने तो किस तरह माने, ढली जो झूठी हदीसों के कारखानों में, ढली जो झूठी हदीसों के कारखानों में, और कबूल हो नहीं सकती नमाज भी उनकी, अली का नाम जो लेता नहीं अज़ानों में, अली का नाम जो लेता नहीं अज़ानों में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये भी खता हाजिर कर रहे हैं, समाज समझिए। ज़र्रे भाई आपकी आवाज़ कुछ कम निकल रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। आपकी आवाज़ कुछ कम निकल रही है, बाकी में निकल रही है, लेकिन मेरे में कम निकल रही है, बाकी लोगों की निकल रही है। बहरा सलवात भेजिए आप हज़ार मिल के, ये भी पेश कर रहा हूँ अभी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं रसूलुल्लाह की शान में पढ़ूंगा, उनकी शान में भी पढ़ूंगा। अभी जी पहले पढ़ दें, वो भी पहले पढ़ दें जी, मैं वही पढ़े दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, समाज कर रहा हूँ। रहम खा कर उसे चुल्लू में जगह दी वरना, रहम खा कर उसे चुल्लू में जगह दी वरना, पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी, पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी, हुक्म दे देता अगर चांद बनी हाशिम का, इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी, इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी, इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी। ये भी खता हाजिर कर रहा है, समाप्त फरमाइएगा। रह उसे चुल्लू में जगह दी वरना, पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी, पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी, हुक्म दे देता अगर चांद
हाशिम का इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी, इसी तपते हुए सूरज से रहम खा कर उसे चुल्लू में जगह दी, वरना पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी, पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी, हुक्म दे देता अगर चांद बनी हाशिम का इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी। ये भी खता हाजिर कर रहे हैं, समाज फरमाइएगा। या अब्बास 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 या अब्बास। अरे बेटा या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो हमारे दोस्त बचपन के, हम लोग कायम भाई, हम सब लोग दोस्त हैं। कौकब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके और इनके बच्चे जो आज देखते हैं सफ़ों में खड़े हैं, फर्श मजलिस पर महफिल में बैठे हैं, बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे भतीजे भी हम ही लोगों पर पढ़े हैं। जिस तरह से हम लोग बचपन में थे, आज हमारे बच्चे भी उन्हीं पर पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे सब लोग ऐसे ही निकलें, सबके बच्चे ऐसे ही निकलें। और बिलखुसूस इस महफिल में शिरकत करने वालों के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग शिरकत करते हैं, एक शायर को आप लिफाफा मत दीजिए, यकीन मानिए। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ और शायरों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिन्हें लिफाफा चाहिए होता है। और मैं वाला शायर नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं कमाता भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, और 27 साल से जर्नलिज़म के पेशा है मेरा। और बच्चे भी बेहम्दुलिल्लाह 3 लड़कियाँ, तीनों PhD कर चुकी हैं और अच्छी खासी असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर हैं। और लड़का भी माशाल्लाह जॉब में, लेकिन सब मौला के सदक़े से, उनके करम से। तो मुझे लिफाफे की या कोई ऐसी चीज़ की तमन्ना नहीं रहती है, लेकिन ऐसे सामाईन की तमन्ना ज़रूर रहती है। पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। ये कायम भाई ने कहा एक बार और पढ़ दें, तो उसको एक बार और पढ़ लें। रहम खा कर उसे चुल्लू में जगह करना, पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी, पाँव अब्बास के छूने को तरसता पानी, हुक्म दे देता अगर चांद बनी हाशिम का इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी, इसी तपते हुए सूरज से बरसता पानी। ये भी खता हाजिर कर रहे हैं, समाअत फरमाएंगे। ये ज़रूरी तो नहीं है जंग के मैदान में, ये ज़रूरी तो नहीं है जंग के मैदान में, तीर और तलवार दुश्मन पर चलाना चाहिए, तीर और तलवार दुश्मन पर चलाना चाहिए। कोई सीखे ये अली असगर से आके दश्त में, किस जगह हमला कहाँ पर मुस्कुराना,
किस जगह हमला कहाँ पर मुस्कुराना चाहिए। ये भी खता हाजिर कर रहा, समात फरमाइएगा। कुव्वते शेरे अली है, कुव्वते परवरदिगार, सुरमाओं को भी ये तस्लीम करना चाहिए, सुरमाओं को भी ये तस्लीम करना चाहिए। कर लिया अब्बास ने दरिया पर कब्जा ए यजीद, चुल्लू भर पानी में तुझको वो मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में तुझको डूब मरना चाहिए। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये दो कते, बस ये आखिरी कता, उसके बाद फिर मैं नात के चंद शेर, ये भी आखिरी कता पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। कोई मुझको कुछ कहे, मैंने तो बादे करबला, कोई मुझको कुछ कहे, मैंने तो बादे करबला, नाम दीन मुस्तफा का दीन सरवर रख दिया, नाम दीन मुस्तफा का दीन सरवर रख दिया। फिर मैं से हो न हो आगोश ऐसी सोच के, गोद में शब्बीर की इस्लाम ने सर रख दिया, गोद में शब्बीर की इस्लाम ने सर रख दिया। बस ये कता भी याद आ गया, ये भी पढ़े दे रहा हूँ। हालांकि बहुत सा पढ़ने में आया था, यकीन मानिए मैं यहाँ ये सोच के आता 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा और बहुत अरमान से आता हूँ यहाँ। नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मौला का करम है आप लोगों का, बस ठीक है। और आप लोग सुन रहे हैं, अभी एजाज मामू भी मौजूद हैं और आप लोग थक चुके हैं, लेकिन आप हमारी हमें अभी नहीं थके हैं, समझ लीजिए। खाली आपकी तरफ से आवाज़ आई है, ये सब थक जाएंगे। बहरहाल मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं है कायम भाई, फिर इंशाल्लाह ज़िंदा रहेंगे और फिर पढ़ेंगे। बची गए अब तो अगले साल फिर पेश करूँगा। समात फरमाए। अली असगर की मोहब्बत का ये देखाए जा, अली असगर की मोहब्बत का ये देखाए जा। उनका नहीं है मख्ता, ये थोड़ी है भैया, ये मेरा है। अली हर आदमी एजाज थोड़ी होता है कि एजाज अली साहब का, इधर इशारा कर रहे हैं। अली असगर की मोहब्बत का ये देखाए जा, मेरे बच्चों को कभी भूख का शिकवा ना हुआ, मेरे बच्चों को जो हजरात कभी गुर्बत से गुजरे हैं वो इसको एहसास करेंगे तो उनको लगेगा कि मैंने सच्ची बात कही है। मैं गुर्बत के उस दौर में गुजरा हूँ जिस दौर में ये कता कहा है, और एहसास किया कि लाख सोचें कि आज फाका हो जाएगा, शायद घर पे आज सब्ज़ी भी नहीं होगी, आटा भी नहीं आ पाएगा,
मैं बहुत फ़ख्र से इस बात को करता हूँ, हालांकि मेरे घर वाले कहते हैं ये आप क्यों पढ़ देते हैं, ये हकीकत क्यों पढ़ देते हैं आप। मैं हकीकत इसलिए पढ़ता हूँ कि लोगों को पता चले कि वाकई में कब ये डूब के शायर कहता है ना, मकाम क्या है उनका। मैं सिर्फ ये इसलिए आप लोगों को बताता हूँ, अली असगर की मोहब्बत का ये देखा एजाज, मेरे बच्चों को कभी भूख का शिकवा ना हुआ, मेरे बच्चों को कभी भूख का शिकवा ना हुआ। मुफलिसी ने किए हमले तो बराबर, लेकिन 10 मुहर्रम के सिवा एक भी फाका ना हुआ। 10 मुहर्रम के सिवा एक भी फाका ना हुआ, 10 मुहर्रम के सिवा एक भी फाका ना हुआ। एक बात से बुलंद आरे सलवात पढ़ रहे, पढ़े दे रहे वाला कथा भी 2 कथे और पढ़े दे रहे। सलाम, जहाँ पर आप लोग लगें कि महसूस करिएगा कि मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, वहाँ आप लोग चुप हो जाइएगा, मैं समझ जाऊँगा, मुझे बैठना है। मैं बहुत समझदार हूँ, शऊर जो है वो शीन से होता है, मुझे मालूम है पूरी तरीके से, और मैं आराम से बैठ जाऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा नहीं। 2 कथे और पेश कर रहा हूँ, समझ। अरे सलामत रखे आपको, वही पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। सलाम करते नहीं हम उभरते सूरज को, सलाम करते नहीं हम उभरते सूरज को, नजफ के ज़र्रों का बस एहतराम करते हैं, नजफ के ज़र्रों का बस एहतराम करते हैं। अली के दर से मिली हैं बुलंदियां ऐसी, बड़े बड़े मुझे झुककर सलाम करते, बड़े हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बड़े बड़े मुझे। आप कुछ बन जाइए, लेफ्टिनेंट बन जाइए, गवर्नर बन जाइए, नेता बन जाइए, कोई प्रधानमंत्री बन जाइए, वो इज़्ज़त जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदाखानी में है वो है कहीं नहीं। बुज़ुर्ग लोग भी झुक के जब सलाम करते हैं तो मौला का शुक्र अदा करना पड़ता है, तेरा करम है लाख लाख कि तूने मुझे इस लायक किया। खैर पेश करूँ, समाज फरमाया आखिरी ख़ता। नुक़्ता-ए बा में है कुर्बान, मेरे बड़े भाई जाहिद भाई बैठे हुए सामने, पेश करें। फ़ख्र की बात है कि आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, पेश करूँ समाज फरमाए। नुक़्ता-ए बा में है कुर्बान, नुक़्ता-ए बा है अली, नुक़्ता-ए बा में है कुर्बान, नुक़्ता-ए बा है अली। पूरा कुर्बान याद करना किस कदर आसान है, पूरा कुर्बान याद करना किस कदर आसान है। लम्हा लम्हा रहे
या अली, बच्चा बच्चा मेरे घर का हाफिज कुरान है। बच्चा बच्चा मेरे घर का। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये आखिर में एक मतलब चंद शेर नात के पेश कर रहा हूँ, समाअत करना। या अली बेशुमार जहाँ बोझ है नबी का, वहाँ पर वफा नहीं है। जहाँ बोझ है नबी का, वहाँ पर वफा नहीं है। और वो हमारा होगा कैसे जो रसूल का नहीं है। वो हमारा होगा कैसे जो रसूल का नहीं है। ये मतलब इत्तेहादियों को मैसेज दिया है मैंने, क्योंकि रसूलुल्लाह कह गए कि मेरे बाद 72 फ़िरक़े होंगे। जो इन 72 को एक करना चाहता है, मैं उससे पूछता हूँ कि रसूल की नाफरमानी करना चाहते हो या एक नई मंतक घुसड़ना चाहते हो। इस नज़र से मैंने मतलब सुनाया आप हजरात, पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि तू है आ। और एक और बात बताते हैं, मौलाना मौजूद है, सूरह आले इमरान में मोमिनीन के दरमियान इत्तेहाद है। मौलाना मौजूद है, गलत कह रहा हूँ तो बताएं। मोमिनीन के दरमियान इत्तेहाद है, मुसलमानों के बीच इत्तेहाद नहीं है। हालांकि उसी आयत में लिखा है कि नस्ल आदम है वो भी तुम्हारे भाई हैं। गलत कह रहा हूँ तो बता दें, नस्ल आदम वो भी तुम्हारे भाई हैं, लेकिन इत्तेहाद मोमिनीन के दरमियान है। मोमिनीन कौन है? जिसके दिल में अली वलीउल्लाह है, जिसने इकरार लिया है विलायत का, वो मोमिन है। इसके दरमियान या अली, या अली पेश कर रहा हूँ, इजाज़ मामू पेश कर रहा हूँ कि तू है आयतों में रोशन, तेरा नाम है अज़ां में। तू है आयतों में रोशन, तेरा नाम है अज़ां में। तेरे दुश्मनों का लेकिन कहीं कुछ पता नहीं है। तेरे दुश्मनों का लेकिन कहीं कुछ पता नहीं है। वो काली कमली वालों से कहना है कि रसूलुल्लाह की मदो सना इतनी आसान नहीं है। या तो रसूलुल्लाह को अहले बैत अलैहिस्सलाम मदो सना करें या अल्लाह ख़ुद करे। हमारे आपके बस की बात नहीं है कि उनकी मदह करें, बस वो जो अता कर दें हम पढ़ दें, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। पेश कर रहा हूँ कि तेरी मारिफत है किसको, तेरी मारिफत है किसको, करे कौन तेरी मिदहत। तेरी मारिफत है किसी को, करे कौन तेरी मिदहत। सभी खाक के हैं पुतले, कोई भी खुदा नहीं है। सभी खाक के हैं पुतले, कोई भी खुदा नहीं है।
सर हशीर खींच लेगी तुझे आतिशे जहन्नम। बाकर भाई सुनिएगा कि सर हशीर खींच लेगी तुझे आतिशे जहन्नम, तुझे बोग़्ज़ मुस्तफ़ा का अभी तजुर्बा नहीं है, तुझे बोग़्ज़ मुस्तफ़ा का। बस ये चंद शेर। नात भी ज़रूरी थी क्योंकि वाजिब है, क्योंकि उनका आज जश्न है, विलादत है। विलादत क्या है? ज़हूर है, न जाने कब से उनकी खिलकत हो चुकी है। पेश कर रहा हूँ बहरहाल चंद शेर जल्दी जल्दी। कि मेरी बात पर न जाओ तुम उठा के देखो तारी, कि मेरी बात पर न जाओ तुम उठा के देखो तारीख, वहाँ मुस्तफ़ा नहीं है जहाँ मुर्तज़ा नहीं है। वहाँ मुस्तफ़ा, ये भी शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। जो बेहिश्त लेके जाए मुझे करीम आका, जो बहिश्त लेके जाए मुझे करीम आका, तेरे दर से हट के ऐसा कोई रास्ता नहीं है, तेरे दर से हट के ऐसा। आखिरी शेर, दो शेर की ज़हमत है, बाज़ बुलंद आरे सलवात पढ़ दें आप हज़रात। ये भी पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। कि मेरे लब पहर घड़ी है तेरा नाम यूं मोहम्मद, मेरे लब पहर घड़ी है तेरा नाम यूं मोहम्मद, तेरे नाम के सिवा कुछ मुझे सूझता नहीं है, तेरे नाम। बस ये आखिरी शेर मक्ता पेश कर रहा हूँ, समाज सुना शेर छोड़ते हुए पेश कर रहा हूँ बस मक्ता। कि है नज़र में हुस्न अकबर तो ज़की कहे ये कैसे, है नज़र में हुस्न अकबर तो ज़की कहे ये कैसे, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे मेरे मुस्तफ़ा का जैसा कोई दूसरा नहीं है। अर्ज़ अज़ीज़ शायर अहले बैत अली जनाब ज़की भारती साहब बारगाह सादिक़ैन में मंज़ूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, हर्फ़ इल्तिमास लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। बकमाल अदब आबरू लखनऊ उस्ताद शुरा आली जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने उस्तादाना कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। और एजाज़ ज़ैदी साहब के मुरस्सा कलाम के फ़ौरन बाद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला
इख्तितामी तकरीर फरमाएंगे। मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश है, बकमाल अदब गुजारिश। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ और इल्तिमास लेकर उस्ताद शुरा जनाब एजाज ज़ैदी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराजी अक़ीदत। क्योंकि ये महफिल हर साल खाना खुदा में मुनक़िद होती है, इसलिए एक कथा अज़ान के हवाले से हाजिर खिदमत है। 2 कथे मौला कायनात के हवाले से, उसका 6 या 7 शेर एक नात के। नक्श होता है जिनकी नस्लों में, नक्श होता है जिनकी नस्लों में, कब अली पर वो जान देते हैं। नक्श होता है जिनकी नस्लों में, कब अली पर वो जान देते हैं। और जिनका रिश्ता है कुल्ले ईमान से, वो मुकम्मल अज़ान दे। नफ्स होता है जिनकी नस्लों में, कब अली पर वो जान देते हैं। और जिनका रिश्ता है कुल्ले ईमान से, वो मुकम्मल अज़ान देते हैं। खोलता है जो लब खिलाफ़े अली, खोलता है जो लब खिलाफ़े अली, खुद वो अपने ही राज खोलता है। खोलता है जो लब खिलाफ़े अली, खुद वो अपने ही राज खोलता है। लोग कहते हैं बोलती है ज़बान, मैं ये कहता हूँ खून बोलता है। कहता ये भी मुलाज़ा मधे मौला कायनात का रुख ये भी मुलाज़ा कि हूँ अज़ल से अली का दीवाना, हूँ अज़ल से अली का दीवाना। कब है घटता जुनून बढ़ता है, हूँ अज़ल से अली का दीवाना। कब है घटता जुनून बढ़ता है। और जिक्र हैदर की बात क्या मैं करूं, जिक्र मीसम से खून बढ़ता है। अज़ल से अली का दीवाना। कब है घटता जुनून बढ़ता है। और जिक्र हैदर की बात क्या मैं करूं, जिक्र मीसम से खून बढ़ता है।
5-7 अशार हाजिर खिदमत हैं। ये नाद भी कसीदा भी है, तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। इन अशार में मुलाहिजा सभी कुछ इसमें है कि आमना के पैगंबर जब हमारे आए हैं, आमना के घर पैगंबर हमारे आए हैं, पाँव धोने के लिए आमना के घर पैगंबर जब हमारे आए हैं, पाँव धोने के लिए कौसर के धारे आए हैं। और क्या बताएगा कोई मैं खाने मुरसल की शान, क्या बताएगा कोई मैं खाने मुरसल की शान। लगता है जैसे कि हम कौसर किनारे आए हैं। क्या बताएगा कोई मैं खाने मुरसल की शान। लगता है जैसे कि हम कौसर किनारे आए हैं। और उनको दुनिया लाई दामादे नबी के सामने, उनको दुनिया लाई दामादे नबी के सामने, जो फजाइल का हर एक मैदान हारे आए हैं। उनको दुनिया लाई दामादे नबी के सामने, जो फजाइल का हर एक मैदान हारे आए हैं, जो फजाइल का हर या उनको दुनिया लाई दामादे नबी के सामने, जो फजाइल का हर एक मैदान हारे आए हैं। शेर मौलाना के मारे का सिफीन का हो, नहरवा हो या जमल, मारे का सिफीन का हो, नहरवा हो या जमल, सब अली के सामने नस्लों के मारे आए। मारे का सिफीन का हो, नहरवा हो या जमल, सब अली के सामने नस्लों के मारे आए हैं, सब अली के सामने। और दो कसीदे मुरसलो जाफर के ये हाथों पहें, दो कसीदे मुरसलो जाफर के ये हाथों पहें, या मेरे हाथों में दो कुरान के पारे आए हैं। दो कसीदे मुरसलो जाफर के ये हाथों पहें, या मेरे हाथों में दो कुरान के पारे आए हैं। और वाह क्या कहना तेरा माहे रबीउल अव्वली, वाह
क्या कहना तेरा माहे रबीउल अव्वली, एक महीने में मयसर दो शुमारे वाह क्या कहना तेरा माहे रबीउल अव्वली, एक महीने में मयसर दो शुमारे आए हैं, और शक्ल में असहाब की चरखे रिसालत पर नजर, शक्ल में असहाब की चरखे रिसालत पर नजर, नेकम मनहूस कसरत से सितारे शक्ल में असहाब की चरखे रिसालत पर नजर, नेक कम मनहूस कसरत से सितारे जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे उस्ताद उश-शोरा इज़्ज़त माब अली जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब, जो अपना मुरस्सा और जामे कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। आइए हज़रात, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हर्फ़ इल्तिमास लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। इनके बाद बकमाल अदब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला की खिदमत में को तशरीफ़ लाएं। इजाज़त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि आदाइम इलल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी बात को सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी खिदमत में रख के आपकी रफ़ ज़हमत करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाहिर है मैं सबसे पहले अपने ज़माने के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली, उसके बाद तमाम मराजे इकराम की खिदमत में, उलमा इकराम की खिदमत में, अपने शोरा इकराम की खिदमत में और आप मोमिनीन की खिदमत में जश्न सादिक़ैन की मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। अज़ान गिरामी, आपने पूरी रात इबादत में काटी और बेहतरीन शोरा को आपने, जिनका मंजूम नजराने अक़ीदत आपने समात फरमाया। बेशक इससे बढ़ के कोई रहमत की नहीं है और इससे बढ़कर कोई परवरदिगार आलम की अजीम रात नहीं है कि जिसमें दो अजीम नेमतों को परवरदिगार आलम ने हमारे दरमियान, यानी यूँ कहूँ कि परवरदिगार आलम ने कुरान नाती कुरान सामित को नाज़िल किया। और फिर लिहाजा मैं यही कहना चाहूँगा, हमेशा कहता चला आया हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को पूरी करूँ,
मुझे याद आते हैं। जैसा कि हमारे शायर अहले बैत ज़की भारती साहब ने फरमाया कि जब इधर महफ़िल होती है और इस हिस्से में महफ़िल होती है तो बरादर अज़ीज़ हमें अपने कौकब भाई ज़रूर याद आते हैं। तो ज़ाहिर है कि उनकी मिलनसारी और उनका जो बेड़ा उठाया था, उन्हीं ने आखिर वक्त के अंदर जो बेड़ा उठाया था बहुत अजीम बेड़ा उठाया था। हम तमन्ना करते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे क़ैम भाई और अब्बास मियाँ और जितने भी हमारे महल्ले के नौजवान हैं उस बेड़े को उसी सूरत से उठाकर आगे बढ़ाएं जिस तरह से हमारे कौकब मरहूम कहते हुए जैसे बास के साथ लफ्ज़ लगाते हुए जैसे तकलीफ़ होती है, लेकिन असलियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सही है, आपको याद होगा कि जो बेड़ा उन्होंने उठाया था, आपको याद है ना अच्छी तरीक़े से, सबको याद होगा कि जो तहरीक उठाई थी बच्चियों की शादी के लिए, जो तहरीक उठाई थी गरीबों के लिए, जो तहरीक उठाई थी बीमार, ये सही खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं तो सही खराज अक़ीदत और दोस्ती के माने यही है कि हम उनके उस मिशन को इंशाअल्लाह इस महफ़िल के ज़रिए से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि उनका ज़ाती मिशन नहीं था बल्कि उनका जो मिशन था वो कौम की फ़लाह और बहबूद और एजुकेशन के लिए था। बहरहाल हम महफ़िल का रंग बदलना नहीं चाहते, हम अपनी बातों को और अपने जज्बात को रोकते हुए उनके लिए, और अभी हाल ही के अंदर जैसा ख़बर हमको मिली थी कि हमारे श्री वाहिद साहब की बहन का भी इंतकाल हुआ, ये ख़बर आई अभी हाल ही के अंदर, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। लिहाजा देखिए हमारा जो मानना है वो ये मानना है कि जो भी हम दुनिया से उठता है, जो भी शान दुनिया से उठता है और जो भी जो दुनिया से मोमिना उठती है, ज़ाहिर है उनकी अरवाह जिस सूरत से मजालिस में शामिल होने के लिए आती है वैसे ही महफिल में शामिल है। हमारा अक़ीदा ये, हमारी एक रिश्तेदारी के अंदर इंतकाल हो गया, बुलाया गया, और इंतकाल कब हुआ सुनिए, इंतकाल कब हुआ, इंतकाल हुआ शब-ए 9 रबीउल अव्वल, शब-ए 9 रबीउल अव्वल जो दिन है आप बताइए, ईद ज़हरा का वो हुआ। और हमारी रिश्तेदारी के अंदर हमारे सगी बहनों की वालदा दुनिया से उड़ गई। उफ्रा माफ़ के वहाँ जो है गुस्ल खाना, वहाँ गुस्ल हमने जाके दुआएं पढ़ी, ये क्या वो क्या वो क्या, फिर उन्होंने जैसे ही आके कान के अंदर कहा कि जब हो गया सब तैयार के उसके लिए मजलिस के लिए, तो हमने कान में जाकर उनके बात की। हमने कहा आपकी वालिदा तो हमेशा 9 रबीउल अव्वल को रहती थी मकबरे में, और किस सूरत से जश्न का एहतमाम करती थी, किस सूरत से तैयार करती थी, तो आप सच बताइए कि आप उनकी रूह को शाद करना चाहते हैं, आप उनको पहुंचाना चाहते हैं? कहा मौलाना इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, उनकी रूह शाद हो और उनकी रूह खुश हो। तो हमने कहा सिर्फ़ और सिर्फ आप आज उनकी मैयत में फ़ज़ाइल ज़हरा और फ़ज़ाइल अहले बैत को पढ़ाइए। आदमी भी हो ऐसा मानने वाला, आदमी भी ऐसा हो कि जब हमने उससे ये कहा उसने किस सूरत से बात को माना, कहा हाँ सिर्फ फ़ज़ाइल पढ़े जाएंगे आज की शब। देखिए हमारी जो खिलकत हुई है वो अहले बैत की हदीस को सुनिए, हदीस क्या कह रही है, खुलक़ू और कर शियतुना खुलक़ू फ़ाज़िल तीनतना, हमारे शिया हमारी फ़ाज़िल तीनत से खल्क़ किए गए। यफ़रहूना बिफ़राहना, जब हम मसरूर होते हैं तो ये मसरूर हो जाते हैं, और जब हम गमज़दा होते हैं तो ये गमज़दा हो जाते हैं। एक दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे कौकब भाई के लिए और हमारी बहन जो दुनिया से उठी अभी हाल ही में, अभी उनका शायद तीजा या पंजुम हुआ है, उनके लिए 3 बार सलवात बुलंद आवाज़ से सब मिलकर भेजें। बराए सलामती इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात, बराए खुशनुदी रसूल खुदा बुलंदतर सलवात, बराए खुशनूदी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात। बहरहाल परवरदिगार आलम उनके दर्जात को आली व मुताली फरमा और उनको अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ मशहूर फरमा। पहली अर्ज़ ये थी। और दूसरी अर्ज़ ये है कि हम बार बार ये कहते हैं
कि अगर दर अहले बैत पर आ जाते तो भटकने की ज़रूरत ना पड़ती। बार बार ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं। आज जो ये नाकामियाँ हैं और इसी के साथ साथ जो कहा जाए कि जो तुम्हारे हिस्से के अंदर, तुम्हारे मुक़द्दर के अंदर ये लानतें हैं, वो इसी बिना के ऊपर हैं कि अहले बैत के दर को तुमने छोड़कर दूसरों को अफजलियत देने की कोशिश की। इसी वजह से छोटी सी मिसाल दे रहे। तलाक का मसला है, आप देख ले कि जब आया और आने के बाद किस सूरत से यही फैसला किया गया और यही बताया कोर्ट ने कि एक नशिस्त के अंदर 3 तलाक़ें नहीं हो सकती। एक नशिस्त में 3 तलाक़ों का कहीं के ऊपर ना कुरान कह रहा है, ना सीरत अहले बैत कह रही है, कहीं के ऊपर नहीं कह रही है। लेकिन आपने ज़िद की और ज़िद का अंजाम देखा कि कोर्ट ने यही कहा कि अब जो भी 3 तलाक़ें अपनी तरफ से देगा उसको जेल जाना पड़ेगा। सही है, क्योंकि आप कुरान के भी खिलाफ कर रहे हैं, अहले बैत के खिलाफ भी कर रहे हैं। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि क्योंकि कुरान से भी साबित नहीं है, हादीस से भी साबित नहीं है अहले बैत की सीरत। आपने दूसरों की सीरत को लेकर उसको मनवाने की कोशिश की, जिसका सबब आपको शर्मिंदगी का हमसे क्यों नहीं पूछा गया, हमारे उलमा को क्यों नहीं बुलाया गया, हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? किस लिए कि वो जानते हैं कि इनके यहाँ एक नशिस्त के अंदर तलाक का प्रावधान ही नहीं पाया जाता, ये चीज़ पाई नहीं जाती। इसलिए आपको सर झुकाना पड़ा कानून के सामने, क्योंकि वो गैर आईनी भी है, गैर फितरी भी है। इसीलिए हम कह रहे दरे अहले बैत पर आ जाओ, सवेरा है। इसलिए अगर तुम अहले बैत को छोड़ के जाओगे तो वो आईनी भी गैर आईनी भी होगा और गैर फितरी भी होगा। ये तो हमने छोटी सी मिसाल दी आपके सामने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए। बहरहाल जो बात कह रहा था वो ये इसलिए कही थी ये बात कि जो तारीख़ है 17 रबीउल अव्वल, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम से आई है। बच्चा हमारे क्या पैदा हुआ है, पूछ रहे हो बनिया बकालों से जाकर? भैया ये कब पैदा हुए, किससे पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए? बच्चा हमारे घर का पैदा हुआ होगा तो आप बताइए, आप बनिए से आकर पूछिएगा, आप बकाल से जाकर पूछिएगा, आप मुसाफिर से जाकर पूछिएगा, आप गैरों से जाकर पूछिएगा। जो अभी गौर कर रहे हैं, अबू हुरैरा अभी इस्लामी में दाखिल नहीं हुआ। आपकी रवायत अबू हुरैरा से है, हमारी रवायत घर वालों से है। तो घर वालों की बात मानी जाएगी या बनिया बकालों की बात मानी जाएगी? एक दुरूद भेजे मोहम्मद। बस ये पहली बात है जो इसकी तरफ इशारा करना था, और दूसरी बात है जो मैंने कहा 5-7 मिनट में मैं अपनी बात को समेट के आपके सामने रखूँगा। जश्न सादिक़ैन है, परवरदिगार आलम हमारे कायम भाई और उनके साथ जितनी हमारी टीम, हमारे नौजवान हैं, जितने भी महल्ले के, सब ने साथ दिया। दामे दिरहमे सुखदे, आपने यहाँ तक इस बात को पहुँचाया और पहुँचाने के बाद अज़ीमुश्शान पैमाने के ऊपर जश्न सादिक़ैन का एहतमाम किया। परवरदिगार आलम आपकी तौफ़ीक़ात में और आपकी पूरे मुसाहिबीन जितने भी साथ थे, छोटे बड़े बच्चे घर वाले सब लगे हुए थे इस महफ़िल के लिए और सब कोशा थे। और कई साल से महफ़िल हो रही है और आप महफ़िल को देख रहे हैं कि किस सूरत से माशाअल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। इससे पता चलता है कि हमारे बच्चों में, नौजवानों में खुलूस कहाँ तक पाया जाता है। इतनी रात तक जागना, इतनी रात तक शोरा का बैठना, जी इतनी रात तक जागना, इतनी रात तलक यहाँ के ऊपर जश्न के अंदर परवरदिगार आलम इन तमाम नौजवानों की बार अल्लाह बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और उनके हमारे कायम भाई, उनके साथ जितने नौजवान हैं परवरदिगार आलम इन सब को जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा और हम लोग अपनी आँखों से जन्नतुल बक़ी बनता हुआ देखें और अपनी आँखों से जो कातिलाने ज़हरा हैं
जो कातिलाने अहले बैत हैं और जो जिन्होंने जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया है, परवरदिगार आलम उनको, जो लोग मर गए हैं उनकी कब्रों में अपना अजाब नाजिल फरमा, और जो जिंदा है उनके चेहरों को रुसवा और काला परवा। जी जी, इसलिए अजीज़ान गिरामी, बहरहाल एक जुमला और कह के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, परवरदिगार आलम का इंतज़ाम देखें। आपने कोशिश की, पूरी कौम कोशिश करती रही, करते करते यहाँ तलक कि किसी सूरत से दूसरों का रुतबा बढ़ाया जाए, अहले बैत के आगे लाया जाए, अहले बैत के आगे लाया जाए। देखिए, हमें कोई इश्काल नहीं है किसको आगे लाया जाए, किसको पीछे लाया जाए। हमें यही, हम तो हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि जब आप सारी सुन्नतों पर अमल करते हैं कि पैजामा कितना ऊंचा पहने, हमें कोई एतराज़ नहीं, आपको पैजामा याद रहता है। आप कुर्ता कितना लंबा पहने, हमें कोई एतराज़ नहीं। सुरमा कैसे लगाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। जैसे रसूलुल्लाह सुरमा लगाते थे, आप सुरमा लगा रहे हैं। जैसे पैजामा पहनते थे, पैजामा पहन रहे हैं। जैसे वो कुर्ता पहनते थे, कुर्ता पहन रहे हैं। जैसे गेसू रखते थे, वैसे आप गेसू रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप दतून करते थे, दतून करने की, यहाँ तलक के आपको सारी सुन्नतें याद रही। हत्ता घर की सुन्नतें घर में क्या करते थे। अरे भैया, घर की सुन्नतें घर वाले बताएंगे या बाहर वाले झांक झांक के बताएंगे? घर की सुन्नतें आप बता रहे, चलिए उसके ऊपर भी कोई इश्काल नहीं। हमारा कहना है सारी सुन्नतें आपको याद रही, तो हर सुन्नत को याद रखा आपने। कैसे सुरमा लगाना है, कैसे पैजामा पहनना है, कैसे दतून करना है, कैसे चलना है, कैसे ये करना है, सारी सुन्नतें आपको याद रहती है। 1.25 लाख की सुन्नत भूल जाते हो। 1.25 लाख के मजमे की सुन्नत भी तो याद रखो। सही है, 1.25 लाख की सुन्नत भी याद रखो कि हाथों पर बुलंद करके किसको कहा था, मन कुन तो मौला फहाज़ा अलीउन मौला। बस अब यही कहते हैं, जिसको रसूल ने हाथों पर उठाया उसको हाथों पर उठाओ, जिसको हुजरे से निकाला उसको हुजरे से निकालो। दुरूद भेजे मोहम्मद भाई, यही कहते हैं, हमारा और कोई इश्काल नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा जो बात कह रहा था वो इसके पैराए बे कि क्या खुदा का इंतज़ाम। तुम हमेशा ये उनको साथ ले लो, साहबा को, और ये उनसे आगे, ये उनसे आगे ढिढोरा पीटते रहे। अल्लाह का इंतज़ाम देखिए, परवरदिगार आलम का इंतज़ाम देखिए। जिस तारीख़ में परवरदिगार आलम ने सरवर आज़म को भेजा, रहमतुल लिल आलमीन को भेजा, 17 रबीउल अव्वल, उसी तारीख को परवरदिगार आलम ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को। सही है, आल साथ हुई नहीं हुई? सही, आल साथ है या नहीं? वो भी सादिक, ये भी सादिक, एक दीन का लाने वाला, एक दीन का बचाने वाला। अंदाजा लगाइए, ये परवरदिगार आलम की तरफ से इंतज़ाम है। लिहाजा कोई भी अहले बैत के आगे किसी को ना ला सकता है, ना अपने किसी कोशिश कर सकता है। पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है। आओ, आने के बाद हमारी महफ़िलों को देखो, देखने के बाद सबक हासिल करो कि किस सूरत से महफ़िलें की जाती हैं। अगर शायद काश तुम अहले बैत के दर पर आ जाते तो तुम्हें सलीक़ा उठने बैठने का भी आ जाता, महफ़िल करने का भी आ जाता, और कर रहे गुफ्तगू करने का भी आ जाता। तुम्हारी अपने आओ, अपने जुलूसों को देख लो, हमारे जुलूसों को देख लो, अपनी महफिलों को देख लो, हमने महफिलों को देख लो। हमारी महफिलों का क्या हाल है, तुम्हारी महफिलों का क्या हाल है, जहाँ के ऊपर एक ग्लूकोज का पैकेट बिस्किट का बांट के दो सबको बांटा जाता है। बस कहने दीजिए, मुझे याद आ रहा है, खतीब का जुमला याद हो रहा है, अगर हमारी मजालिस के डिस्पोजल भी इकट्ठा करके तुम्हारे बांट दिया जाए तो तुम्हारे बड़े बड़े जश्न हो जाए। डिस्पोजल इकट्ठा करके हमारी मजलिसों के 2 महीने 8 दिन जो डिस्पोजल है वो इकट्ठा करके बांट दिए जाए तो तुम्हारे सूरत के झंडे और यहाँ के ऊपर बड़े बड़े काम हो जाए। वहां के ऊपर
बस आखिरी कलाम अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाहिर है बात और आगे बढ़ जाएगी, लिहाजा मैं बस अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए आपकी खिदमत में एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि जश्न सादिक़ैन है। नूर से मामूर दरिया है मोहम्मद मुस्तफ़ा, नूर से मामूर दरिया है मोहम्मद मुस्तफ़ा। लोग कहते हैं सफ़ीना है मोहम्मद मुस्तफ़ा। हमसे पूछो कौन है, क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा। खुद है नाजिर, खुद है अंजार मोहम्मद मुस्तफ़ा। खुद है नाजिर, खुद है नज़ारा मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या फ़क़त सरकार बता है मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्या फ़क़त सरकार बता है मोहम्मद मुस्तफ़ा। पूरी खिलकत की तमन्ना है मोहम्मद मुस्तफ़ा, पूरी खिलकत की तमन्ना है मोहम्मद मुस्तफ़ा। एतबार अज़मत आदम व इब्राहीम है, फ़ख्र मूसा फ़ख्र ईसा फ़ख्र मोहम्मद मुस्तफ़ा। और कर रहे फ़ख्र मूसा फ़ख्र ईसा है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मर्तबा क्यों कर न हो शाहों से भी अपना सिवा, मर्तबा क्यों कर न हो शाहों से भी अपना सिवा। हम गुलामों के जो आका हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, हम गुलामों के भी आका हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसी महफिल के आखिर में इंशाअल्लाह साल आइंदा के लिए इंशाअल्लाह दुआ है परवरदिगार आलम बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के। आइए दुआ करें कि बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के परवरदिगार आलम हमारे शोरा को और ज़्यादा उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बारिला जहाँ जहाँ भी मुमिनीन हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमाए। जल्द से जल्द जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब मुहैया फरमाए। जो दुश्मनान अहले बैत काबिल हिदायत नहीं है बारिला इनको निस्तो नाबूद फरमाए। बारिला बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुआ है बारिला पूरी कायनात में इस महफिल के वसीले से अगर कोई मरीज़ हो, कोई अलील हो, हमारे वाहिद भाई के लिए भी डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है जैसा कि मुझे ख़बर है। बारिला शायर अहले बैत हैं, बारिला बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के हमारे बरादर अज़ीज़ बरादर बुज़ुर्ग एस.टी. वाहिद साहब को भी शिफाए आजिल व कामिल मरहमत। बारिला जितने नौजवानों ने इस महफिल के अंदर हिस्सा लिया है बारिला इनके कारोबार में खैर व बरकत मरहमत फरमा, इनके घरों में अपनी रहमत व बरकत नाजिल फरमा। जश्न सादिक़ैन है, हमारी ईदी हकीकी ये है परवरदिगार आलम बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारिला हमें ऐसा बना दे कि हम अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में इस जश्न का इनेक़ाद कर सकें। बारिला बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के उलमाए बहक़ का साया हमारे सर पर क़ाइम दायम फरमा। हज़रत के क़ल्ब नाज़री को हम सबसे राज़ी फरमा, हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। आप लोग खड़े हो जाएँ और दुआए इमाम ज़माना एक बार पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साआ व फी कुल्लि साआ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का ताआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बराए खुशनुदी रसूल खुदा बुलंदतर सलवात, बराए खुशनुदी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात। भैया बैठ जाइए, आप लोग सब लोग बैठ जाइए, आप बराए करम बैठ जाइए आप लोग। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला की बसूरत अफरोज़ तकरीर के फ़ौरन बाद इस जश्न के अगले बरस तक इल्तिवा का ऐलान किया जाता है और मोमिनीन मोहल्ला की जानिब से आए हुए तमाम सामाईन और शुराए कराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। लाइए देखिए आप लोग हमें लोग निकाल रहे हैं 363 363 भैया आखिरी मरतबा पुकार रहे हैं 363
कैंसिल। चलो 82 82 नंबर। हम कोई यहीं पे बैठा हुआ था, इधर ही वाला 82 नंबर। 82 82 नंबर कैंसिल। चार 404 नंबर 404 404 नहीं जो यहाँ नहीं वो नहीं 404। हाँ ये भी बात सुन लिए कि जो यहाँ मौजूद है उसी के कुरानदाजी हो रही है। इक्कीस नंबर 21 है तो आइए दौड़ के, शर्मा क्यों रहे हैं? 141 नंबर 141 आइए 141 जल्दी जल्दी से आ जाइए। माशाल्लाह देखिए ये इतना बड़ा सफ़र करके मौला ने तबरुक दिया इन्हें। हाँ मुझे पता चला अभी। 214 214 आइए जल्दी से आइए, शर्माइए। चलिए जिसको वो हो जाए। अच्छा 374 नंबर है तुम्हारा 374 374 आइए 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 भैया ये लिए पप्पू साहब आप ये जिम्मेदारी निभाइए, हम दूसरा नहीं। 121 नंबर 121 121 नंबर 121 121 तो आओ जल्दी से बेटा। ये लिए पप्पू भाई नंबर देख तो लिए, मिला तो लिए। ये लिए लाइए लाइए। दो 203 नंबर 203 203 आइए। वाह ये लिए ये पकड़िए जी लाइए माशाल्लाह। ये लीजिए 267 267 267 267 नंबर 267 नहीं है कैंसिल। 127 नंबर 127 127 कैंसिल। 231 231 231 आ गया लाइए लाइए। 331 331 331 कैंसिल।
अज़ान फजर में अभी वक्त है माशाल्लाह। 186 186 186 186 कैंसिल। 386 नंबर 386 भैया 386 नहीं है, चलो हटाओ, चलो 43 नंबर 43 43 नंबर, अब इसका नंबर याद रखिएगा 43 43 कैंसिल। 336 336 कोई है? नहीं। 206 नंबर, अच्छा दानिश साहब, चलिए आइए। 125 नंबर 125 125 125 125 125 339 नंबर 339 339 339 कैंसिल। 67 नाइट चचा की निकली है शायद, नहीं शबाब साहब की निकली। शबाब साहब है, चलिए लाइए। 315 नंबर 315 315 315 कैंसिल। अच्छा ये सुनाई दे रहा है इनको, देखें 315 332 नंबर 332 332 332 332 है आइए अफसर भाई हैं। 133 नंबर 133 133 133 कैंसिल। 68 नंबर 68 मैं यही था। हो गया 68। 244 244 244 244 कैंसिल। हर कलर की एक मतलब। 360 नंबर
360 है, आओ जल्दी। हाँ भैया लो भैया 360 पकड़ो। ट्रिपल 111 ट्रिपल 111 ट्रिपल 1 कैंसिल। 357 नंबर 357 ओहो जाओ ना, आओ जाके 163 163 आओ आइए जर्रे मजीदी साहब, ये लिए उनको नंबर मैच मजीदी कहाँ से हो गया भैया 180 नंबर 180 नंबर 180 180 कैंसिल। 221 नंबर 221 91 91 नोट से नंबर ना मिला लिएगा। हाँ छाट लिए, आप छाट लिए। हाँ 139 139 1 बस 139 4 है 139 226 226 226 666 66 नंबर। मैं ये सब ना करो, 666 और ये सब नहीं नहीं नहीं, 999 है ये 999 नहीं नहीं ये है ये। हाँ ये सही है, सही है, ये सही है। 118 118 ये नहीं है बेटा, 118 118 नंबर तो मालूम हो गया है। 118 नहीं ना तुम लोग 281 281 281 281 255 255 ये लिया
264 266 266 266 266 266 नहीं 243 243 हाँ है इसी ये लिए ये है ये बैठो 243 सही है। हो गए सब कुछ बचा है क्या है एक ये पर्ची समाज जिसको मिलेगा ये पूरी पर्चियां मिलेंगी उसके साथ में 233 233 बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ 257 नंबर 257 250 नंबर 250 हाय बच्ची है ये लो बाइक